தொழிற்சாலைகள், கச்சா எண்ணெய், தானியங்கி கிடங்குகள், ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடன்கள், அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்ட முதலீடுகள் என்று அனைத்தும் இந்த அரசின் கடைக்கண் பார்வையில் கிடைக்கப்பட்ட ஒருவர் அதானி குழுமத்தின் தலைவர். அவருக்கு இது பொற்காலம். பெருமுதலாளிகளுக்கு இது பொற்காலம். அன்புமயமான இந்தியாவில், இந்திய மண்ணில் வெறுப்பை விதைப்பவர்களுக்கு இது பொற்காலம். ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களின் வாழ்நாள் வங்கி சேமிப்புகளை கொள்ளையடித்துவிட்டு உங்கள் உதவியோடு வெளிநாடுகளுக்கு ஓடிப்போன மோடிகள், மல்லையாக்களுக்கு இது பொற்கால ஆட்சி. ஆனால் விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகள், சிறு குறு நடுத்தர தொழிலை நடத்துபவர்கள், பெண்கள், சிறுபான்மையினர், நேர்மையான ஊடகவியலாளர்கள், தலித்துகள், மலைவாழ் மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அனைவருக்கும் எதிரானது இந்த அராஜக ஆட்சி. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் உணவு மானியத்தை 81,844 கோடி குறைத்துள்ளீர்கள். உலகளாவிய பசி குறியீட்டில் வேர்ல்ட் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இந்தியா 101வது இடத்தில் 107வது இடத்தில் உள்ளது. பசித்த வயிற்றோடு குழந்தைகள் உறங்கச் செல்கின்றன. பசித்த வயிற்றோடு உறங்கச் செல்லும் ஒரு குழந்தையை அதன் தாயின் மனநிலையை நினைத்து பாருங்கள். தயவு செய்து உணவு மானியத்தில் கை வைக்காதீர்கள். ஏழைகளின் பசித்த வயிற்றில் அடிக்காதீர்கள். உணவு மானியத்தை குறைப்பது விவசாய வருமானத்தை பாதிக்கும். உரமானியம் 50,000 கோடி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர் காப்பீட்டிற்கு நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம் கடுமையான பாதிப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஏன் உங்கள் அரசு 130-140 கோடி மக்களுக்கு சோறிடுகிற விவசாயிகளை விரோதிகளைப் போல நடத்துகிறது? மதிய உணவு திட்டத்திற்கான ஒதுக்கீட்டை வேறு 12,800 கோடியிலிருந்து 11,600 கோடியாக குறைத்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு 85,000 கோடியை அள்ளி வழங்குகிறீர்கள். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கல்விக்கு 2.8%, மருத்துவத்திற்கு 1.4% மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உங்கள் புதிய கல்விக் கொள்கை 6% நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறது. அதை வசதியாக மறந்துவிட்டீர்கள். ஆனால் வரலாற்றை மாற்றி எழுத, நுழைவுத் தேர்வுகளை எமது மாணவர்கள் மீது திணிக்க, உயர்கல்வியை மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை நாசமாக்க மட்டும் புதிய கல்விக் கொள்கை எங்கள் மீது திணிப்பீர்கள். காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதலில் தூக்கி எறியப்படுவது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையாகத்தான் இருக்கும் என்று இங்கே அழுத்தமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அடுத்து அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் முயற்சியால் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மன்னரேகா கிராமப்புறங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு 10 கோடி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியது. கிராமப்புற கட்டமைப்பை உருவாக்கியது. இந்த தேசத்தின் உயிர்நாடியான இந்த திட்டத்திற்கு கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 30,000 கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். Sir, 2 minutes, sir. I am concluding 2 minutes. கடந்த ஆண்டு 89,000 கோடி ரூபாய், இந்த ஆண்டு 60,000 கோடி ரூபாய். உண்மையில் தேவைப்படுவது 2,72,000 கோடி ரூபாய். ஆக உண்மையான பற்றாக்குறை 2,10,000 கோடி. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குடும்பத்திற்கு சராசரியாக 40 முதல் 50 நாட்கள் மட்டுமே வேலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியாண்டில் ஒரு குடும்பத்திற்கு 17 நாட்கள் மட்டுமே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதை வைத்துக் கொண்டு மக்கள் எப்படி மளிகை பொருள் வாங்குவார்கள், குழந்தைக்கு பால் வாங்குவார்கள், கல்வி மருத்துவத்திற்கு செலவு செய்வார்கள்? கொஞ்சம் யோசியுங்கள். 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள். 100 நாட்கள் வேலையை 150 நாட்களாக மாற்றுங்கள். 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு சார் 1 minute சார் 1 minute சார் only 1 minute. எதற்கெடுத்தாலும் வரி சார் 1 minute சார் 30 seconds சார் I am concluding in 30 seconds. எதற்கெடுத்தாலும் வரி. அரிசி, பருப்பு, பால், பென்சில் எல்லாவற்றுக்கும் வரி. பெட்ரோல், டீசல் 100 ரூபாய், சிலிண்டர் 1,200 ரூபாய். இப்படி வரி மேல் வரி போட்டால் மக்கள் எப்படி தாங்குவார்? சார் 30 seconds சார். இதைத்தான் திருவள்ளுவர் சார் after listening the bell, please conclude your speech within 1 minute. No, don't prolong that. After the bell, within 1 minute you should conclude your speech. இதைத்தான் திருவள்ளுவர் வேலோடு நின்றான் இடிவென்றது போலும் கோலோடு நின்றான் இரவு என்றார். நடு இரவில் கொள்ளைக்காரன் ஆயுதத்தை காட்டி மக்களிடம் பணம் பறிப்பது எவ்வளவு கொடுமையானதோ அவ்வளவு கொடுமையானது ஆட்சியாளன் தன் குடிமக்களிடம் அதிக வரி கேட்பது. இப்படி கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் மாண்புமிகு பிரதமர் சொல்வது போல 130 கோடி மக்களுக்கு செல்லவில்லை, தமிழ்நாட்டுக்கு வரவில்லை. உங்களுக்கு சார் ஒன் நேஷன் ஒன் ஃப்ரண்ட், ஒரு நண்பர் ஒரு தேசம், அதானி அதானி அதானி. நன்றி. நன்றி மாண்புமிகு மக்களவை தலைவர் அவர்களே. இந்த நிதி ஆண்டிற்கான பொது வரவு செலவு திட்டத்தில் பேச அனுமதி அளித்ததற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கையை வாசிக்கின்ற பொழுது ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சி, பெரும் சாதனை போன்ற தோற்றத்தை ஏற்பட்ட முயன்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் காட்டிய வளர்ச்சி, மதுரை வளர்ச்சி தோற்றமெல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு மதுரையில் தந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை போல வெற்றிடமாக மட்டுமே உள்ளது என்பதை பதிவு செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த நிதிநிலை அறிக்கை ஏழை எளிய நடுத்தர வர்க்க மக்களை பெரும் ஏமாற்றத்திலே ஆழ்த்துகின்ற நிதிநிலை அறிக்கையாக இருக்கின்றது. பணக்காரர்களை மேலும் பணக்காரர்களாக்குவதும் ஏழைகளை மேலும் ஏழைகளாக்குவதுதான் கடந்த 8 ஆண்டு கால சாதனை. இந்த அரசு சிறுபான்மை மக்களை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கக்கூடிய அரசு என்பதை வழக்கம் போல இந்த பட்ஜெட்டிலும் நிரூபித்து விட்டது. சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமல்ல, எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி என இதர சமூக மக்களுக்கான திட்டங்கள் பலவற்றுக்கான நிதிகளை குறைத்து அவர்களுக்கு துரோகம் இழைக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கின்றது. பொருளாதார வளர்ச்சி 7% இருக்கும் என்று மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஆனால்
பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையிலே பணவீக்கம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை தாண்டி 6.8 விழுக்காடாக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது. அது மட்டுமல்ல, ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் எப்படி 7% பொருளாதார வளர்ச்சி இலக்கை அடைய முடியும் என்று கூறுகிறார் என்று தெரியவில்லை. வழக்கம் போல ஒரு மாய தோற்றத்தை பாஜக அரசு சிறப்பாக காட்டியிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த ஒரு புதிய திட்ட அறிவிப்பும் எங்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே இல்லாது பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கின்றது. மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. பாரபட்சமாக தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய அநீதிக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து பாடம் போட்டி வருகின்றார்கள். தேர்தல் நடைபெற இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை மட்டுமே குறிவைத்து வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு நீங்கள் நிதி ஒதுக்கி இருப்பது வழக்கம் போல அடுத்த கட்ட தேர்தலை மட்டுமே சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய அரசு இந்த அரசு என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நீங்கள் நிரூபித்திருக்கின்றீர்கள். சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் நிறுவனங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய அதிகமான வேலைவாய்ப்பை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அவற்றின் மேம்பாட்டிற்கு 15% மேல் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கக்கூடாது என்று தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கையை இந்த அரசு மறுக்கின்றது. சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய கடன் 9 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றீர்கள். இவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டிலே சிறு சிறு தொழில்களுக்கு நீங்கள் வழங்கும் முக்கியத்துவம் இதுதான் என்பது மிகப்பெரிய கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அடுத்த 3 ஆண்டுகளிலே 47 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 2014 நீங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்திருந்து வெறும் அறிவிப்பை மட்டுமே எந்தவித குறையும் இல்லாமல் அறிவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். எப்போது நிறைவேற்றப் போகின்றீர்கள்? மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி ஒழிப்பு திட்டம் என்பது கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே ஏழை எளிய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய அளவிலே இயற்றப்பட்ட ஒரு திட்டம். நிலமில்லாத மக்களுக்காக அங்கே வழங்கக்கூடிய இந்த திட்டத்திலே 100 நாள் வேலை வாய்ப்பை 150 நாளாக உயர்த்தி வழங்கப்பட வேண்டும். அவருடைய ஊதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையிலே அதற்கான நிதியை 20,000 கோடி குறைத்திருக்கிறது. 80,000 கோடியிலிருந்து 60,000 கோடியாக குறைத்திருப்பது அந்த திட்டத்தை குளிதோண்டி புதைக்கக்கூடிய செயலாக இருக்கும். நிச்சயமாக அதை மறுபரிசீலனை சிறுபான்மை மக்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய இந்த அரசின் போக்கு நிதிநிலை அறிக்கையிலே பிரதிபலிக்கிறது. சிறுபான்மை நலத்துறைக்கு கடந்த ஆண்டிலே வழங்கப்பட்ட நிதி 5,020 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டிலே 3,097 கோடியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2,000 கோடி ரூபாய் சிறுபான்மையினருக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய பிரிமெட்ரி ஸ்காலர்ஷிப் சுமார் 1000 கோடி இந்த நிதியாண்டிலே குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறுபான்மை ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி உதவித்தொகை முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சிறுபான்மை மாணவர்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதை தடுப்பதற்காக கூடிய அரசாக இருக்கின்றது. ஏற்கனவே உயர்கல்வியிலே 55%-இலிருந்து 46% குறையக்கூடிய நிலையிலே இது சிறுபான்மை மாணவருடைய கல்வியை தடுக்கக்கூடியதாக பார்க்கின்றோம். சிறுபான்மை மக்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய பகுதியிலே கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தக்கூடிய பிரதம மந்திரி ஜன் விகாஸ் காரியக்ரம் திட்டத்திற்கு இந்த ஆண்டு 1,260 கோடி. सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने ये जो हमारे भारतवर्ष का अमृत काल है, इस अमृत काल के जो आने वाले 25 वर्ष हैं उसमें हमारे भारत की क्या दशा रहेगी, क्या दिशा रहेगी, उसके बारे में जो ये बजट पेश किया गया है, ये इस अमृत काल का पहला बजट है जो कि सशक्त, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी जो हालत है, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे हम कोविड महामारी की बात करें, आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डामाडोल हो रखी है। आप ये देखिए कि 22-23 के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रहने का अनुमान है, जो कि दिसंबर 2022 में आरबीआई के अनुमानित 6.8% से अधिक है। वैश्विक जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 1.7% है और हम लोग कहां पर हैं आप देख सकते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6 रहने का आगे आने वाले समय में अनुमान है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसको ब्राइट स्टार जो है वो विश्व में कहा जाता है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जब भी हम किसी के साथ तुलना करेंगे तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर खड़े, क्योंकि अगर हम देखें तो आज दुनिया की महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो भारत की 5.72 है
और दुनिया में अमेरिका जो है, जिसको विकसित देश कहा जाता है, उसकी 6.50 है। ऑस्ट्रेलिया की 7.8% है, जर्मनी की 8.7% है, यूके की 10 से 11% है, टर्की की तो 60% है, रशिया की 12% है। तो आज ये सब अगर हम अपनी इन्फ्लेशन को 5.72% तक ला पाने में कामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे कारण है आत्मनिर्भर भारत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि किस तरह से हमारे देश को हम आत्मनिर्भर बनाकर आत्मविश्वास से जो हमारा देश आज की तारीख में भरा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से देश जो हैं वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या अपनी स्टेटमेंट देखें। और हमारे जो आदरणीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ, डिप्लोमेटिक तरीके के साथ विश्व स्तर पर यह कहा है कि रशिया जो है उससे हम तेल लेंगे क्योंकि हमें जरूरत है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि भारत किसी भी कीमत पर युद्ध के फेवर में नहीं है। तो एक इतने अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है कि जिससे जो हम रशिया से तेल ले पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा आत्मनिर्भर भारत हम बनते जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन में भी आप ये देखिए, आज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी भारत की जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए कि 10वें नंबर से हम छलांग लगाकर आज विश्व की अर्थव्यवस्था में आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो 2nd और 3rd नंबर पर बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है, इसके अंदर हम चाहे युवा की बात करें, महिला की बात करें, किसान, ओबीसी, SC, ST, किसी क्लास की बात करें, सबका कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है उनको कोई ना कोई इसमें फायदा मिलने वाला है। सभापति महोदय, मुझे ध्यान आ रहा है कि आरबीआई के अनुसार बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनकी अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से गुजर रही है। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को देने के लिए कहा है, ताकि छोटा किसान जो है उसको फायदा मिल सके। और इसके लिए कोऑपरेटिव स्टोर जो है वहां पर बनाए जा सके, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा सके, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को मदद मिल सके, यूनिटी मॉल बनाए जा सके। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन तरक्की कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि लालू यादव जी जब रेल मंत्री होते थे तो 2008-9 में उन्होंने 37,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और 155 किलोमीटर के करीब उन्होंने कंप्लीट किया था रेलवे ट्रैक को। और उसके बाद 8-9 में उन्होंने 350 किलोमीटर। और उसके बाद जब ममता दीदी आई तो ममता दीदी ने यह क्लियर किया कि बेस्ड ऑन द रिव्यू इट इज वेरी क्लियर that the unrealistically high targets set in the interim budget are not sustainable and warrant a mid-course correction। तो उस समय में उन्होंने क्या कहा था लालू जी ने, अभी हमारे गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा था कि गोपाल बाबू तुहार चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमने बहुत बड़ा पखाना बना दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो रेलवे मंत्री हैं, आपने पखाना कहां से बना दिए हैं? तो बोले कि अरे हमने 130 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिए, वहां पर लोटा लेकर जाओ और आप जरूरत नहीं है आपको पखाने की। ये पहले की अर्थव्यवस्था जो है, पहले का ये सोच रहती थी पहले के, आप देखिए कि मंत्रियों की। और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ घरेलू शौचालय बनाकर जिस तरह से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को इज्जत घर बख्शे हैं, मैं बहुत इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट सिटी का जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। कहने को कह देते हैं, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या किया? आज स्मार्ट गांव बनाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम कोऑपरेटिव स्टोर्स की बात करें, चाहे हम मिलेट्स के लिए बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको बनाया गया है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो हमारा गरीब किसान है उसको मदद मिलनी चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि G20 कंट्रीज के जितने भी देश के यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो लोग पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जाकर घूम रहे हैं और उनको जगह जगह मिलेट्स जो है वो परोसा जा रहा है और बहुत खुश वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो जब तक आपकी सोच ये नहीं होगी कि गांव वालों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तब तक आप कैसे। और एक बल्कि कल सवाल भी पूछा जा रहा था माननीय मंत्री जी से,
तो वो कि स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी जो बनाए जा रहे हैं, बल्कि मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूं कि स्मार्ट सिटी जो है 100 के लिए तो प्रोविजन रखा था, लेकिन आगे इंक्लूजन और कैसे होगा इसके बारे में अगर वो बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा कि क्या उसके लिए स्मार्ट सिटी का स्मार्ट होना जरूरी है, या कि प्रतिनिधि का स्मार्ट होना जरूरी है, या कि वहां के लोगों का स्मार्ट होना जरूरी है। तो ये स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये अगर वो बताएं तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं बात करना चाह रही थी माननीय सभापति महोदय कि पिछले दिनों मुझे जो है पंजाब में जाने का मौका मिला, लुधियाना में गुरुओं की धरती है, और वहां पर जिस तरह से लोग जो हैं आज की तारीख में बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में चाहे हम देखें, चाहे वहां पे अर्थव्यवस्था के मामले में हम देखें, क्योंकि मेरा जो लोकसभा है वो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और हमारी कोशिश है कि हमारे युवा नशे से दूर रहें। पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि वो ਜਿਹੜੇ मुख्यमंत्री ने वो पहले ਇੱਥੇ सांसद भी होंदे सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ पंजाब तुसी भी तुहानू भी जो मौका मिले जान दा तुसी उत्थे जाके वेखना कि इत्थे साडी बीबी बैठी सी, वो भी कह रही सी। देखिए सरकार ने जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए कहा है, अगर क्योंकि मेरा जो इलाका है वहां पर भी कॉटन बहुत ज्यादा उगता है, तो आप देखिए यहाँ पर सभापति महोदय कि उसको पीपीपी के माध्यम से वहां पर प्रोडक्शन जो है हमारी आज की तारीख में 3,50,000 से 4 लाख बेल्स होती है, और एक बेल जो है वो 170 किलोग्राम के बराबर होती है, और हमारी 1 मिलियन की जो है हमारी कंजम्पशन है। आप ये देखिए तो कम से कम भी आप अगर मान के चलें 6 लाख बेल्स जो है हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सरकार की ये कोशिश है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है पीपीपी के माध्यम से वहां पर बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े। मैं चाहती हूं बीबी हरसिमरत कौर भी सी, ਅਸੀਂ ਵੀ मेरा भी ਜਿਹੜਾ इलाका ਉੱਥੇ कॉटन बहुत ज्यादा उगदी है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ माध्यम तो मैं कहना चाहती हूं कि मेरे जी इलाके च रेलवे का बजट कितना ज्यादा बढ़ाया है, तो नरवाणा सिरसा मंडी डब वाली उत्थे रेलवे स्टेशन से आधुनिकरण का वास्ते करता है। पर मेरी कोशिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्थे भी सानू चाहिए रेलवे फैसिलिटीज। तो इहदे साथ साथ मैं कह रही हाँ माननीय सभापति महोदय कि जेडे नशे वास्ते ਆਪਾਂ कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि उत्थे जी थैंक यू धन्यवाद जी एक मिनट और चाहिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ मैं विश्वास दिलाना चाहती हाँ कि सारी जनता जिहड़ी है वो उन्हां दे नाल है। वो जदों भी कोई शुभ काम करन चलदे ने ना, वो की कह के चलदे ने कि देश शिवा वर मोह एह, शुभ कर्मण तो कब हूं न टरूं, ना डरूं अरिसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुजरात भी ऐसी जीत हासिल की है। एक मिनट के लिए अभी पिछले दिनों कांग्रेस के लोग जो है बार बार चिल्ला रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, तो मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी, अंत में सभापति महोदय, कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। इस अमृतकाल के बजट को मैं इस तरह देखता हूं, दिस इज अ बजट फॉर द पुअर बाय दिस इज अ बजट फॉर द रिच एंड बाय द रिच, एंड इट इज एंटी पुअर, एंटी अनएम्प्लॉयड, एंटी फार्मर, एंटी लेबर, एंटी एससी एसटी ओबीसी एंड एंटी माइनॉरिटी। इसलिए सर मैं यहां खड़ा हूं इसको अपोज करने के लिए। और मैं जब कह रहा हूं कि अमीरों के लिए सर 10% अमीर हिंदुस्तान की 80% दौलत पे काबिज है, और उनका जीएसटी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, और उनके लिए 37% टैक्स से घटा के 25% कर दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक है सर। और दूसरी तरफ जो गरीब हैं वो 50%, जो सबसे गरीब हैं वो 64% टैक्स देते हैं, और उनके लिए हर कटौती बढ़ती जा रही है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम 1.9 लाख हो गया है, लेकिन आसपास भूटान और बांग्लादेश का हमसे बेहतर है।
और प्रधानमंत्री जी परसों बोल रहे थे और काफी तंज ले रहे थे यूपीए गवर्नमेंट की सर, जो 10 साल में 13.1% के दर से पर कैपिटा बढ़ा था, अगर वो जारी रहता तो 1.9 लाख नहीं होके हमारा पर कैपिटा इनकम 3.9 लाख होता, जो डबल से भी ज्यादा है सर। दिस और सबसे अफसोस की बात यह है सर कि बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बिहार से लगभग 1.25 करोड़ लोग बाहर पूरे हिंदुस्तान में खट रहे हैं। अभी हमारे अलग अलग राज्यों के लोग कह रहे थे अगर वहां तरक्की है तो वो हमारे बाजुओं के वजह से है, और हम वहां इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। हमारे बिहार में क्यों नहीं योजनाएं दी जा रही हैं, पैसे क्यों नहीं दी जा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार गरीब रहे और बिहार से गरीब मजदूर पूरे मुल्क में डर डर की ठोकर खाए। इसको हम अपोज करते हैं सर। और दूसरी जो सबसे खराब बात है, जो गरीबों की बात मैं कह रहा था सर, मनरेगा में पिछले साल 89,000 करोड़ दिया गया, उसको 1/3 घटा के 60,000 करोड़ किया गया। ये बहुत ही दुखित है। और माइनॉरिटी का जब बजट हम लोग ये करें, माइनॉरिटी की आबादी सर 30 करोड़ है, 30 करोड़ 20%, जिसमें क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी भी आते हैं। मुसलमान के वजह से उनको भी खामियाजा भरना पड़ रहा है, जिसका हम अपोज करते हैं सर। माइनॉरिटी बजट 38% घटा दिया गया। स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट, उस्ताद स्कीम, नई मंजिल फॉर विमेन, प्री स्कूल स्कॉलरशिप, जामिया एएमयू का फंड घटा दिया गया। मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन सर, अभी 2 ही मिनट, फाउंडेशन प्रमोट्स एजुकेशन फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी, इसको खत्म करने के कतार पे है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि सर 72% जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ये वाकया है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या माइनॉरिटी उसमें नहीं आते हैं? जब बच्चियों की बात करते हैं कि पढ़ाओ और बचाओ बच्चियों को, तो क्या मुसलमान बच्चियां उसमें नहीं आती हैं? इसका हम विरोध करते हैं सर। अगर विश्व गुरु सही मायने में भारत को ले जाना है तो माइनॉरिटीज को और कमजोरों को, एससी एसटी सबको लेके चलना होगा, वरना वो विषी रह जाएगा। सर एक रिपोर्ट है, एक तो हमारा बजट घटाया जा रहा है, एक सीएमआरआई का रिपोर्ट है, बाय हेल्पिंग ऑफेंडर्स, डिटेनिंग विक्टिम्स, फेलिंग टू रजिस्टर एफआईआर, law enforcement agencies played a role in furthering hate crimes, mostly in BJP-led government. 221 में 209 केसेस हेट क्राइम के हुए थे, 192 मुसलमानों के खिलाफ, 95 क्रिश्चियंस के खिलाफ और 7 सिख के खिलाफ। दिस हैज टू स्टॉप। और खास करके जो टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे हेट मॉन्गरिंग करते हैं, इस पे सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। उसके अलावा मैं सर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहना चाहता हूं सर, रेलवे का बहुत फंडिंग इस बार हुआ है। किशनगंज से जलालगढ़ रेलवे को स्टार्ट होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज नहीं है सर किशनगंज में, 200 एकड़ जमीन है, वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 157 नर्सिंग कॉलेज है, उसमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए सर। आधा मिनट और सर। और ये टूरिज्म को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, कुछ सूची है मैं दे दूंगा, लेकिन अयोध्या को अगर जो टूरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है तो सीता मां की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, उसको भी ध्यान कर लेना चाहिए और उसको भी डेवलप करने की जरूरत है सर। हमारे यहाँ एकलव्य स्कूल की जरूरत है जो 700 कुछ बन रहे हैं, 740 में भी हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास में हमारे लोगों को जॉब के लिए ट्रेनिंग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका मिला। और मुझे कांग्रेसी साथी होते तो बहुत बढ़िया आता, मजा आता, और मैं फिर वो डायलॉग बोलता, सीटें बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है। अभी बजट पे जहां तक बात है, सत्ता पक्ष के लोग बढ़ा चढ़ा के पूरी उसका गुणगान करते हैं, और हम विपक्ष के लोग उसके खिलाफ ढूंढ ढूंढ के कहां से लाके बात करते हैं। ये पहली बात है आज की तारीख में। हमें समझना पड़ेगा कि देश को ऊपर लाने के लिए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने के लिए जो सही बात है वो माननी पड़ेंगी, और जो गलत बात है वो भी हमें करनी पड़ेंगी।
अभी अगर ये हम विपक्ष के लोग सरकार में कमी निकालें ताकि हम पब्लिक में मजबूत हो जाएं, उससे हट के सोचना पड़ेगा। अभी 4-5 दिन माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ढोंगी बाबा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को मजबूत करना और इनको कमजोर करना सत्ता पक्ष को, तो वास्तविकता पे जाना पड़ेगा। 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। अगर ढोंगी बाबा है तो हमने 10 साल बगैर शर्त के भारत सरकार में कांग्रेस को समर्थन दिया। हमारे 6 विधायक थे राजस्थान में, 6 के 6 को ढोंग के रास्ते तोड़ के ले गए और डाका डाल दिया। अगर ढोंगी है तो गहलोत है और मुख्यमंत्री राजस्थान का है, अगर ढोंगी बाबा है तो। साहब एक बात और कहना चाहता हूं मैं, दूसरा, अगर यहाँ पे राजस्थान में वहां पे पिछड़ों को, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, ससुराल सब आते हैं, और खास करके गुजरों को आगे रख करके राजस्थान में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया और ठग लिया। और ठग अगर कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो तीनों प्रदेशों में से कांग्रेस साफ हो जाएगी और विपक्ष कमजोर हो जाएगा। और जहां तक बात बजट की अपने क्षेत्र में मांगने की, अध्यक्ष जी आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अंग्रेजों से पहले मुगल के कार्यकाल में मेरठ का नाम देश के 4 शहरों में आता था। दिल्ली उसमें थी, आगरा भी था, मेरठ भी था उसमें, और मेरठ का नाम आता था। तो मैं चाहता हूं कि मेरठ के लोग, और मेरठ पूरा आज करीब 1200 किलोमीटर चल के इलाहाबाद जाना पड़ता है, और कोरोना के बाद बहुत केस इकट्ठे हो गए हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग तंग हैं। तो मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराई जानी चाहिए। और मेरठ से ही साहब आप आते हैं, मेरा भी एक विधानसभा है, और मेरठ से मैं भी लोकसभा लड़ाऊं। आप तो अध्यक्ष ये तो कह नहीं सकता कि आपके सामने, पर हम दोनों चुनाव लड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं, दादा बहुत डिस्टर्ब करूंगा जब तुम बोलोगे नहीं बोलने दो। मैं कहना चाहता हूं कि 2007 में जब ममता जी रेल मंत्री थी, जब से प्रस्ताव शुरू था, और कांग्रेस के कार्यकाल में भी, और मेरठ भी और बिजनौर भी, मुजफ्फरनगर भी रेलवे लाइन का, और अभी हमारे रेल मंत्री जी बिजनौर लोकसभा जहां से मैं हूं वहां के प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि रेल निकल करके वहां तक जाएगी। तो क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया, उसके बजट के लिए कुछ रखा नहीं गया। और साहब ये एक बात कह रहा हूं, वहां पे शुक्रताल है, वहां पे हस्तिनापुर है, वहां पे विदुरकुटी है, वहां पे उनके महाभारत वालों के वंशज राजा परिषदगढ़ है। तो वहां तुरंत रेल वाला जो पेंडिंग है वो कई बार मैं पहले उठा चुका हूं, वो भी उठाया जाना चाहिए। और सब जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो 370 हटने के बाद वहां के लोगों को जो आजादी मिली है, जो खुला सांस लेने का मौका मिला है, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो वहां के जो मुसलमान गुजर हैं, उनके लिए एक पैकेज होना चाहिए था, जरूर बजट रखना चाहिए था SCZ के लिए। सब खत्म कर रहा हूं बस, एकदम खत्म कर रहा हूं सब। ये एक चीज और, एक बजट में बहुत अच्छी बात आई है। दादा मैं बगैर मतलब के खिलाफ नहीं बोला, इसे ना जाएगा। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं साहब, कि इस बजट में एक बहुत अच्छी बात आई है जिसकी मैं सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं। आपसे और मुझसे भी जुड़ा हुआ है। मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, बागपत लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, नगीना लोकसभा, सबसे जुड़ा हुआ है कि फैक्ट्री मालिकों की और किसानों की एक ज्वाइंट वेंचर करने की बात रखी है। तो मैं चाहता हूं एक ऐसे बजट का प्रोविजन हो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के बहुत सारे, बस खत्म कर रहा हूं साहब, देश के बहुत सारे प्रदेशों में जहां गन्ना होता है, गन्ना किसानों का और गन्ना फैक्ट्री के मालिकों का ज्वाइंट वेंचर बने, उनके तमाम खर्चे काट करके उनका प्रॉफिट बांटा जाए, जिससे उनके लाखों करोड़ बचे हुए पेमेंट टाइम पे मिल जाए और उस पैसे पे ब्याज भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सभापति महोदय, पूरे कर लेते हैं लोग। आपने इस अमृत काल के बजट पे, अमृत काल के इस बजट पे मैं समर्थन करने खड़ा हूं। ग्रीन ग्रोथ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भरा ये बजट है। ये अमृत काल का बजट कैसे बैकग्राउंड में आया, इसको भी देखना सभापति महोदय जरूरी होता है कि जब पूरा विश्व और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ये महामारी के कारण जूझ रही थी, तब अमृत काल के बजट का फाउंडेशन डाला गया। और अमृत काल का बजट जब प्रस्तुत किया गया तो आने वाले 25 साल यानी देश के अमृत काल का पूरा मापदंड लेके
हर सेक्टर को कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर से दिया गया। फिर वो गरीब हो, जिसके कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम करती है, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में रखा गया। सर्वसमावेशक बजट होने के कारण एक तो पूरे विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर 5वें नंबर पे आने का काम भारत देश ने किया है। और इस अमृत काल में 2047 तक पूरे अमृत काल के अंदर अर्थव्यवस्था की एक अलग प्रगति की छाप इस बजट ने छोड़ी है। जिनको इस बजट से तकलीफ है, जो इस बजट पे केवल रोने का काम करते हैं, वो ये जानते हैं कि 2047 तक उन्होंने यही काम को करना है और वहीं पे उन्होंने बैठना है। इस तरफ आने का वो सपना नहीं देख पाते, क्योंकि सपने वही देखते हैं जिसको पूरा करने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है, वही इंसान सपने देख सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगाकर सतत और हमेशा पूरे देश को, सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। 2023-24 का इस बजट की सबसे खास बात है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ था और पिछले 3 साल से हर साल 33% का इंक्रीज इसके अंदर किया गया है। देश की प्रगति का सबसे बड़ा मार्ग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया है। रेलवे को 2,40,000 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया गया, जो 13-14 में केवल 26,000 करोड़ था। 9 गुना बढ़ाकर रेलवे का इस समय जो प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो टीयर 2 और टीयर 3 के सिटी जो होते हैं उसके डेवलपमेंट में भी ये पैसे का इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता के नाम पे जो सीवर लाइन है, जिसके अंदर 5 साल, पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखे तो 347 लोगों की मृत्यु केवल सीवर क्लीनिंग के नाम पे मैन होल के अंदर उतर के जो जहरीली गैस पैदा होती है उसके कारण हुई है। प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में नमस्ते योजना लाई है, जिसके कारण मैकेनाइज क्लीनिंग के द्वारा सभी शहरों के अंदर सीवर लाइन को मैकेनाइज क्लीनिंग से युक्त किया जाएगा और मशीनरी से ये सफाई होगी, जो मानवता के दृष्टि से इन वर्ग के लोगों को राहत दिलाने वाली है, जिसके कारण में ये मैकेनाइज क्लीनिंग के कारण जान भी बचेगी और स्वच्छता भी बढ़ेगी। आज हम देखेंगे कि शहर है वो शहरों का क्या हाल है। हम देखेंगे तो 2014 के बाद में जब स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी को बजट के अंदर इंक्लूड किया गया, उसके बाद में शहरों में आपसी कंपटीशन हुई। तंदुरुस्ती के कारण, स्वच्छता के कारण शहरों का आंक बढ़ा है और स्वच्छता हमको देखने मिली है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 2 टीयर सिटी, 3 टीयर सिटी भी अच्छे मापदंड के कारण अपना परफॉर्मेंस सुधार पाए हैं और सरकार भी उसके अंदर पूरी मदद कर रही है। गार्बेज सेग्रीगेशन से लगा के सभी चीजों में सरकार ने पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देने का काम किया है। रेलवे के अंदर जो प्रावधान किया गया, इसमें महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ का प्रावधान इस साल में मिला है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र को इतनी बड़ी तरतूद करके की। जो 2009 और 2014 में 5 साल यूपीए की जब सरकार चली तो औसतन 1100 करोड़ रुपया हर साल वो महाराष्ट्र को देते थे। इस बार पहली बार 13,539 करोड़ का प्रावधान ये महाराष्ट्र के लिए किया गया। आज नाना शंकर सेठ जयंती है। नाना शंकर सेठ वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुंबई शहर, ये मुंबई रेलवे की जननी, जो सबसे पहली रेलवे आई वो मुंबई में आई और नाना शंकर सेठ ने मुंबई में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। आजादी के 70 साल के बाद वो जिस गांव से थे मुरबाड़, उसको रेलवे लाइन देने का काम
इस साल के बजट में हुआ है, इस साल वो लाइन को पास किया गया। जिस तरह का प्रावधान महाराष्ट्र और मुंबई के लिए पहली बार किया गया, पिछले 2-2.5 साल से एक स्थगित सरकार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही थी। शिंदे फडणवीस जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार की ग्रोथ क्या होती है मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, कि डबल इंजन सरकार की ग्रोथ के कारण आज मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शहर को 2 वंदे भारत ट्रेन एक साथ में आज वो इनोग्रेट करने प्रधानमंत्री जी अभी वहां गए हैं मुंबई, और 2 वंदे भारत की ट्रेन दी जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का कि पिछले महीने, इस महीने के अंदर ही वो दूसरी बार मुंबई आए हैं। जब पिछली बार वो मुंबई आए तो मेट्रो के नेटवर्क में यहां पे कुछ लोग पिछले 10 दिनों से अपनी बात को रख रहे थे। दादा आप सुनिएगा, मैं बात को बताता हूं कि मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शहर में एक मेट्रो का प्रावधान 2006 में किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहली मेट्रो मुंबई को 2006 में मिली, 2006 में फाउंडेशन डाला गया, उसका उद्घाटन 2014 में हुआ, और वो भी प्राइवेट मेट्रो थी। मैं प्राइवेट मेट्रो शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि 69% शेयर उस मेट्रो का भी एक इंडस्ट्रियल हाउस के पास था। आज मोदी जी की सरकार 2014 में आई, माननीय देवेंद्र जी की सरकार महाराष्ट्र में 2014 में बनी। उस सरकार के आने के बाद में 10 मेट्रो के जाले पास हुए, 7 का काम शुरू हुआ। अगले वर्ष तक 337 किलोमीटर का जाल मेट्रो का केवल मुंबई शहर के अंदर बुना जाएगा। एक मेट्रो दी जिसके अंदर 69% भागीदारी एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस की है, वो आज एक मेट्रो देने की बात कांग्रेस और उसके सहकारी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार वहां पे करती थी। उन्होंने एक मेट्रो दी, आज पूछते हैं कि महाराष्ट्र को क्या मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। 337 किलोमीटर मेट्रो का जाल ये वहां पे बुना गया, और वो 337 किलोमीटर की मेट्रो ये मुंबई शहर के लिए देने का काम मोदी सरकार ने और फडणवीस सरकार ने किया। इन्होंने बुलेट ट्रेन को भी रोकने का काम किया। जो 508 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया, उसके स्टेशन के लिए भी जगह पिछले 2 साल में आवंटित नहीं की। मेट्रो का कार शेड हो, स्टेशन हो, अलग अलग प्रक्रिया हो, इन सभी को रोकने का काम पिछले 2.5 साल की शिवसेना की सरकार ने वहां पे किया। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने आने के शिंदे फडणवीस सरकार के आने के बाद में 2 मेट्रो का तो लोकार्पण किया है, लेकिन साथ साथ में उसी दिन में एक बहुत बड़ी बात जो वहां पे हुई, मैं यहाँ पे माननीय वित्त राज्य मंत्री बैठे, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उनके प्रयत्नों के कारण उन्होंने 4 से 5 वहां पे मीटिंगें ली, और स्वनिधि योजना के अंदर 1,20,000 फेरी वालों को वहां पे 10,000 रुपए लोन देने का काम कहीं पे हुआ, तो वो मोदी जी की सरकार आने, और ये इसकी कहानी है अध्यक्ष महोदय। ये 1,20,000 फेरी वालों की मुंबई शहर की लिस्ट को वहां के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस लिस्ट को भी रोकने का काम किया, उसको भी स्थगिति देने का काम किया था, जो शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद और माननीय वित्त राज्य मंत्री ने वहां पे मीटिंगें लेने के बाद वो 1,20,000 रेहड़ी पटरी फेरी वालों को एक बटन क्लिक में डीबीटी से पैसा देने का काम अगर कहीं पे हुआ तो वो मुंबई शहर के अंदर हुआ है। और इसकी सभी की जिसको बोलते हैं कि पूरे गरीब शोषित पीड़ित सभी अर्बन एरिया हो शहर हो, इस सभी को समावेशक बजट के अंदर कुछ न कुछ देने का प्रावधान किया गया है, और इस बजट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे पहला रेलवे स्टेशन जंक्शन बना था, उसको भी अपग्रेड करने का जो कार्यक्रम है वो भी उस दिन संपन्न हुआ था। उस स्टेशन का भी कायाकल्प होगा और उस स्टेशन के लिए भी प्रावधान किया गया। 123 रेलवे स्टेशन को इस अमृत काल के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एंटोनी जी। Thank you, Chairman. I would like to deliver my speech in. No. We have a central government. We call it Narendra Modi Sarkar. But why Maharashtra No, Sarkar please. called Third से आप एंटोनी जी प्लीज, दादा प्लीज होगा। That's enough.
ओके ओके, चलिए चलिए। Thank you, Chairman. एंटनी जी बैठिए बैठिए। I would like to deliver my speech in Malayalam, my mother कुछ tongue. रिकॉर्ड में नहीं जाएगा दादा की कुछ। हाँ चलिए ओके। मनोज जी दादा को उधर बुला लीजिए। ചെയർമാൻ, അച്ഛാ ദിൻ ആയേഗ എന്ന മനോഹരമായ മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി അധികാരത്തിൽ വന്ന മോദി സർക്കാർ 9 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അധികം ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് കൃഷിക്കാരും സാധാരണക്കാരും തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുമാണ്. ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അമൃതകാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അന്യമാണ്. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർച്ച കൊണ്ട് ജീവിതം തകർന്നടിഞ്ഞ കൃഷിക്കാർ വിലക്കയറ്റത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് വിൽക്കുന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വാണം പോലെ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാണിജ്യ വിളകളാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ നട്ടെല്ല്. റബ്ബറിന്റെ വില തകർച്ച 12 ലക്ഷം റബ്ബർ കൃഷിക്കാരെയും അവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന 40 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. വൻകിട വ്യവസായികൾ കൊള്ളലാഭവും സർക്കാർ വർദ്ധിച്ച നികുതി വരുമാനവും നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന് കണ്ണീർ മാത്രമാണ് ബാക്കി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷിക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന 15ഓളം സബ്സിഡികൾ അത് നിർത്തൽ ചെയ്തു. പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് റബ്ബർ സംഭരിച്ച് റബ്ബർ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഒരു സഹായവും അവർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. 10 വർഷം മുമ്പ് 1 കിലോ റബ്ബറിന് 240 ഉറുപ്പിക വിലയുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 130 ഉറുപ്പിക മാത്രമാണ് ഇന്ന് വില ലഭിക്കുന്നത്. ഏലം, കാപ്പി, കുരുമുളക് എല്ലാ വാണിജ്യ വിളകളും വില തകർച്ചയിലാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനം സംരക്ഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 22% 29% സംരക്ഷിത വനം സംരക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വനനിയമവും ബഫർ സോണും കൊണ്ട് മലയോര മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണ്. 947 ഗവൺമെന്റ് ഗ്രോമോർ ഫുഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിയിരുത്തിയ കൃഷിക്കാരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ, അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ, അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വനമേഖലയിൽപ്പെടുത്തി ഇന്ന് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടാനയും കാട്ടുപന്നിയും പുലിയും കടുവയും കുരങ്ങും വിഷപ്പാമ്പുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ദുസ്സഹമാകുകയാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമവും ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് അറിയണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കും. പക്ഷേ പാമ്പിനെ കൊന്നാൽ അവൻ 7 വർഷം ജയിലിൽ തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം 2 ലക്ഷം പേരെയാണ് തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചത്. 5 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ 10 ലക്ഷം ആളുകളെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചു. നിലവാരമില്ലാത്ത വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് വിതരണം ചെയ്ത് ആ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത് പേവിഷബാധ ബാധിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ മരണമടഞ്ഞു. എന്റെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറിയ ആ കുട്ടി മരിച്ച ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി. വന സംരക്ഷണത്തിനും വന്യമൃഗ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ബഡ്ജറ്റിൽ പണം വകയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ വന്യജീവി ആക്രമണം കൊണ്ട് ജീവിതം തകർന്ന മരണമടയുന്ന പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം കൂടി മാറ്റിവെക്കണം. കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സർ, കേന്ദ്ര സായുധ സേനാ വിഭാഗമായ CRPF പഴയ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളണം. സെക്ഷൻ 3(1) CRPF 2 more minutes only. സെക്ഷൻ 3(1) CRPF ആക്ട് 1949 പ്രകാരം സായുധസേനയായിട്ടാണ് CRPF രൂപം കൊണ്ടത്. സായുധസേനയെ പഴയ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ CRPFനും ഈ ആനുകൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ കർഷകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ തിരുവല്ല അമൃത് സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. 22 കോടി ഉറുപ്പികയുടെ പദ്ധതി അതിനുവേണ്ടി പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ശബരി റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി 100 കോടി ഉറുപ്പിക ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി ഉണ്ടാകണം. അത് റാന്നി, പത്തനംതിട്ട, കോന്നി വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നീട്ടി ഒരു സമാന്തര പാതയായി കേരളത്തിൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ എരുമേലി വിമാനത്താവളത്തിന് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിന് അടിയന്തരമായി വേണ്ട കേന്ദ്രാനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയും സമയം തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Dada. Thank you, Speaker, sir. The budget 2023-24 seems to be a deliberate attempt to keep several key issues of Indian poor, middle class, unemployed youths and the workers of unorganized sector unaddressed. The budget is blind and neither considered the current gloomy economic situation nor the precarious scenario like to prevail in the coming year, and failed to give direction to the economy in the long run. Sir, our Chief Minister, Honorable Talabadi M.K. Stalin, called the Union Budget 2023 a disappointing one that did not inspire the confidence among the poor and marginalized people. Sir, the people of Tamil Nadu were disappointed with the budget not having any new project announcement for Tamil Nadu and not making any allocation even for the construction of AIIMS in Madurai. மீண்டும் இந்த பட்ஜெட்ல நாங்க பேசணும்னா, ஒரு பட்ஜெட் எங்க தமிழ்நாட்டுக்கு நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்திருந்தால் அதை நாங்கள் பாராட்டி பேசியிருக்க முடியும், அல்லது நிதியை குறைத்து கொடுத்திருந்தால் அதை நாங்கள் கண்டித்து பேசியிருக்க முடியும். ஆனால் நிதியே ஒதுக்காத இந்த பட்ஜெட்டில் நாங்கள் இதை பத்தி என்ன பேசுவதுன்னு தெரியல. ஆகையால் இந்த தமிழ்நாட்டை நீங்கள் புறக்கணித்தீர்கள். இதற்கு கடுமையான கண்டனத்தை எங்கள் கட்சியின் சார்பாக இந்த அவையில் நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம். முக்கியமான சமாச்சாரமா பார்க்க வேண்டியது 100 நாள் வேலை திட்டம், அதாவது மன்ரேகா திட்டம். இந்த மன்ரேகா என்ற திட்டம், தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் அதிகமான நண்பர்கள் பேசியிருக்க காரணத்தினால் இந்த திட்டத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் கூற விரும்புகிறேன். கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம், கரண்டி பிடிக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் கரன்சி நோட்டு பிடிக்க வேண்டும். கரன்சி நோட்டு அவர் கையில் இருந்தால்தான் அவங்க சமுதாயம் முன்னேற முடியும் என்ற ஒரே காரணத்திற்கு நோக்கத்தோடு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியதான் இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம். ஆனால் அந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் கொண்டு வந்த நோக்கத்தையே இந்த அரசு மறந்திருக்கிறது. ஒரு ஜேசிபி இயந்திரமோ அல்லது ஒரு புல்டோசர் இயந்திரமோ பயன்படுத்தி இருந்தால் அந்த வேலையை சுலபமாக பண்ணியிருக்க முடியும். ஆனால் அதை தவிர்த்து பெண்களுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்தை கடந்த அரசுகள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தை இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். ஆகையால் இந்த அரசு குறைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தொகையினை ஏற்றி 2,70,70,000 கோடி ரூபாய் மீண்டும் ஒதுக்கி கொடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் முழுமை அடையும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விவசாயிகளை பொறுத்தவரை இந்த அரசு எப்பொழுதுமே வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. விவசாயிகளுடைய லாபத்தை அதிகப்படுத்துவேன் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அரசு, ஆனால் விவசாயிகள் தற்கொலை தான் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. இதை நீங்களே கண்கூடாக பார்க்கலாம். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி விவசாயிகளை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஆட்சி. ஒரு பட்ஜெட்டை போடும்போது விவசாயிகளுக்கு என்ன நன்மைகள் கொண்டு வர முடியும் என்பதை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். முதலாக இந்தியாவிலேயே விவசாயிகளுக்காக இலவச மின்சாரத்தை கொண்டு வந்து இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டிய அரசு எங்கள் திராவிட முன்னேற்றக்கூடிய அரசு. ஆனால் இந்த அரசு அதை தவறிவிட்டது. ஆனால் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், an important point I want to stress in this August House. Sir, our Jawans are fighting in the border to save this nation. But after these Jawans retire from their service, when they come back home, they need medical attention. But this government has not even paid the bills for those hospitalized people. And still the Jawans are running here and there. When the Jawans or the family go to the hospital to take care of their medication, the hospitals neglect them and don't even care to admit them. Therefore, this August House, through the Speaker, I want to tell this government that please pay the medical bill so that when the Jawans go to the hospital medication, they have to be definitely accorded for. And to my constituency, I have to ask, every time during the budget session, ask for a Kendriya Vidyalaya. The land has been allotted by the Tamil Nadu government in my constituency, Vellore constituency, but not even a single rupee has been allocated to develop the school. Another point, one more, last point. Again and again, each and every time I speak in this August House, I ask only for one project. That is LC81, a level crossing bridge in Vanibadi constituency, but it has been neglected again and again. Through the finance minister, I request in this budget to include a level crossing which will save time and energy so that a lot of people will be benefited.
And last point, only one important point I want to conclude with that. Sir, you have been boasting, saying that my Prime Minister is a number one Prime Minister. Number one Prime Minister. Sir, but recent article in India Today, there is a statistics saying that last year there was a statistic. They said M.K. Stalin, Tamil Nadu Chief Minister, is a number one Chief Minister. They asked him. He said, I am not happy that I am becoming the number one Chief Minister. I will be happy only when my Tamil Nadu becomes the number one state in India. Now, this year, the same India Times have released the new statistics where they have declared that Tamil Nadu is the number one state in India. We are happy, and similarly, entire world should call India a number one. Only then we should be happy. I conclude with this. Thank you very much. धन्यवाद सभापति महोदया। और कृपा पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा दया कीजिए। आप ममतामयी माँ हैं, हम लोग आखिरी वालों को थोड़ा सा कटौती करते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। शुरू करिए। माननीय सभापति महोदया, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, दुर्ग लोकसभा के मेरे देवतुल्य मतदाता भाइयों बहनों ने सबसे पहले 17वीं लोकसभा के पहले बजट 19-20 में भी बोलने का अवसर मुझे मिला था और अंतिम पूर्ण बजट में भी आज बोलने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज पता नहीं क्यों हमारे इधर के विपक्ष के साथियों को माननीय मोदी जी का डर और भय सदा सताते रहती है। ऐसा लगता है सपने में भी ये लोग मोदी जी को ही देखते होंगे, क्योंकि धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और पता नहीं कल क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने, मगर जनता जान रही है। और इसलिए भी कि साल दर साल जो बजट में निखार आ रहा है और हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल का ये देश बनते जा रहा है। जिस तरह भारतवर्ष की जनता ने 2014 में जनादेश दिया, इस विश्वास के साथ कि हम गुजरात मॉडल में इस देश को ले जाएंगे और अपनी मेहनत के बल पर जिस तरह माननीय मोदी जी ने सरकार चलाई गुजरात में और पूरे देश में नंबर 1 राज्य का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया, और वही स्वरूप इस देश के लिए देखना चाह रहे थे। और आज गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा कि 10वें पायदान में 2014 में थे, आज हम सब इस देश के विकासशील जो देश हैं उनके समकक्ष आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के बारे में भी कुछ कहूं, क्योंकि उनकी मेहनत, आदरणीय कराड़ जी यहां बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि मैंने उस समय भी कहा था पहले बजट में कि उनके नाम के अनुरूप ये बजट है। ये निर्मल भी है, रमणीक भी है और सीता मैया की ममता की छाप भी इस बजट में है। और खासकर गरीबों के लिए जो अनेक योजनाएं बनी हैं वो तारीफे काबिल है। इसलिए मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन करते हुए मैं सभी से चाहूंगा कि सर्वसम्मति से इस बजट को हम सब पास करें। माननीय महोदया, इस बजट में सभी वर्गों ने अपने आप को पाया है। सबने इसमें महसूस किया है कि सबके लाभ के लिए बजट बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह भारत देश समृद्ध हुआ है, समर्थ हुआ है, साहसिक हुआ है, संगठित हुआ है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग पूरे देश में अपनी आभा बिखेर रही है। पता नहीं ये लोग 3D चश्मा पहने हुए हैं कि काला चश्मा, क्योंकि जो बारीकियां हैं, जो अच्छाई हैं, इनको दिखता ही नहीं। और क्यों ये लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये समालोचक बने ताकि जनता भी इनके ऊपर कुछ सहानुभूति रखे। अभी
2 दिन पहले हमारी एक तृणमूल की सांसद बहन, जो होली में हम लोग मूर्ख सम्मेलन करते उसमें टोपी पहनते हैं, वो लेकर आई थी और खुद ही पहन रही थी, क्योंकि हम लोग टोपी पहनाने की परंपरा, जो सम्मेलन होता है कवि सम्मेलन, मूर्ख का कवि सम्मेलन, तो खुद पहनते हैं। हम लोग मूर्ख के मुख्य अतिथि को ही उसमें पहनाते हैं। ये लोग खुद ही पहन रहे थे, अब इनके बारे में हम क्या सोचें। आज मैं ये भी कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि कल जब इनकी सरकार थी 10 साल पहले, तब विश्व में हमारे देश की क्या हालत थी। हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जब अनेक देश में जाते थे तो वो सम्मान हमको नहीं मिल पाता था। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की ये हालत थी, तो सामान्य नागरिक की क्या हालत होगी ये हम सोच सकते हैं, और हमने देखा भी है। मगर मोदी जी ने इन 9 साल में जो प्रतिष्ठा इस भारतवर्ष की बढ़ाई है, इस भारतवर्ष के अनेक महापुरुषों ने आजादी इसलिए दिलाई कि हमारा देश फिर से सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, और उस बात को सत्य साबित माननीय मोदी जी ने अपने मेहनत और लगन के बल पर की है, और वो स्वरूप दिख रहा है। आज पूरे विश्व में मान सम्मान के साथ हमारे मोदी जी को सम्मान मिलता है, और ये एक नागरिक भी अगर भारतवर्ष का कहीं जाए तो उनको भी वो सम्मान मिलता है जिसकी अपेक्षा हम भारतवासी हमेशा करते रहते हैं। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है। आज मैं कुछ बातें गरीबों के लिए भी कह दूं, क्योंकि मैं उसी को कोट करते हुए आज माननीय महोदया, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उनके सोच के लिए मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, कि गरीब कैदी के लिए भी इसमें सम्मानजनक इस योजना में उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे बहुत से गरीब कैदी जो अदालत से जुर्माने की राशि नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए भी व्यवस्था इस बजट में की है। मतलब कैदियों के बारे में सोचना किसी ने आज तक नहीं सोचा, लेकिन उस बारीकी को भी समझे और उस सम्मान की राशि देने की बात कही। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहूंगा। लगभग इस बजट में 66% की राशि बढ़ गई और 79,000 करोड़ का बड़ा बजट है। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्गति है प्रधानमंत्री आवास योजना की। लगभग 16 लाख हमारे गरीब परिवारों को, पात्र परिवारों को वहां वंचित कर दिया गया, वहां की कांग्रेस की सरकार के माध्यम से। छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा था, छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा है, और छत्तीसगढ़ में शराब। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम बोलेगी तो 7 मिनट हो गया आपका। वहां पर नशे की गोलियां बिक रही है, नशा का अड्डा बन चुका है छत्तीसगढ़। भ्रष्टाचार के आए दिन मामले आ रहे हैं। ईडी का जब छापा पड़ रहा है तो बहुत से अधिकारी लाइन लगे हैं, बहुत से कांग्रेसी लाइन लगे हैं, और वो आरोप डालते हैं हमारे केंद्र सरकार के ऊपर। ऐसी सरकार है। वहां पर जो हमको अनाज मिलता है 80 करोड़ जनता को, उसको भी वो लोग छिपाते हैं और अपने कोटे की अनाज बताकर वो लोग उसमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जी मैडम, आप पूरा 3 मिनट टाइम तो मैं, अरे 1 मिनट कर दीजिए, मैं 1 मिनट में ही बोल दूंगा। आज ठीक है, अच्छी बात। थैंक यू मैडम। मैं इस बिल के सपोर्ट में भी खड़ा हुआ हूँ और डेड अगेंस्ट भी हूँ, क्योंकि इस बिल में अगर कुछ अच्छी चीजें आई है और यकीनन आई है तो उसकी हम क्यों मुखालफत करें, देश की भलाई के लिए। लेकिन अगर बुरी चीजें आई है, सर माइनॉरिटी इस मुल्क का पूरा एक हिस्सा है, और आजादी में हमारे बाप दादा ने कोई कमी नहीं की जी। एक बदन के आधे हिस्से को आप बीमार बना लेंगे और उसको पैरालाइज कर देंगे तो मुल्क लेके आप नहीं चल सकते। बदन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको आईसीयू में डालना पड़ेगा, इंटेंसिव केयर में डालना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा।
इसलिए ये जो माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हुई है, आपने मुबारकबादी के लिए, इलेक्शन को बाकी रखने के लिए आपने अच्छा किया, बहुत अच्छे स्कीम लाई। लेकिन अब पहले 1 साल का बजट आता था, अब 25-25 साल का बजट आता है। एक शायर ने कहा था, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तेरी जुल्फ जब तक लंबी होगी मैं तो मर के कब्र में भी चला जाऊंगा। तो ये कहना है कि इसको 48 साल का वादा ना करें, 1 साल का वादा करें और उसको पूरा करके दिखाएं। हर साल बताए कि हमने ये कहा था, हमने ये पूरा करके दिखाया, हमने ये कहा था, हमने ये पूरा करके दिखाया। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डॉलर मिनिस्ट्री के लिए फंड में इजाफा किया। उम्मीद है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी ख्याल रखेंगे। इसी तरीके से हम सराहना करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की कि उन्होंने आम लोगों के टैक्स में 5 लोगों की 5 लाख की जगह अब 7 लाख कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महंगाई के मुतालिक बजट में कोई बात नहीं आई। महंगाई जो पूरे मुल्क की कमर तोड़ दी सर। मैडम, इसके बारे में सर कुछ सोचना चाहिए, पूरी मिनिस्ट्री को सर जोड़ के सोचना चाहिए। मुल्क कहाँ जा रहा है? गरीबों का जीना दुभर हो गया, 2 वक्त की रोजी नहीं करा सकते, आमदनी बढ़ नहीं रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस तरफ से उनके लिए नौकरियां नहीं दे रही है। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई। मैडम, ये यहाँ बोला जाता है बहुत नौकरियां निकाल रहे हैं, क्या नौकरियां निकाल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान के सर में अगर उसको देखा जाए, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4, पूरा मुल्क मिला के कि हमने इतना 1000 कर दिया, इससे कुछ नहीं होता सर। सर, इलेक्शन सामने आने वाले हैं, इसलिए अभी भी 1 बरस है, आप लोग तैयारी करें, ये हमारा मशवरा है। माइनॉरिटीज का जो हमारा फंड था उसको अभी आपने खत्म कर दिया, ना के बराबर कर दिया। 6-7 माइनॉरिटी सर, खाली मुसलमान नहीं है। आप चलिए हमसे दुश्मनी करिए, लेकिन बेचारे पारसी भाइयों के साथ तो इंसाफ करिए, दूसरे माइनॉरिटीज के लोगों के साथ इंसाफ करिए। हम तो अपना जी लेंगे जैसे भी जीना है। हमारे एजुकेशन के लिए मोदी जी ने कहा 1 हाथ में कुरान देंगे, 1 हाथ में लैपटॉप देंगे, लेकिन आज स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है, उनके वजीफे बंद किए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में मुसलमान जाने नहीं दिया जा रहा है। कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा? मैं मोदी जी को याद दिलाता हूं कि आपके आने के बाद हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई थी कि आप माइनॉरिटी के कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है हमारे आसाम में फ्लड और इरोशन से हजारों नहीं लाखों लोग अब बेघर हो गए, खास करके जोलेश्वर में और खास करके ग्वालपाड़ा में और धुबड़ी में, फकीरगंज में। उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। Chairman, for giving me the opportunity to speak on the budget 2023. Madam, I'll be very specific. I have just 4 points to make, and one of the most important ones in my district of Srikakulam, I have BRR Vamsadhara project, madam, which is the major irrigation project in my district, which was constructed in 1977, and the left main canal of this project, which covers most of the Srikakulam district, runs off for 104 kilometers and covers an eye cut of 1.48 lakh acres, madam, in 12 mandals. However, over the years, due to various reasons, it's not able to function at its full potential, and some of the reasons are the current carrying capacity, madam, has been reduced to 1930 cusecs instead of its designed capacity of 2,480 cusecs. And also, madam, because of the stone masonry constructions which have happened long back, there are a lot of damages and distorted canal sections and also leakages of water that is happening, madam. And also, additionally, 22 lift irrigation schemes were constructed, madam, to irrigate 28,000 acres. And additionally, Srikakulam is a coastal district which is prone to cyclones. Hudud, Neelam, Failin, Titli, Fani. In the last 1 decade, madam, we were hit with very heavy cyclones, which is why I request the central government to take up the modernization of left main canal, madam, which is under the support for irrigation modernization program, SIMP program, which is an initiative by the Central Works Commission, which gets funds from the Asian Development Bank, madam. The most important thing about this project, madam, it is named after BRR Boddepalli Rajagopal Rao, who was 6-time MP from this very constituency which I am representing today, madam. And on 12th of March,
we'll be completing 100 years of his birth, madam. In tribute to his service to the public, I request the central government to take up this project, madam. On top of this, there is Punduru Khadi, madam, which is the finest quality of Khadi that you can get in this country. Very historic, very finest. Even Gandhiji used to promote this Khadi. And for this, in 2021 National Handlooms Day, Sita Ramaji has visited my constituency and she has interacted with the weavers also. And she has promised certain things. There has been a little bit push with the help of the lead bank in the district also. They have been able to push certain kind of loans. But I request that more, there is a lot of potential, madam. Please increase the number of banks in that facility. Increase the banking facilities. Increase the number of melas that you are organizing there, at least one per month, so that you can identify more weavers and give more loans to them, madam. Take it under Stand Up India, madam. Take it under PM EGP, Employment Generation Programs. So there is a lot of potential. I request the central government to take it up much more seriously than the activities that are happening right now. And also there is a request to put it under the Spurti scheme, madam. Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries, and to recognize it as a heritage textile cluster, which will improve the basic standards of living of the weavers who have been dependent on this handicraft for generations, madam. On top of this, last point, I'll just complete, madam, in a minute. The Life Insurance Corporation of India has more than 13.5 lakh insurance agents who are essential in bringing the insurance to the common man, to the grassroots level. And they are the reason why LIC commands a lion's share, which is 67.2% in the life insurance market. Unfortunately, the Insurance Regulatory and Development Authority, IRDAI, just 1 minute, I'll finish, came out with a draft proposal recently, which will discourage LIC agents and drive them out of this sector, madam. This is hurting not just the LIC agents, but also the policy holders, which is majority of India, madam. Hence, I request for withdrawal of the proposed reduction on the first year commission and for the withdrawal of proposal to merge individual agent rewards with commission. Additionally, I request that a minimal renewal commission be fixed at a benchmark of 7.5% and that the payment of additional commission for the policies in force for 5, 10, 15 years to be extended to 20, 25 years. 30 seconds, I'm finishing. Apart from this, there is a need to enhance the social security for the LIC agents also, madam. There is always the feel they will bring all the revenue to the LIC. They do deserve to have better social security, and they have been requesting resolution on issues pending with the Finance Ministry in terms of term insurance for LIC agents, enhancing gratuity for LIC agents from 3 to 5 lakhs, retrospective payment of commission after reinstatement, and it also requested to set up a welfare fund for insurance agents, madam. To resolve these long pending issues, I request the Finance Minister to be the nodal minister and also speak with the LIC officials and also the LIC Agents Federation and settle all these issues once and for all, madam. And lastly, for policy holders, ma'am, 5 seconds, I'm done. Lastly, for policy holders, there is a need to increase the rate of bonus for the policy holders, madam, to reduce the interest collected on all kinds of loans availed by the policy makers to 1% more than the bonus that is declared. With these points, I complete my speech, man. Thank you very much for the time provided. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस बजट में का समर्थन करते हुए आजादी के बाद भारत में मोदी जी की पहली सी सरकार ने जिस देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। किसी भी गांव, शहर, प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इस बजट में 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखा गया माननीय सभापति महोदय, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का री इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो उसका प्रभाव 2.5 गुना पड़ता है। अर्थात 10 लाख करोड़ का सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में 25 लाख करोड़ का होगा। ये है मोदी जी की सोच। माननीय सभापति महोदय, कैपिटल खर्च की बात करें तो राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। मोदी सरकार राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोदी सरकार ने न केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बल्कि उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया, केदारनाथ में मंदिर का विकास किया। यही नहीं, भारत के कण कण में बसने वाले भगवान राम के विशाल मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। यदि हम बात करें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल की भी स्थापना की है। यही नहीं, हर जिले में मेडिकल अस्पताल और हर जिले में मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ इस बजट में हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है और मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ाई गई है। अगर फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जहां पहले विदेशों से हम दवाई मंगाते थे, छोटी छोटी दवाइयां, आज ये स्थिति हो गई कि हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है माध्यम मोदी सरकार का बजट। यही नहीं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट लगते हैं, पहले हम
अन्य देशों पे निर्भर किया हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी है कि हम अब इक्विपमेंट खुद बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा, इस बजट में यूनिटी मॉल का प्रावधान किया गया है। हर राज्य की अपनी वस्तुएं हैं और खास करके शिल्पकारों को बिक्री के लिए एक अच्छी सुविधा हर राज्य को दी गई है, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, स्वच्छता की बात करें, अगर एक समय था जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात की थी तो हमारे विपक्षी लोग हंस रहे थे। मैं इंदौर से आता हूं और उस समय मैं भाई पार्षद के रूप में काम करता था। मैंने इंदौर का उदाहरण बता रहा हूं। इंदौर में सभी पूरे गली मोहल्ले में कचरा फैला करता था, जानवर उस कचरे के ढेर के आसपास हुआ करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और इंदौर की देवतुल्य जनता ने मिलकर लगातार 6 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड माननीय मोदी जी के आह्वान पर दिया। पूरे विश्व में इंदौर का नाम इज्जत और गर्व साथ लिया जाता है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, आह्वान और हमारे देवतुल्य इंदौर की जनता को जाता है। माननीय सभापति महोदय, इस स्वच्छता के कारण जो एक सर्वे आया था कि इंदौर में बीमारियां कम हुई है, दवाइयों की बिक्री कम हुई है, यही नहीं कचरे से कंचन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, गोबर धन के माध्यम से सीएनजी का उत्पादन एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे इंदौर में ही लगा है। इससे और इसके साथ कार्बन क्रेडिट जो है उससे 10 करोड़ रुपए हम इंदौर नगर निगम में कमा रहे हैं। पोल्यूशन कम हुआ, एयर क्वालिटी अच्छी हुई है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्रीन एनर्जी के उसमें ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड आने वाले दिनों में नगर निगम लॉन्च करिए, जो देश का पहला नगर निगम होगा। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में मध्य प्रदेश को भरपूर राशि मिली है और हमारे इंदौर को 1800 करोड़ रुपए मिले, नए रेलवे स्टेशन के लिए मिले, रीडेवलपमेंट के लिए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंदौर से वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों की जो मांग की गई है उसको शीघ्र पूरा करें। यही नहीं, अगर हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसमें भरपूर राशि मिली गई है और हमारे इंदौर में 5500 करोड़ के काम चल रहे हैं। फिर भी मैं माननीय रेल सड़क मंत्री से ये निवेदन करूंगा कि हमारे इंदौर में पश्चिम बाईपास और आउटर रिंग रोड होना चाहिए और केबल कार भी होनी चाहिए। एयरपोर्ट की बात करें, आजादी के बाद 70 में जितने एयरपोर्ट नहीं बने उतने 9 वर्षों में बने और 50 एयरपोर्ट का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए। वो आह्वान जो है हम देख रहे हैं कि हमारे गांव के लोग भी आजकल हवाई जहाज में घूम रहे हैं। मैं एयरपोर्ट के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट तो उड़ती है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। और अंत में मैं मां अहिल्या की नगरी से आता हूं, अंत में मैं मां अहिल्या की नगरी से आता हूं। जिस प्रकार हर समय माता अहिल्या के शासन में कोई भूखा नहीं सोता था, उसी प्रकार कोविड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कोई भूखा न सोया। मां अहिल्या हमेशा गरीब, वंचित व शोषित का उत्थान करती थी, उसी प्रकार माननीय मोदी जी भी उसी प्रकार उत्थान कर रहे हैं। कर्म ही जिसकी पूजा है, इससे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमृतकाल का आने वाले वर्षों में राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाएगा। On the speech given by the Honorable Prime Minister on the other day over here. He has mentioned that the UPA government was policy paralysis. I would say that all the best decisions in the country taken so far is by UPA 1 and UPA 2. For example, right to information, right to education, right to food, right to compensation for land, and all other rights are ensured through the Constitution has been transferred to the people only by UPA government. On the contrary, what the BJP government has done, mark your decisions what you have taken. All your decisions are distortions and it is disastrous. For example, demonetization is one of the worst decisions ever in the country taken. Not only in India, throughout the country, in the world, it is one of the worst decisions to destroy the democracy of the country. GST is so badly is being implemented. Agriculture bills, you yourself felt ashamed of it and I have withdrawn it. Why you have withdrawn the agricultural bills when you consider its fate? Because it is a useless bill to make the farmers slaves in this country. And then new education policy is divide the students and to discourage the students and to spoil the advancement of the students. Your Agnivir is to destroy the future of young people who are to be trained in armed
services and they are thrown it on the road and he will become a terrorist in the future. That is your Agniveer. The India prospering in your opinion is 100 rupees liter petrol it has crossed already. And the LPG is 1,200 crores. Core sector growth is less than 0.1%. Global hunger, you are 107 in 121 countries. Gender gap, it is a shame that in gender gap we are at 143 place out of 146 countries. And in human development index, again it is, madam, not even 2 minutes. But please, you should allow me, madam. Allow me, madam. Madam, every indicators about the performance of our country is put up on a very bad show. Employment, where are you? In the last ever this much of an employment, 8.3% is the employment. Household saving is less than 4%, which is the 45 years less. And in Ekaleva schools, half of them have no teachers. And in demonetization, this is the largest scam ever designed, implemented to swindle 15.3 lakh crores. Only 11, you said black money, you are going to take back. Madam, only 1 minute. And BJP government is anti-farmers. I am telling all agricultural headings, take the budget and see. All that for agricultural people are reduced. Because you are angry that the Prime Minister was not allowed to enter into... प्लीज बैठ जाइए प्लीज शुरू करिए थैंक यू मैडम, आपने मुझे 4 मिनट टाइम दिए, 4 मिनट। आप चलो ना, बोलिए, बहुत लंबी लिस्ट है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, ये जो बजट है आदिवासी के लिए, जो एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हो, ये हो थोड़ा फोकस के अच्छा है। मेरा क्षेत्र में 2020 में एक बीटीआर रिकॉर्ड हुआ था, उसमें एक 6.3 में रिकॉर्ड में लिखा था बीटीआर में जितना नॉन प्रोविंशियल स्कूल है, कॉलेज है, उसको प्रोविंशियलाइज करेगा। और इसके तहत मुझे मांग है जितना स्कूल है, चाहे बोडो मीडियम हो चाहे असमिस मीडियम, क्योंकि मैडम मेरा क्षेत्र का लगभग बीटीसी का 80% के आसपास लोग असमिस मीडियम पढ़ते हैं, तो दोनों मीडियम को होना चाहिए। और उधर में एक कॉलेज है, थमना आंचलिक डिग्री कॉलेज, असम गवर्नमेंट ने लगभग 10 कॉलेज को प्रोविंशियलाइज करने का था, लेकिन पूरा बीटीआर में 16 कॉलेजेस है, इसलिए थमना डिग्री कॉलेज के साथ साथ ऑल 16 कॉलेज को मेरा मांग है मैडम उसको प्रोविंशियलाइज करना चाहिए। और मैडम, जो हमारे क्षेत्र में मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और बुद्धिस्ट हो, बहुत सारा माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज का जो कटौती करने का जो बजट में, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और मैडम, बीटीआर रिकॉर्ड में 3.1 क्लोज में और एक बात था, क्योंकि ये पीस रिकॉर्ड था। असम का लोग सोचता था बीटीआर रिकॉर्ड से बोडोलैंड का जो मूवमेंट वो सदियों के लिए खत्म हो जाएगा। उसमें एक प्रावधान था जो नॉन बोडोस का मेजोरिटी विलेज उसको एक्सक्लूड करेंगे, और जो बोडोस का या ट्राइब्स का और भी गांव इंक्लूड करने का था। लेकिन मैडम बीच में असम गवर्नमेंट ने ये कमीशन को छोड़ के अपने आप से कुछ डिसीजन लिया है। मेरा मांग है ये कमीशन का रिपोर्ट जल्दी होना चाहिए और एग्रीमेंट में जो था इसी मुताबिक काम होना चाहिए। और मैडम, मुझे पहली बार बजट में बोलने का मौका दीजिए, 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। और मेरा हमारा असम में लगभग 10 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल सैंक्शन हुआ है। 2 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। मेरा वही उम्मीद है जो ये हो गया है, कम से कम 2 साल के अंदर उसमें पढ़ाई शुरू करना चाहिए। और मेरा क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल स्कूल में डेटा में दिखाता है जो स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन वह 12वीं तक लगभग एग्जाम खत्म होकर लड़का लोग निकल गया है। ये सुधार होना चाहिए मैडम। ये थोड़ा दिक्कत होने से
हमको अच्छा नहीं लगा। और मेरा हमारा असम का और एक इश्यू है, यहाँ बहुत सारा स्कूल है जो प्रोविंशियल नहीं था, तो असम गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया था, उधर का जो टीचर है उसको ट्यूटर बनकर 10,000 रुपया महीना देगा। लेकिन ये बेचारा 20-25 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, उसका स्कूल भी तो प्रोविंशियल नहीं हुआ, 10,000 रुपये से उसको होने वाला नहीं है। तो मैडम मुझे लगता है ये स्कूल कम से कम प्रोविंशियल करना चाहिए। और साथ ही साथ कॉन्टेक्चुअल टीचर है उसको ही परमानेंट किया जाना चाहिए। और जाते हैं तो सर मैडम, हमारा एक छत्तीसगढ़ का मामले में बहुत लोगों ने, मैडम जस्ट एक मिनट मैडम, वहीं पे लगभग 5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी है जो सोशल सिक्योरिटी का कुछ भी उसको ये नहीं मिलता है। तो मेरा मांग है सेंट्रल से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का ये है, उसको कम से कम उसका परमानेंट है। लास्ट मैडम एक मैडम, एक हसदेव जो कोयला जो खनी है। नमस्कार मैडम, जस्ट मैडम 1 मिनट, जस्ट मैडम, फर्स्ट टाइम हमने बोलने का। नमस्कार चेयरमैन मैडम, जस्ट एक मिनट मैडम, 1 मिनट ओनली मैडम, अलाउ मी फॉर द स्पीच ऑन बजट। मेरा आज सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही इसरो ने बाहुबली का महाकाशयान छोड़े हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये बजट के ऊपर हमारा निर्मला सीतारमण जी जो बजट किया है, इसका ऊपर बोल रहे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। क्या यहां पे जो सांसद मुस्लिम वाले बैठते हैं वो वैक्सीन का टाइम, कोविड का टाइम टीका नहीं लिया? क्या वो वहां पे कोई प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम बात किया है? नहीं किया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो एमएसएमई में, कहां पर भी हिंदू मुस्लिम का भाग हुआ है? नहीं है। लेकिन कांग्रेस वालों और हमारा विरोधी पक्ष का जितने सारे पार्टी है, वो लोग सब सोचते हैं जमींदार का बेटा जमींदार होगा, राजा का बेटा राजा होगा और प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा। ये क्या सिस्टम है? नहीं चलेगा भाई साहब। ये प्रधानमंत्री जी का अमृत काल में देश आगे जा रहा है, कोई राजा का बेटा राजा नहीं है, कोई भतीजे का काम नहीं चलेगा। यहाँ पे स्वच्छ भारत, विकास भारत सबसे काम चलेगा। कांग्रेस वालों ने 9 साल में 9 स्कैम किए थे, आप लोग जानते हैं, कोयला से लेके 2G से लेके, और उनसे सब बड़े बड़े बात कर रहा है। मैंने बोलेंगे मैडम, हमारा पश्चिम बंगाल में 76,000 करोड़ ये पश्चिम बंगाल के लिए निर्मला जी ने प्रावधान किया है। आज हमारा पश्चिम बंगाल में इतने सारे काम हुआ। मेरा बिष्णुपुर लोकसभा में आज NH60 रोड का ओवरब्रिज, आज 116 है खड़गपुर टू मोसाग्राम नया हाईवे, मैनापुर टू कमारपुकुर में, और नया रेल के लिए भी 101 करोड़ रुपया दिया। आज जितने सारे मंदिर भी हो रहा है। आज আমার মাতৃভূমি বাংলা তো কিছু বলতে হবে, কারণ এখানে তৃণমূল কংগ্রেস বলছিল যে বাংলার জন্য কিছুই করছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র কিছুই না করলে বলছে রাজ্য দিচ্ছে না, কেন্দ্র দিচ্ছে না। আজকে লজ্জা লাগে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলার আবাস যোজনা করে এই প্রকল্পটা চুরি করেছিলেন। কারণ চুরি করা ওদের নেশা, চুরি করা ওদের পেশা। তাই পশ্চিমবাংলায় এই তৃণমূল কংগ্রেস, পশ্চিমবাংলায় সরকার চুরিটাই তাদের প্রাধান্য দেয়। আমরা কলকাতা মেট্রোর জন্য 1,000 কোটি টাকা দিয়েছি, ফারাক্কা ব্রিজ প্রকল্পের জন্য 55 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা বাজেটে প্রায় 76,000 কোটি টাকা, 76,000 কোটি টাকা আমরা এই কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদীজি ঈশ্বর হয়ে আপনাদেরকে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও বলবো আপনারা হচ্ছেন নিজেরা শুধু পিছিয়ে যাওয়ার জন্য, বাংলাকে পিছিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন। আজকে পশ্চিম বাংলায় एजुकेशन स्कैम क्या कितनी बड़ी अच्छे। मैं बंगाल से आते थे, रविंद्रनाथ का बंगाल। आज क्या हो रहा है? आज बंगाल में शिक्षा मंत्री जेल में है। आज सौगत राय जी हमारा सीनियर एमपी है, वो क्या बोल रहे? पर्सनल में अटैक किया। मैडम मेरे सिर्फ 2 मिनट हुआ है, नहीं मेरा 8 मिनट में एलोटेड है मैडम। तो मेरा सौगत राय जी, हम बोलेंगे आप हमारा इतना बुजुर्ग है, इतना एजेड है, आप आपका नारोदा स्कैम में फंस चुका है, पैसा ले रहे। हम कोई नहीं झूठा नहीं बोल रहे। आप देखिए हम कोई झूठा नहीं बोल रहे। हम से वही बोलेंगे
जिसका इतना उम्र में एक डॉक्टर प्रोफेसर होने के बाद जो पैसा ले रहा है, पश्चिम बंगाल में अपना भतीजा केलेंकारी चल रहा है। कोल स्कीम में चलिए, आवास घोटाला में यहाँ पे प्रधानमंत्री भेज दे है और वहां पे चोरी करने के लिए बैठा है। बस जितने सारे मंत्री है सब चोर चोर कह रहे थे। आज पश्चिम बंगाल में कोई भी नया स्कीम नहीं है, सिर्फ एक स्कीम है, चोरी करना। चोरी करो और भतीजा को दो, चोरी करो सब कुछ करो। आज वही बोलेंगे। हमारा जो पश्चिम बंगाल में इतने सारे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो रहा है, ये गरीबों के लिए, लेकिन वहां पे भी काटमानी चलते हैं मैडम। और वही बोलेंगे धूर्त तो सियाल, तृणमूल कांग्रेस अच्छे धूर्त तो सियाल और उन्हें मुख्यमंत्री धूर्त तो। Madam, budget is always a financial statement and also the policy declaration of the present government. In that aspect, this government failed to address the real problems of this country, madam. Madam, the budget has also failed to address the problem of stagflation, unemployment and price rise. The petrol and diesel price have skyrocketed and it is in the maximum level. The common man, marginalized people and minority people, they are suffering a lot by the wrong policies of this government. Madam, in the fund cut short policy of this government, that means the decreasement rate of fund allocation for Manrega, it is an open challenge to the poor people of this country. And what is happening in Minority Affairs Department, the fund allocation of the last budget, that means the present budget document shows it clearly. Last budget estimate was 5,020 crores. But as per the revised estimate, 2,612 crore rupees only been expended by this government. And in the same time, the Maulana Azad scholarship has taken away. Any justification you have? That means the Maulana Azad scholarship is benefited to the thousands of minority people of this country. But without any reason, this government taken away that scholarship. It should be restored. And Madam, I would like to point out, Ministry of Environment and Forest, the present budget allocated 3,721 crore rupees as the allocation. But it should be enhanced because I am coming from the area that which our farmers are suffering due to the human-animal conflict. This has to be sorted out. Human-animal conflict means last 10 years in my constituency alone, more than 65 people have been killed by the wild animal attacks. Last week, one forest watcher, Shaktivel, have been killed by elephant attack. And the state government not doing anything because they are having the financial constraints. Only the central government has to do something. For that, I am requesting here, this fund should be enhanced. Precautionary measures is very much necessary. It is affecting the livelihood of the people and the wild elephants and animals. They are coming regularly and attacking the people and they are killing the people and they are destroying everything. The shops, the households, everything they are destroying. That problem has to be sorted out. For that, the fund should be enhanced. And the very important point I would like to highlight here, this government glorified the mega development works. We are not against that. But at the same time, in the case of National Highway Development in Kerala, the promised announcements, this government promised and committed more than 12 cases there. That project should be initiated this time. More than 12 national highway projects. In my constituency, there is a Parani Sabarimala project. It is the temple-to-temple connection road. Parani is situated in Tamil Nadu, and from Tamil Nadu to Kerala, through my constituency, this project should be started, madam. And also, Vijayapura Mundagal, 2 minutes. Vijayapura Mundagal project also initiated by this time. And the very important project, Angamali Sabari Railway. We are grateful to this government, 100 crore rupees allotted, but it is very mere. The revised estimate submitted by the Kerala Rail Development Corporation, it is 3,700 crores. It has to accepted by this government and it should be started. And madam, one important point, it is about PM Adi Adarsh Gram Yojana. It is by the tribal department. The budget allocation this time,
Honorable Minister claimed 70%. Madam, I am concluding. I am concluding by this. Budget allocation 70% increasing we can see. But it is not benefited to Kerala because the norms saying that as per the present norms, PM Adi Adarsh Gram Yojana, in a village, 50% of tribal people is needed. But in Kerala, that is not possible because in my constituency, more than 60,000 people population that they are tribal. But in a village, crossing 50% is not at all possible. That people are denying that project. That's why I urge upon the government, this norm should be changed and it should be benefited to the people of Kerala, tribal people. And also, similarly, we are facing PM Adarsh Gram Yojana. 50% of SC population is needed. In Kerala scenario, that is not possible. That norms also has to change, madam. And also for the agriculture sector, I am requesting for MSP for cardamom, pepper and rubber. This government should act. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के अमृत काल को ऐसा विजन डॉक्यूमेंट इस बजट के माध्यम से पेश किया है जो देश को अगले 25 सालों में विकासशील देशों की श्रेणी में निकालकर विकसित देशों की श्रेणी में डालने का काम करेगा। यूनियन बजट 2023 एक ऐसा बजट है जिसके अंदर युवाओं के ऊपर मैं मेरा फोकस करना चाहूंगा और स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहूंगा। सभापति महोदय, देश के युवाओं को आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो एसेंस था, उस एसेंस को बिल्कुल दिमाग में रखते हुए इस बजट के अंदर युवाओं के लिए आगे बात की गई है। सभापति महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जिस विजन के बारे में आज कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जो हमारी सरकार राजस्थान में बैठी हुई है, जिस तरीके का पिछले 4 साल में राजस्थान के अंदर एक माहौल बना हुआ है, राजस्थान जो बीमारू प्रदेश के रूप में था और बीते हुए 5 साल में 2013 से लेकर 18 तक जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, बीमारू प्रदेश में से बाहर निकालने का कार्य मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। पर इन बीते हुए 4 साल के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को अव्वल नंबर पहुंचाने का काम किया। अव्वल नंबर किस चीज के अंदर? आज भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा देखोगे तो राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया। अगर आज आप बात करोगे करप्शन की तो है ही है, साथ में क्राइम अगेंस्ट वुमेन नंबर 1 पे राजस्थान पहुंच चुका है। आज बेरोजगारी की दर की बात करूंगा तो बीते हुए 4 साल में लगभग 1 नंबर 2 नंबर की पोजीशन के ऊपर राजस्थान रहा और अब आंकड़ा हालत यह है कि 28.3% बेरोजगार घूम रहे रोड के ऊपर। हर दूसरा ग्रेजुएट, 55% पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान की जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि ये बेरोजगारी और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट आएगा तो देश के अंदर रोजगार पैदा होते हैं। बीते हुए समय के अंदर ऐसा माहौल बना, राजस्थान की सरकार मानेसर और जैसलमेर के बीच में घूमती रह गई। पेपर लीक, युवाओं के पास रोजगार नहीं, उसके बावजूद भी बीते हुए 4 साल में मैम 16 से ऊपर पेपर लीक हुए, हजारों की मात्रा में युवा धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और आज हद तो तब हो गई कि पेपर लीक तो छोड़िए, बजट लीक हो गया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट पढ़ा तो पिछले साल का बजट पढ़ डाला 8 मिनट तक। 8 मिनट के बाद में समझ में आया कि बजट कौन सा पढ़ना है। ये हालत इस प्रदेश के अंदर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की है और वो युवाओं के बारे में बात करती है। युवाओं के बारे में बात करनी पड़ेगी तो विजन देना पड़ेगा। हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं और अमृतकाल का मतलब है कि अमृत पीढ़ी को साथ लेकर चलेंगे और ये बजट उसका जीता जागता एक सबूत बनकर दिखता है मेरे को। मैं सभापति महोदय, बजट के अंदर युवाओं को लेकर, अमृत पीढ़ी को लेकर जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं वो यूथ सेंट्रिक है। सप्तऋषि गाइड प्रोग्राम है टूरिज्म के लिए। टूरिज्म को 50 सेंटर्स हम बनाने की बात कर रहे हैं। 50 सेंटर्स के साथ साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, गाइड के रूप में मिलेगा, सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया एक इतना शानदार प्रोग्राम रहा। आज 90,000 से ऊपर हमारी स्टार्टअप प्रोग्राम्स इंडिया में कंपनियां चल रही हैं, 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हैं और उसी को आगे एक्सटेंशन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टार्टअप को लॉन्च करने का कार्य किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री महोदय का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 एक डिफरेंट, एक बिल्कुल आज के लेटेस्ट जमाने के हिसाब से उसकी प्रोग्राम की लॉन्चिंग करी गई। जो इंडस्ट्री, मैम प्लीज 2 मिनट्स मैम प्लीज। इंडस्ट्री एंड रेडी कोडिंग होगी, 3D प्रिंटिंग के ऊपर, AI के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और डिजिटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अनुसार जो हम PMKVY 4 को लेकर आए हैं वो बहुत बड़ा हेल्प हमारे को आगे आने वाले समय के अंदर देगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बन रहे हैं। मैं 2 बातें प्लीज कहना चाहूंगा, आप बटन की तरफ हाथ ना लगाएं मैम। मेरा रिक्वेस्ट ये है मैम, यूनिटी मॉल
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इतना शानदार प्रोग्राम था। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस प्रोडक्ट के साथ में जो एक प्रोडक्ट हम लेके चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, उसकी भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में खुले, ताकि यूनिटी मॉल के तहत हम पूरे स्टेट का अपना आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका एक मार्फत से बात ध्यान देना चाहता हूं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स का बजट बहुत शानदार दिया गया है। योगा डे, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया प्रोग्राम, वो ऐसे प्रोग्राम है जिन्होंने हिंदुस्तान के आने वाले यूथ का सब कुछ बदलने का कार्य करेगा। खेलो इंडिया के तहत मेरे चूरू के अंदर एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस खेलो इंडिया सेंटर के अंदर 7.5 करोड़ से वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक मेरे चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उसी के अंदर अगर आप साई एक्सीलेंस सेंटर खोलने का काम करेंगे तो उससे खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैम, कुछ बातें ऐसी हैं, बजट बढ़ा जरूर है, पर हम एक चीज मैं महसूस करता हूं युवा होने के नाते कि हमारे पास में कंट्री के अंदर एक पोर्टल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अभी हाल में कुछ दिन पहले एक परमजीत नाम के व्यक्ति का, जो हॉकी का इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था, वो लेबर का वर्क करते हुए पंजाब में मिले। ऐसे बच्चों का जो हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, मैम सिर्फ लास्ट एक मिनट, मैम उन बच्चों के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाए। मैम लास्ट में रेलवे के लिए एक लाइन प्लीज बोलने दीजिए। रेलवे के अंदर मैम 2200 किलोमीटर से ऊपर का किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया है, पर राजस्थान इससे वंचित है। पिछले 15 साल में हमारे यहाँ नए ट्रैक नहीं बिछे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम आती है, क्योंकि हमारे पास माल भाड़ा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि तहसील लेवल को 75 वर्ष की आजादी के बाद में तहसील लेवल को ट्रैक से जोड़ा जाए। सरदार शहर से हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक की बहुत बड़ी डिमांड है, सीकर नोखा की डिमांड है। मैम, इन ट्रैक्स के ऊपर रेलवे को एक ऐसा बजट राजस्थान को देना चाहिए जिनसे नई कनेक्टिविटी बने और नई ट्रेनें चल पड़े। मैं इस बजट का बहुत सपोर्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Thank you, madam. Madam, let me initiate my intervention by saying that without having any qualm, not even an iota of scruple, I am opposing the budget documents, which is nothing but a piece of vapid rigmarole, because the budget itself is an eloquent testimony of the attitude of this government, which is simply anti-farmer, anti-people, anti-labor, anti-SC, anti-ST, anti-minority, and all. See, that is why my first charge against this government is that the budget is nothing but a skewed numbers, neglecting Ladakh, Jammu and Kashmir, northeastern region. It's a dubious green policy failing to address economically vulnerable people of our country, including women, SC, ST minority. Agriculture sector has been totally ignored and the health sector has been neglected. I would like to refer our leaders, Madam Sonia Gandhi's comment on this budget, that the budget is a silent strike on the poor with a deadly combination of insufficient funding and rising inflation. I quote Madam Sonia Gandhi in his article. In her article she has written, I quote, that the Prime Minister's policy to benefit his few rich friends at the expense of poor and middle-class Indians has led to continuous disasters, from demonetization to a badly designed GST, hurting small businesses, to the failed attempt to bring about the 3 farm laws and the subsequent neglect of agriculture. Destructive privatization has handed over priceless national assets to selected private hands cheaply, leading to unemployment, especially for the SC, STs. Even the hard-earned savings of crores of poor and middle-class Indians are threatened as the government forces trusted public institutions like the LIC and SBI to invest in poorly managed companies owned by its chosen friend. Chairman, Madam Chairperson, first of all, I would like to draw the attention of this House that in our country,
earlier also I stated that Muslim population shares nearly 15% of our population in India is shared by the Muslim people. But the budget, in this budget, scheduled caste, scheduled tribe, along with Muslim population, have been brutally discriminated against. For your convenience, I would like to refer some budget documents for your convenience only. First of all, this government always espouses सबका साथ सबका विश्वास, बाद में लगाते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसके साथ लगाना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और हमारे अच्छे दिन चले गए वनवास। मोदी जी हमें वादा किया था कि ले जाएंगे बनारस, लेकिन हमारा हाथ में थमा दिया एक खट्टी सी अनारस। अब देखते जाओ बजट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में एलोकेशन को घटाया गया। Allocation to the Ministry of Minority Affairs were reduced by 38% from rupees 5020.50 crore for B 2022-23 to rupees 3097.60 crores. The revised estimates for financial year 2023 show that only rupees 2612.66 crores earmarked for minorities. Madam, I am talking about minorities. Pathetic situation in country because of your benevolence. Minority groups have expressed concern over the budget slash, as many view it as another in a series of Islamophobic policy decisions that victimize already marginalized communities. मैडम, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहे हैं, सब जानते हैं। मैं जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हमारा स्टेट बंगाल में रहते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में एब्सोल्यूट टर्म में सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। परसेंटेज वाइज अनंतनाग में, उसके बाद मुर्शिदाबाद में। तो हम जानते हैं इन लोग की बुरी हालत, हम जानते हैं, भली बात ही जानते हैं इन लोग की बुरी हालत को। और ये मजबूरी के चलते कभी घर बार गांव छोड़ के दूसरे राज्यों में चले जाते और नहीं तो दूसरे देश में चले जाते। तो इसलिए जब इन लोगों के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। ये सरकार इन लोगों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा विरोध करते हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में मुसलमान लोगों की योगदान क्या है, शायद इन लोगों का पता नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके हमारे हिंदुस्तान की आजादी तक अगर देखा जाए तो सारे दशकों से 1857 से शुरू करके पराजित किए थी। ये सारे इतिहास को तोड़ मोड़ करके, विरूपण करके आप इस तरीके के नजारा पेश करते हैं कि लोगों की मन में एक अद्भुत किस्म के नफरत पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को ऐसे किसी मिसाल जमाने ने पाई हो जहां हिंदू की घर में आग खुदा ने लगाई हो, जहां मुसलमान की बस्ती की यारो राम ने जलाई हो और गुरु नानक ने सिर्फ सिखों को राह दिखाई हो। ऐसा नहीं देखा आपने? राम कहिए, रहीम कहिए, गुरु नानक कहिए, यीशु कहिए, सब नरम है। चमचों को देखो, पतली से गरम है। ये नफरत की असर देखो क्या क्या होते हैं। गाय हिंदू बन गए और बकरा मुसलमान हो गई है। तो मैं इस जगह से आप लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि अगर देश की तरक्की की बात आप लोग करते हैं
तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि हम सबके साथ ले जाना चाहिए। उस समय आप माइनॉरिटीज के खिलाफ आप जो कर रहे हैं आपकी राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में भी ये बड़ी दुखनीय बात है। A scheme for the education for minorities has been reduced significantly, indicating continued attack on minority rights and systematic discrimination. Only half of the total budget estimate for financial year 2003-04 has been earmarked for education empowerment. I know our Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman, is quite competent, but I will suggest him, here I would suggest her that she should be a good communicator. The allocation for skill development and livelihoods is a meager amount of 64.4 crore. Skill development schemes in general have been cut by 86.91% between budget estimate 2020-23 and budget estimate 23-24. The Nai Manjil vocational training scheme had its budget cut by 99.78% from rupees 46 crore in budget estimate 2022-23 to rupees 10 lakh in budget estimate 23-24. क्या है बताइए आप खुद बताइए। आप तो शिक्षित आदमी सर बैठे हैं, आप भी तो नुमाइंदे हैं। अभी मोदी जी ढूंढ रहे पचमंदा कहां मिलेगा मुसलमानों को लुभाने के लिए, लेकिन खुद नुमाइंदे हो गए। आप बजट एस्टिमेट देख लो। The merit cum means scholarship for professional and technical courses at the undergraduate and postgraduate levels has also been slashed by 87.95% from rupees 365 crore in B 2022-23 to 44 crore in 23-24. Despite the over-utilization of the central sector scheme for social justice and empowerment by rupees 85 crore in financial year 22-23, the budget was increased by only rupees 100 crores roughly in the financial year 23-24. The central government also cancelled many of the members have raised this issue. The central government has also cancelled 2 scholarships. The pre-matric scholarship for students from class 1 to 8 belonging to minority communities and the Maulana Azad National Fellowship in November 2022. A decision that was widely contested due to the number of students who relied on the benefits accrued. Muslim students also have the lowest educational attainment levels among all socio-religious categories and comprise the highest proportion of out-of-school children. Hence, the cancellation of this scholarship will only have a detrimental impact on their access to quality education. The Minister of Minority Affairs submitted in a detailed reply to a parliamentary question that funds under the Maulana Azad National Fellowship were being disbursed on a monthly basis. However, research scholars and candidates in universities claim that the funds have not been disbursed for the last 6 months since August, September 2022 or more. So, Madam, I am flagging your attention to this subject because exclusionary attitude cannot be considered as a metric of growth, especially economic growth. So this kind of exclusionary budget should be done away with. That is my submission before you. My district, Murshidabad, is a victim of erosion. Over the decade, district Murshidabad, district Malda, and other districts along the banks of river Ganga have been the victim of severe erosion. People started dreaming a nightmare once the rainy season sets in. Hundreds of villages, thousands of houses, temples, mosques are all destined to be washed away by the assault of the erosion. I don't know how those people could be saved. We know that we don't have any instrument to resist the natural calamity. But I think we have that kind of instrument provided goodwill prevails, at least to mitigate the intensity of the natural calamity. So I would request you
that at least the government should be a little generous upon the erosion affected people of many districts in West Bengal, including Bihar also. Lalanji is sitting over here. He was a former irrigation minister of Bihar. He knows very well in this erosion issue. But what I am observing, that this government is always playing very niggard attitude so as to erosion is concerned. And the people has been met between the trading of charges which is taking place between state government and central government. So I think both the central government and state government should sit together in order to explore and ways and means so that the erosion affected area could be saved. Because you will be astonished to note that in my districts, in my neighboring districts, the geographical expression of those districts have been drastically altered due to the severe erosion. I think it should be treated as a national calamity, and government should pay its attention to this kind of natural calamity arising out of erosion. Madam, you also are aware of the fact the country has been going agog because of Hindenburg research paper. I am not accusing anybody whosoever, don't get it irritated. What I would like to know that हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे होते हैं, हमारे पास ये खबर आते हैं कि LIC में 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं, SBI में 45 करोड़ खाता धारकों हैं. इन लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं होगी ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासे के चलते? ये मुझे आप जानकारी दीजिएगा. LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों में ये अदानी समूह का बेहद जोखिम भरा लेन देन और निवेश ये सरकार द्वारा किए गए हैं. इस तरीके की उदाहरण, इस तरीके की इल्जाम लग रहे हैं. ये जो अदानी प्रमुख के जो एंटरप्राइज है उसमें 1% से कम से LIC के हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गया क्या? ये थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा. ये इनकी टोटल गैस में ये हिस्सेदारी 1% से कम से बढ़कर 5.96 पर पहुंच गई क्या? ये ट्रांसमिशन में LIC की शेयरधारिता 2.42% से बढ़कर 3.65 हो गई क्या? ये ग्रीन एनर्जी में ये 1% से भी कम से बढ़कर 1.28% हो गया क्या? पहले ये स्टेट बैंक ऑफ पिछले कुछ दिनों से जब ये शेयर गिरने की खबर आ रहे हैं, तब से LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ डूब चुके हैं, ये भी खबर आ रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय बैंकों ने ये समूह के ऋण दिया है. ये समूह पर भारतीय बैंकों का करीब 80,000 करोड़ का कर्ज है, जो समूह के कुल कर्ज के 38% है. उसमें से निजी बैंकों का जोखिम कुल समूह ऋण के 8% है, जबकि सरकारी बैंक के पास समूह के ऋण 30% है. इस पे अगर आप थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करें तो बड़ी खुशी होंगे. कहाँ पे संशोधन होना चाहिए. अच्छा ये प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए प्रॉपर नाउन. आप हरमपुर लिखते हैं? प्रॉपर नाउन में भट्टरी को भट्टी हरी भी लिख सकते. प्रॉपर तो हिंदी में होती है. नहीं बरमपुर, आरामपुर नहीं, बरमपुर है. आरामपुर ये हराम नहीं है, बरमपुर है. ये हराम नहीं है, बरमपुर. चारों तरफ हराम आवाज. वो नहीं करे, वो आपकी लोकसभा सीट पे लिखे उस बिल्कुल सीढ़ी की बात कर रहे हैं. ये समूह के डूबने से देश की संपत्ति दांव पर है. करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों पॉलिसी होल्डर की गाड़ी कमाई खतरे में है. इस तरीके की खबर आ रही है. मैडम को मैंने ये भी देखा कि मैडम को सरकार तैनात किए थे इसको मुकाबला करने के लिए. उस समय मैडम ये स्वीकारा कि ये मच टॉक्ड अबाउट ग्लोबली, आई वुड थिंक इज नॉट गोइंग टू बी इंडिकेटिव. आपने ये बयान दिया था. तो इसका मतलब ये होता है कि
At last, our finance minister admitted that it is a subject of discussions and it has already assumed a global dimension. You cannot ignore it. You have also stated that her country's markets were well regulated, and she did not expect the controversy around tycoons' business empire to affect investors' confidence. Madam, ho gaya, sir. Madam, would you please explain, madam, how can investors put confidence when the market capitalization of one of the top 20 richest percent of the world eroded 47.4% for alleged accounting fraud and artificially boosting its share prices? Sir, these are the questions that has been haunting all the common people of our country. They have very clearly said that they are exposure, officials that also have been dancing to the tune of the government. SEBI officials, SBI officials, LIC officials. They have clearly said that their exposure is well within the permitted limit and they are sitting over profit even with the valuation failing. मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हैं, can madam kindly explain at what valuation Indian banks held their stake in Adani Group? So these are the very simple and short question. And ये regulatory system हमारा देश में कमजोर होते जा रहे हैं. इसलिए हमारी तरफ से बार-बार ये गुहार लगाए जा रहे हैं कि आप जेपीसी की गठन करो. आप सरकार की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ ये छानबीन करो. ये कुछ नहीं होता. आपके हाथ में तो ईडी है, उनसे भी कम से कम इस विषय पे ये मैं समझता हूं, क्योंकि आज की तारीख में बार-बार हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होना चाहिए और इस तरीके के अगर माहौल पैदा होगा तो हमारे ये इकोनॉमिक माहौल की इसके ऊपर बुरा असर होगी. इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि मैडम, आपकी जब जवाब आएगी, आप सारे मुद्दे को सामने रखते हुए बड़ी ध्यान से जिस मुद्दे में आम लोगों की परेशानी हो रहे हैं, इसको आप थोड़ा सही ढंग से जवाब दीजिएगा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. So I thank through you all the honorable members who have participated in this discussion and have gone through the budget in various ways, spoken about it in from different points of view. I have, in a way, collected the subjects which the honorable members have spoken, and from them find that there are broad 15 issues on which members have spoken, raising concerns, sometimes asking for greater information to be shared. However, of course, raising also issues which I'll try to address. I'm indeed grateful that members have taken great details from the budget and in the context of today's economy, spoken about them. So this budget was presented, as I said during the presentation of the budget itself, was presented with the background that India was coming out of the pandemic and there was a path of recovery that we could distinctly observe, not just by us, but also by very many observers of the Indian economy post the pandemic. But of course, sooner, we also had the Russia-Ukraine war, which commenced from 22 February. And there was, as a result, distinct inflationary pressures, particularly on the emerging markets, and it was globally felt. Also, the resurgence of COVID in China has also added a dimension which we couldn't have anticipated.
So that led to the rise in international commodity prices. Also, the vagaries of weather, extreme weather conditions, also triggered off food inflation, not just in India, but in very many other countries. So, more than what the monsoon vagaries bring to India almost every year since recorded history, we had other external vagaries also affecting us, particularly in the food area. Several preemptive measures were taken up by the government, and also the monetary policy decisions by the RBI had led to a sequence of measures being taken, and therefore by November, December of 2022, we were able to return to the realm of the tolerance band which the RBI defines. And therefore the CPI, the Consumer Price Index, came down to the below 6% level and therefore was within the tolerance band. Despite all this, sir, the Indian economy is still the fastest growing major economy and shall continue to be so even in 23-24. So since the pandemic, when the economy dipped by -23, our efforts has been through the capex route, capital expenditure route from the government side. And this, because it has great multiplier effect, enables to have in situ jobs created where the projects of the public expenditure are being spent and the projects are being made to rise. So that immediately in situ creates a lot of jobs and therefore triggers better income and therefore triggers better consumption. This is a well-established route in terms of multiplier for capital expenditure, as different from the route which is asserted by economists when you give money in the hands of the people, where the multiplier is far lesser than a rupee spent, is far lesser than that rupee spent. The next very important line is also enhancing the productive capacities in the spur and sustain domestic demand. Third is also an approach which is comprehensive, looking at social security. I already explained the inflation management. So these four major routes and activities have actually kept the economy in a sustained growth path. So in a way, if I have to put in a few words what this budget of 2023-24 is, it, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. So that is a very difficult balance. I'm sure most of us who are speaking on the Indian economy and the budget would observe that it is a very, very tight, measure. It's a very delicately balanced act, and that's what has been achieved in 2023-24 budget, without compromising on India's growth potential and sustaining the growth momentum. We also have made sure that fiscal prudence is maintained as per the glide path we had given 2 years ago. We were in a stretched fiscal situation, sir, post the pandemic. However, the growth in 23-24, the period for which this budget is presented here, will be with good policies such as the PM Gati Shakti, National Logistics Policy, and also the PLI scheme, and with cooperative federalism in mind, empowering states
is of great concern for us, and as I go about speaking on specific points on which members of parliament have spoken, I'll also highlight what measures, even as of today, I have taken in order to maintain the state's fiscal health and also ensure that money is in their hands at the time when they need it. So actually from the budget itself, I wanted to place on record again through this response my reply. But even as I heard very many members speak about it, there was this repeated question about, are we giving enough for the states? Total resources are being transferred to states. I'd like to highlight and begin with that. Total resources being transferred to the states, that is the central share in taxes, releases under the centrally sponsored schemes, both put together, under the BE 23-24, which is the proposed budget which is on the table of this House for consideration, is estimated at 17.98 lakh crores. This is higher. This is higher by 1.55 lakh crores over the last year, which is the current running year as of March 31st, 2023. So this is higher by 1.55 lakh crores over RE of 22-23. I'm not even comparing it with the BE. Even over the RE, what we proposed in the current budget, which is under the consideration of the Parliament, is far higher. It is higher by 1.55 lakh crores and 2.9 lakh crores. And it is 2.91 lakh crore more than the actual of 21-22, the year before. The capital expenditure for 23-24 is at 10 lakh crore, which most members have heard me say, whereas in the year 1920, this amount was only 3.39 lakh crores. And if I go to the last full budget presented during the UPA's 10 years, that is in 2013-14, it was only 2.91 lakh crores. 2.91 lakh crores in 13-14, the last of the UPA budgets. 2019-20 budget, which is the budget before the pandemic, it was 3.39 lakh crores. So the states will be the partners in this massive capital expenditure exercise. And in the budget of 23-24, that is the current budget, we have made an allocation of 1.3 lakh crores to the states as interest-free capital expenditure loan, which will run for 50 years. So 1.3 lakh crore is being given to states as 50-year loan without interest. So the state's interest has always been kept up and kept in our mind, and making sure that we are in time giving them what is their rightful amounts. So, whilst I go through the members and their points, I'm just broadly telling you the issues which this budget addresses and made specific allocations. Broadly, the headings are middle class, employment related, MSME related, agriculture related, rural population related, health related, and green growth related. So I will very quickly just give you the bullets under each of them so that all of us have a complete comprehensive picture on each of these headings. For middle class, sir, the new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Will reduce tax liability. This proposal will reduce tax liability for majority of middle class taxpayers. New regime will be the standard or default. Taxpayers will have to opt for the old regime if she or he wants. Doubling of investment limit in small savings schemes from 15 to 30 lakh, and increase in limit of monthly income scheme benefiting senior citizens and others through high interest rate
with full safety will also benefit the middle class. And finally, for middle class, new small savings scheme for women and girls with attractive interest rate of 7.5% for a 2-year tenure. So here, I can't see Member N.K. Premchandran, who asked for a clarification regarding the new income tax regime. He said, I'm paraphrasing, I'm not quoting his exact words, but he said that under the old tax regime, a common man can save up to 4.5 lakh on his income from 9 lakhs. On his income of 9 lakhs, he can save up to 4.5 lakhs. However, he said in the new regime that won't help at all. In reality, sir, it is very difficult, actually, strictly speaking, for a common man who earns 9 lakhs to avail 4.5 lakhs in deduction. And after all, since he has to run the family as well as think of constantly of how to reduce the taxes. So when he's earning 9 lakh annually, 4.5 lakh in deduction itself will be quite a large and an effort-ridden exercise. Enhanced rebate, whereas what we want to explain here, since the new scheme is unconditional, it will greatly benefit income earners in the lower tax brackets as they have higher disposable income in their hands for meeting their essential expenditure. So I wanted to just assure Member N.K. Premchandran that it's not always possible for a 9 lakh salaried person to have 4.5 lakh under exemption and then also be having enough money to spend for his family. So that was for middle class. So if I move for employment-related information from this budget, sir. Increase in capital expenditure with large multiplier effect, and that's 10 lakh crores, and of which 1.30 will go to the states as well. Increased credit of 2 lakh crore at lower interest rate to MSMEs, who are the biggest job creators. Lab-grown diamonds have been given a fillip, which is a sunrise sector, and it has very high employment potential. Multidisciplinary courses for medical devices to create skilled manpower in futuristic medical technologies, manufacturing and research. That's also aimed at greater employability for our people. Job opportunities through Make AI in India and Make AI Work for India in educational institutions is clearly giving that cutting-edge benefit for our students. Comprehensive tourism package for 50 destinations, creating direct and indirect jobs. PM Kaushal Vikas Yojana 4.0 to be launched, covering new age courses like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and soft skills are all aimed at giving that lead advantage for those who come out of colleges with these skills, who can then be employable straight away. 30 Skill Indian International Centers. 30 Skill India International Centers will be established to train youth for international job opportunities, inclusive of any optional language which they would want. So this is about employment, particularly from this budget. For MSMEs, sir, Vivad Se Vishwas. Vivad Se Vishwas scheme for refunding forfeited amounts of bid performance security, which is given during COVID period in all government and PSU contracts with MSMEs. One point which I've missed out on employment is how in the government, in this year, every month, Prime Minister, also the ministers have all gone all over the country to give employment letters in government jobs. About 10 lakh jobs are being offered in the government, and that cannot be missed out. Sir, Vivad Se Vishwas scheme for MSMEs, and also to encourage timely payment
deduction of expenses for tax purposes allowed only when payment actually made to MSMEs will greatly benefit MSMEs, because most often large companies retain them and really take the offset benefits for it without really paying the MSMEs. We want to encourage the payment of MSMEs because they are the ones who generate a lot of local jobs. Revamped credit guarantee scheme for micro and small enterprises with additional credit of 2 lakh crores and reduction of interest rate by approximately 1%. And also, the presumptive taxation limit has been enhanced both for MSMEs and for professionals. I have 3 more of these main subjects, so that from this budget we'll be able to club it all together to see for that head as to what we have given. For agriculture, agricultural credit target has been enhanced to 20 lakh crores. India will be developed as a global hub for Sri Ann, that is the millets. Agricultural Accelerator Fund for agri-startups. Major increase in storage facilities through cooperatives. Computerization of the PACS packs. Tax relief to cooperative sugar mills and PACs. That is more than about 9,000 crores, which is going for the benefit of the sugarcane farmers. Decentralized storage through cooperatives to enable farmers to store their produce and sell it at the right time when they will get better prices. And also a new sub-scheme for fishermen, fish vendors under the PM Matsya Sampada Yojana. All this is definitely going to make India's agriculture far more robust. Rural population, sir, huge increase in the outlay for Pradhan Mantri Awas Yojana, 66% increase, and 79,000 crores are being given for PM Awas Yojana. Increase in the outlay for Jal Jeevan Mission from 60,000 crores to 70,000 crores. 15,000 crore mission for particularly vulnerable tribal groups. We talk about inclusion, but when we talk about what is being provided to the tribes, nobody wants to hear that, and they will still question. Sir, I have a request. Today being the Friday, that's a private member business. Since this is financial business is going on, it may be kindly taken up on Monday. सदन की सहमति है? माननीय वित्त मंत्री जी। For health, the last two on which I want to elaborate. 157 new nursing colleges are being created. This also creates jobs both for domestic and international workers. Then sickle cell anemia elimination mission, which is very important for some tribal areas. And new program for research and innovation in pharmaceuticals are the highlights I would like to say for the health area. And finally, sir, the green growth, 35,000 crore towards capital investments in energy security, energy transition, which is being given to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Energy storage projects are being taken up. Funds for scrapping polluting vehicles for both center and states are being given. Amrit Dharohar for conservation of wetlands are being taken up. Exemption of excise duty for blended compressed natural gas. Customs duty exemption for capital goods needed for lithium-ion cells for batteries in electrical vehicles, and green hydrogen mission. So in a gist, I tried capturing all those topics under which the budget had a lot of provisions here and there, but I've put it all together to summarize here, sir. Now I go to those 15 particular groups of issues on which honourable members have spoken. I'll group it all together on behalf of the members and try to address them. The fiscal glide path is the first issue, maintained at the cost of reduced food and fertilizer subsidy. That was a
member's apprehension, which was put here, saying allocation for food and fertilizer subsidy has been drastically reduced. Was a, if I can call it as an allegation was levied. I want to say here, sir, leveled. 2015-16 till 2019-20, food subsidies have been in the range of 1 lakh crore to 1.12 lakh crores. I'm talking about 2015-16 to 2020. Whereas now in this budget, for 23-24, the projection for food subsidy is 1.97 lakh crores. So it is far higher, in fact double than what was being given in 1920 or even earlier. The provision for food subsidy available in the budget of 23-24, sir, is adequate, we think, to cover all the anticipated expenditure for the PDS operations. And therefore, that's not even less. The increase in food subsidy in the last 2 financial years is due to the PM Garib Kalyan Anna Yojana to 80 crore people. So the central government now, under the new PM Garib Kalyan Yojana, which has been introduced since December 2022, in the last 2 financial years, I have already said, in the December allocation of PM Garib Kalyan Yojana, which will continue to the Antyodaya and the priority households, the central government will bear all costs of the PDS operation with no cost to the beneficiary government. The entire cost will be on the central government. So, there is just no reduction in the food subsidy, and therefore, on that behalf, to allege that I am maintaining fiscal consolidation at the cost of reducing food subsidy is completely wrong. Sir? देखो मैं आपको एक सुनो पहले 5 ही तो मिलता था यार. अरे सुनो अधीर बाबू you are a very senior member. Continuously disturbing, it is not to your stature, I am telling you. It is not fair on your part. अरे बैठिए यार ऐसे. Sir, today Adhir ji is very conscious. Adhir ji is very conscious. I have always my respect. I have a great respect. Thank you. Surely, with that respect in place, even from my side, Adhir ji is very conscious. 5 kgs कम हो गया है. इनके NFSA 2013-14 में कितने राज्य में NFSA implement किया गया था? कोई 7 states only agreed to go along with them, and even in that, it was only 5 kgs. Suddenly, क्योंकि मोदी जी ने गरीब के लिए कोविड के समय +5 kg. अरे, I also have respect for you, Adhir ji. सुनिए ना, क्षमता रखना चाहिए सुनने में. NFSA 2013-14, sir, only 7 states took. And what did it give? It gave 5 kgs. गरीब के लिए, क्योंकि कोविड के समय किसी गरीब भूखे ना रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी एडिशनल 5 kg दिया. वो एडिशनल 5 kg को अभी याद दिला रहे हैं. आप तो पहले से नहीं दिए. 5 kg बोले, 7 स्टेट्स में किए, बाकी देश भर में नहीं किए. आज आ गए इतना गरीब के लिए. क्या बात है जी. सर, another point was वो गरीब के लिए फूड को कटवा दिया, इसीलिए आपको फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ. I proved it. No. Now I'll come to the fertilizer subsidy, sir. 2015-16 मैं उनके 13-14-12 में नहीं जा रही हूं अभी. 2015-16 to 2019-20 में fertilizer subsidy has been in the range of 65,000 crore to about 80,000 crore.
Then in 22-23, that is this year, provision for fertilizer subsidy was about 1.05 lakh crores. In this budget, which is under consideration here in this parliament for 23-24, this has been raised to 2.25 lakh crores. Sorry, 22-23 ke liye this saal has been raised to 2.25 lakh crores. Why was this raised for the current year so much? Because international prices went up. We had to import at a very high cost. On this, there is some data which I'd like to share with you, sir. Ek bori, which is 45 kgs, I think, of fertilizer, was somewhere in the range of 220 rupees. Whereas we had to import it somewhere in the range of 2,800. The very same 45 kg bori was 2,900 something. Approximately, the import cost had gone up. We imported it all at that cost, but did not put the burden on the farmer. किसान के ऊपर एक पैसा ज्यादा तब भी नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया. ये टोटल केंद्र सरकार के ऊपर है. ओके? सर, एक मिनट सर, क्योंकि हमारे वेरी एक्टिव मेंबर ऑनरेबल गोगोई इस विषय में उठे, मैं जो विषय बाद में बोलना चाहती थी मैं अभी ही बोल रही हूं. एक्साइज ड्यूटी जब ज्यादा हुआ, फॉरेन प्राइस इंपोर्ट प्राइस जब ज्यादा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता के ऊपर बोझ ना हो ऐसे स्टेप लिया. नवंबर में और जून में, नवंबर 21, जून 22 में 1 मिनट सर उस विषय में बोलना चाहती हूं. तब से लेकर आज तक हम तो जनता के ऊपर बर्डन कम हो इसीलिए एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं. इसके उल्टा करने वाले स्टेट्स का नाम लेना चाहती हूं सर. सॉरी, मेरा हिंदी सही आ रही है कि नहीं? हम तो प्राइस कटवाने के लिए कोशिश करके नवंबर में 2021 और जून 22 में कटौती की. माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि एक्साइज ड्यूटी को कम करो, किए, मगर तब से लेकर आज तक मैं नाम लेना चाह रही हूं. एक पहले किया होगा, आज दूसरे क्या कर रहे हैं, जो भी हो, उल्टा जनता के ऊपर बोझ पड़ना परवाह नहीं पड़ेगा, करने दो. ऐसे करने वाले लोग का नाम बोल रही सर. एक्टिव हमारे, ठीक है अधीर जी, पूरे 2 दिन आप सबका सुना. प्लीज धैर्यपूर्वक सुनिए सर. हमारे एक्टिव मेंबर गोगोई जी, वो उनके हिमाचल के सरकार से पूछना चाहिए. चुनाव जीतकर आने के तुरंत बाद वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डीजल 3 रुपए ज्यादा किया. ये उनका है, ठीक है सर. सर, और वैट इंक्रीज करने वाले आप हो भाई, वैट इंक्रीज करने वाले आप हो. आप बिना सोचे समझे बात ना करो. आपने वैट इंक्रीज किया डीजल के ऊपर, वो भी सर. इसीलिए वो कभी भी, कांग्रेस के कल्चर यही है, आरोप लगाएंगे मगर जवाब देंगे तो हम चिल्लाएंगे, वॉकआउट करेंगे, इधर नहीं रहेंगे. ये उनके तरीका. करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो.
सर पंजाब में सर, पंजाब में सर, आपकी कोई आवाज नहीं जा रही, बंद कर दीजिए। पंजाब में सर, Punjab sir has increased VAT on petrol and diesel in February 2023, which will lead to an increase in the price by approximately 90 paise per लीटर। इंक्रीज हो रहा है भाई, कम नहीं हो रही है। पंजाब के कोई भी है तो सुनिए सर। केरला सर, केरला सर, हाँ कांग्रेस नहीं है, जरूर कांग्रेस नहीं है। Why? Because I'm telling you. Because you are not mentioning the name of West Bengal. Oh, sir. प्लीज सर ये क्या है सर? प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज सर, प्लीज 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 सर। सर केरला सर, Kerala announced in February 2023 a levy which is, I think, a social security cess, Kerala government, of 2 rupees per litre of petrol and diesel. On both. हाँ, अभी माननीय leader of the opposition, if I can call him that, Adhir Ranjan Chaudhary ji, said सेस आप कलेक्ट कर रही हो। सेस का विवरण भी मैं देती हूँ, कितना कलेक्शन होती है, कितना स्टेट्स को जाता है, मैं बिल्कुल देती हूँ उसको। सर ये अगर ये सब है, बाकी भी बोलती हूँ सर, स्टेट्स, हाँ राजस्थान, नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया, पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं सर। सर गॉड किसी को भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे, ये भी सर मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है? सर मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong sir. Six I'm saying about 6 other states sir, which marginally reduced or didn't reduce at all. But I'm reading all of them together. I don't want anybody to get up and say, no, but we reduced half a paisa, 1 paisa. No, I'm not. I'm saying some reduced something, some others didn't reduce as much as would have been deserving. Whatever marginally reduced, maybe, I don't know. But I'm including them because both the times we expect every state to reduce the burden on the common people. West Bengal did not. Tamil Nadu maybe marginally. Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and Jharkhand have not reduced the prices on petrol and diesel till date. As I said, some states probably reduced marginally. So I didn't want to come to this detail at this stage itself, but because there was the context, I had to come even earlier to talk about it. Sabhi BJP states ne come kiya. So, yeah. I'll come to that. I'll certainly come to that. Sir, so for fertilizer subsidy, we had made sure that the burden is not shifted on the farmers. Any increase in cost in imported price, the government, central government is bearing it all in full. And at this stage, in this budget, we have tried making a reasonable allocation. And always it's subject to, if there is more increase, we'll give that much more. But in this reasonable allocation of 1.75 lakh crores has been made in the budget which is before you, 2023-24. Even this is 1.75 lakh crores, sir. And we have earlier, when we didn't make a provision, we still somehow imported it at whatever cost.
although we didn't make a provision. That should clearly put our intent before you, saying for farmers we'll never let down. Sir, Manrega, an issue on which a lot of members have spoken, saying, no, the allocation has come down. So that's not true at all. I want to explain how. I want to explain how. The current year BE allocation is 73,000 crore. It had been increased to 89,400 crores in the RE of this running year, 31st March tak. So from BE, even this year, we've shown an increase. It's a demand-driven program, and therefore, whenever there is an increase, we'll come up with the numbers. But this year, we want to also underline the fact that Manrega outlays factors in economic recovery and massive increase in the PMAY Awas Yojana, particularly the rural, where 34,487 crores have been allocated. Other than the allocation for Manrega itself, here, similar beneficiaries, similar rural work gets 34,487. The same set of people will have to benefit from it. And the Jal Jeevan Mission gets 10,000 crores, which caters to the same catchment area and also the same beneficiaries. So there is actually no reduction. One, it keeps going up as and when the demand comes. Adir ji, sir, Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, sir. आप पढ़ मैडम आप पढ़िए. Sir. There is no connection. Sir. सुरेश बाबू, घर और जल पानी के बीच कनेक्शन नहीं है क्या? गरीब लोग काम नहीं मिलता गरीब लोग. Sir, 1 minute, sir. Sir, it is. I want to just highlight. No. I'm quite used to polite and not so polite also. But it is up to the chair. I can't. Sir. Oh, pending payments. I'll come back to that. West Bengal, I have a list to read. Please, sir. Allow me, sir. Sir. Manrega, sir. Sir, please allow me to speak, sir. Manrega, sir. I said I want to respond to Honorable Member Adirji. Huh? And I also take into consideration. Oh, ठीक है sir. Okay, sir. सर, मनरेगा के ऊपर जितना भी चिंता, पश्चिम बंगाल का जरूर बताइए. ये दीदी से जवाब पूछो, ममता दीदी से. सर, मनरेगा के विषय में क्योंकि इतना चिंता वाजिब है. अरे वाजिब है भाई, इतना चिंता जता रहे हैं. सर, मनरेगा के ऊपर चिंता वाजिब है. मैं सिर्फ एक लिस्ट से नंबर पढ़ना चाहती हूं. बीई के समय एलोकेशन एक अमाउंट है. मैं रिकॉर्ड रख के सामने बात कर रही हूं कि बीई एवरी ईयर वी इंक्रीज टू आरई. Clearly we'll increase to RE when the demand arises. We've never let it down. उसका उदाहरण बोल रही हूं सर. 2019-20 से, which is just before the pandemic, 60,000 था
60,000 crore था पैंडेमिक बजट में, प्री पैंडेमिक बजट में 60,000 crore था बजट एस्टिमेट बी। उस साल आरई में 71,000 तक गया। एक्चुअल रिलीज उसके बाद डेटा आता है 71,687.71 crores। ये 1920 का। 2021 61,500 crores BE, RE 1,11,500, actual release 1,11,170.86 crore, बढ़ते गए। 21-22 73,000 BE, 98,000 RE, actually it was 98,467.85, increased allocation. ऐसे इस साल भी 73,000 BE, already 89,400 RE। ये हमारे प्री पैंडेमिक का एक साल और पोस्ट पैंडेमिक का डिटेल। प्री पैंडेमिक का प्रीवियस ईयर्स भी ऐसा ही है, मगर मैं याद दिलाना चाह रही हूं 2009-10 जानना चाहिए प्लीज, हंसी मजाक नहीं है। गरीब रूरल, आप हंस रहे हैं ना जी आप सर? होप ऑनरेबल चेयरमैन सर हंस रहे हैं मुझसे इतना नहीं, गोगोई जी प्लीज। अभी ही laughed at me. He laughed at me. I'm giving details and he's laughing at me. But when it suits him, he says, गरीब के लिए हम बात करते हैं, आप बोलो। गरीब के लिए बात कर रही हो, हंस रहे हैं, वो सही है क्या? नो, मैं गंभीरता से उनके पॉइंट को लेकर के जवाब दे रही हूं। हंसना? Yeah, thank you for setting the standards. I'm seeing how it is happening here. Sir, Honorable Sir, 2009-10 में BE 39,100, 2009-10, हाँ जरूर जाऊंगी। 2009-10 39,100, 39,100 RE. Oh, that's not applicable now, ma'am. That's not applicable now, ma'am. Sir, 2010-11, 40,100 BE. How much was RE? वही 40,100, मगर actual spent was 35,841 only. Sir, 2011-12, 40,000 BE, RE 31,000, and actual fund released 29,215. Sir, गरीब का विषय में पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए जब आपके शीशे के घर ऐसा है। Yes, sir, I'll come. Sir, Honorable Speaker, sir, बंगाल के ऊपर जितना भी प्रश्न उठा रहे हैं उसको मैं पूरे जवाब देती हूँ, जरूर देती हूँ। प्लीज, आई विल गिव। 4 साल का कुल मिला के 1 लाख करोड़ था, जितना तो आपने पिछले पैंडेमिक के टाइम पे दे दिया। सर, ये मनरेगा के विषय सर। एक था एलिगेशन सर, जो अभी ऑनरेबल मेंबर भी जिक्र कर रहे हैं, मनरेगा और पीएम आवास योजना फंड्स शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली टू वेस्ट बंगाल। उस विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। Various central schemes, sir, which investigate, various central teams
which investigated Manrega works in Bengal, found serious shortcomings in the works. मैं पूरे बोल रही हूँ, आज का विषय भी बोलूँगी. State government was asked to submit action taken report on the observations by the various teams. The state government submitted one set of reports of action taken in 2022, late November, December. And that amount is 5,473 crores. Once the scrutiny is all over, that amount will get released. One. Second, sir, again, many claim, this is Awas Yojana, Gramin. Many complaints have been received from MPs and MLAs about irregularities in the implementation of the scheme. Department of Rural Development has constituted a national level monitors who have submitted report of irregularities, including the change of name and logo of the scheme. Branding pure ke pure badal di. ATR has been sought. Sir, ATR was sought from the state government, which was action taken report has come. And after that also, very many questions were, in fact, beneficiary list was asked. Again, complaints were received about irregularities on the list of beneficiaries, which was prepared by the state government, including ineligible beneficiary. Department has sought an ATR again, another action taken report again, so that is one thing. Gram Sadak Yojana, 173 crore is pending for release to the state due to reconciliation related issues between center and state. No, there are more. I don't want to, sir, I don't want it to appear as though I am saying it all, and therefore central government is only creating problem. Media reports, sir, this I'll authenticate and submit on the table. PM Awas is for rural poor, but in West Bengal, owners of houses like these are on the list. Sir, it is not me. So double mansion-like buildings are being built. Is it right? Is it not right that I should investigate, sir? I'll authenticate and submit. I'll also come to one more, sir. I'll finish this. Then you can talk, sir, with the permission of the chair. Sir, GST compensation cess. Sir, this you must, honourable member, kindly, with the permission of the chair, I'd like to request you, please he should listen to this particular thing, sir. और ये हम सब के लिए भी एक सबक जैसे विषय है. मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ. सर, GST compensation cess. West Bengal says 823 crore is pending for release to the state because the state government has not sent AG certificate. I'm saying 2017-18. But in this bahana, this is not a news report. This is my own office paper I'm reading. Huh? I'll just give you this information. It may be useful for the honorable member. Sir, honorable chair से बात कर रही हूँ मैं. Honorable chair के साथ बात कर रही हूँ मैं. Sir, arrears of compensation released to states, union territories, as per AG certificate which is given for the revenue figures. AG का certificate के साथ compensation का request जब पहुंचता है, हम amount release करते हैं. वेस्ट बंगाल के डिटेल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं, बहुत ही विनम्रता से. कॉम्पनसेशन सेस. सर, बार बार हमें बोला जाता है, चिट्ठी आता है बंगाल से, हमारे कॉम्पनसेशन रिलीज नहीं हुआ. एजी सर्टिफिकेट के साथ अगर आता है, मैं तुरंत रिलीज करती हूं. बट बंगाल के विषय आपके सामने बहुत विनम्रता से मैं रिपीट कर रही हूं, क्योंकि मुझे चकित रह गई हूं ये देखने के बाद. क्या विषय? एजी
एजी का सर्टिफिकेट सर, एजी का सर्टिफिकेट के साथ कॉम्पेंसेशन का क्लेम कब से नहीं आया बंगाल से? 2017-18 नहीं आया, 18-19 नहीं आया, 19-20 नहीं आया, 20-21 नहीं आया, 21-22 नहीं आया। फिर मैं क्या करूं सर? एजी का सर्टिफिकेट जब नहीं मिलता मैं कैसे पे करूं सर? अभी आपने पहले बताया होता ये देने वाले हो आप, तो मैं आपको जल जीवन मिशन का भी आंकड़ा दे देता। कितना कंप्लेन आया सर? सर बाबू इधर लास्ट एक और विषय सर, बंगाल के विषय लास्ट एक और विषय पेंडिंग है सर। सर हमें ये बार बार बोला जाता है केंद्र सरकार बंगाल के खिलाफ है, पैसा नहीं देते। मैं एक और सामने रखती हूं सर, पैसा देने के लिए हम तैयार है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो तो करो, ड्यू प्रोसेस। सर केंद्र सरकार परमिशन चेयर सर, चेयर मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूं सर। केंद्र सरकार हर राज्य को जब उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस का मदद चाहिए होता उनको दे देते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस चाहिए, ले लो। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बंगाल को भी डिप्लॉयमेंट के लिए दिए, मगर बंगाल से ड्यू उनकी तरफ से हमें पेमेंट जो करना है, क्योंकि हम तो पुलिस फोर्स दे रहे हैं उनको, उधर से हमारे पास उनके पैसा अगर रह गया तो इतना आवाज उठाते हैं। ठीक है, राइट है उठाने के लिए, मगर हम भी उठाना चाहिए सर। सेंट्रल आर्म फोर्सेस बंगाल के लिए दिए 1841 करोड़ पैसा हमारे उधर बाकी पड़ा हुआ है, नहीं मिला। ये कैसे सर? हम देते रहे उसका ड्यू प्रोसेस पूरा है कि नहीं? सर बंगाल के विषय में मैं ये बात जरूर सामने रखना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ डेटा। दे दूं? आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बचाओ, आप मत बोलो। हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मत सर वेस्ट बंगाल पे और मत बोलो। इसके अलावा उसमें इतना भी आपको नहीं मारना चाहिए, इतना भी नहीं मारना चाहिए, हाथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, विद योर परमिशन सर। एक मिनट ज्यादा। मैडम अब सुनिए, मैडम आपको बताते हैं, मैडम आप बोस, अरे उसको तो बैठाइए। तुम्हारा तार कट गया, तार जुड़वाओ पहले। Madam, myself, along with 10 MPs, we met Giriraj Singh ji, and we had a long discussion for 1 hour. Giriraj Singh ji attended with his full officials, and we 10 MPs all together. So he clarified these issues to us, and he asked that you send your cabinet minister from government of West Bengal. I went back, I reported to Chief Minister, and Chief Minister sent the minister to talk to Giriraj Singh ji. There was a long meeting. Everything was sorted out. But the 7,000 crore rupees are not being released. So, sir, madam, our allegation, you are trying to blockade economically our state of West Bengal. Anti-West Bengal. You are trying to blockade economically our state of West Bengal. Honorable Speaker, sir, he's a very respected member. I have a lot of personal respect for him. I listen for every one of the members.
irrespective of anything that is said in the House, I fully take it because I'm here to answer with due respect. I will do it. Sir, but whilst he may give me, Honourable Member may give me the details of his meeting with Honourable Minister Giriraj Singh and everything else, नहीं, that allegation एक मिनट, against किसी भी मंत्री से बाहर चर्चा हो, इसको सदन के अंदर बोलना कोई तर्क नहीं है। आप तो आपका जवाब दीजिए। But I would request the Honourable Member to say Bengal का ब्लॉक कर रहे हैं, वो नहीं है। हम माननीय सदस्य गलत, मैं बाहर निकाल दूंगा, आपको पोस्टर निकालेंगे। So, what I state here is, sir, with facts. I state with facts. I am not giving any figment of my imagination. Sir, then this question of reduction in agriculture allocation. Senior member T.R. Baluji mentioned about it. About 8,000 crores, sir, from RE 22-23 to BE 23-24. What was in the RE of the current running year to the BE of the forthcoming year. 8,000 crores is the increase. It includes outlays for agriculture research, animal husbandry, dairying, fisheries, and cooperation sector. PM Kisan, sir, also reflects the provision based on beneficiary update. Quite a few members, many of them are not here, but I still will say it. PM Kisan, sir, there is a lot of data updation which is going on. Deduplication analysis of beneficiaries is being done by the Ministry of Agriculture. So the duplications are being weeded out. And this is not being said for the first time here. In Budget at a Glance document which was shared along with the budget speech, in page 10, this explanation has been very clearly given as to what is the deduplication exercise which is going in the PM Kisan. So if people were to ask me, why is it reduced? That is the deduplication spillover, which I want to put it on record as was stated even in the Budget at a Glance document. So let me now state this, sir. Every eligible beneficiary of PM Kisan will continue to get their benefits, every eligible one. So there is no reduction. Here, I certainly want to refer to a SBI study, sir, which speaks about what actually has happened in terms of, because quite a lot of members express their concern about what happens to the doubling of income for the farmers. Quite a few members mentioned about it. And I will give you not my own analysis, but State Bank of India's report. They have a study group which periodically keeps studying on various different developmental activities. July 2022, their report said farmers' income doubled for the financial year 22 compared to financial year 18 for certain crops in some states. So the process is happening, like soya bean in Maharashtra, cotton in Karnataka, while in other cases, if it didn't double, it at least became 1.7 times the original income. Allied and non-farm income showed. It is true that it is reaching doubling. Allied and non-farm incomes showed a significant increase of 1.4 to 1.8 times in most states, in tandem with farmers' income during the same period. So this substantiates another thing, sir. There's one more. 77th National Sample Survey, that the source of the farmer income has become increasingly diverse. सिर्फ खेती से जो पैदावार होते हैं, उसके इनकम सिर्फ नहीं, मगर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कार्यक्रम से भी किसान का उनका आय बढ़ रही है. ये स्पष्ट वो 77th नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा डेटा अभी मिल रही है. So SBI study also says, sir, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनके
क्रॉप लोन जो मिलता है, अभी कितने किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी हमारे जानकारी रहना अच्छा होगा। 73.7 मिलियन एक्टिव केसीसी, मिलियन मतलब इधर 7 करोड़, am I right? 7 crore 37 lakh किसान क्रेडिट कार्ड एक्टिव है सर। वो किसान खेती भी करें, डेयरी भी करें, फिशरी मत्स्य पालन भी करें, उन सब का मिलजुल करके 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड है। उनको इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी मिलते हैं, आसानी से बैंक से लोन भी मिलता है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आजकल ज्यादा से ज्यादा मार्केट लिंक्ड प्राइस से अलाइन ही होता है, उससे एकदम कम नहीं होता। अगर कम होता किसान मार्केट में ही चले जाएगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी उनके कॉस्ट और उनके रिटर्न ये सब कैलकुलेट करते हुए हम करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है। सर फिर इन्फ्लेशन के ऊपर, again I refer to Honorable Member Gaurav Gogoi. There's been a wave of external factors which have caused the price increase, whether it is Russia, Ukraine, or even the various disruptions in supply chain. But India's retail consumer price inflation, the CPI, had peaked to 7.8% in April 2022. But now it has come down to 5.7%. 5.8%, and therefore it is well within the tolerance band. And this is because, and I would like to seek your indulgence, sir, I want to here specify the various steps that government has taken, and it will be helpful for honorable members to know about it. It is not without effort that these prices, the CPI has come down. UK and Germany are having an inflation rate of 9.2% and 8.5% respectively. US inflation has also been very high, but ours has come down because of the various steps like reduction in the excise duty on petrol and diesel, prohibition of export of wheat products, reduction in import duties and cesses on pulses, rationalization of tariffs and imposition of stock limits on edible oils and also on oil seeds. ये सब कदम हम उठा रहे हैं, जिसके वजह से आज नियंत्रण में है महंगाई. Maintenance of buffer stock for onions and pulses, rationalization and of import duties on raw materials used by manufacturing sector, imposed also an export duty of 20% on rice, brown rice, semi-milled rice, as well as wholly milled rice. So, except for parboiled rice, every export item under rice has been levied with an export duty. And also, I will repeat, so that the poorest of the poor are not suffering, Garib Kalyan Anna Yojana has been extended from 1st January 2023. This will provide free food grains for 80 crore beneficiaries. Import duty on masoor has also been brought to 0%, जिससे हम सस्ते में इंपोर्ट कर पाएंगे मसूर को. ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1.5 million tons of chana to states and union territories at a discounted rate, जिससे सरकार पीडीएस के द्वारा स्टेट्स में चना को सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. चने के प्राइसेस भी रिड्यूस किया गया है. सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, मगर विषय quarterly unemployment rate for urban areas has actually declined. Unemployment has declined from 9.7% in April-June 2018 to 7.2% in July-September 2020. So, employment generation through MSMEs is something which I earlier elaborated on. There was also this very frequently heard concern that health and education had lesser allocation. Even that is not true, sir. Ministry of Health and Ayush, the BE for 23-24, which is this budget which is here, is about 92,802 crores,
which is higher than the BE of 22-23 of 89,250. पिछले साल 89,250 था crores हेल्थ के लिए, इस साल 92,802 हो गया है. बढ़ती आ रही है, ना कि कम. एजुकेशन के लिए सर पिछले साल हमने 1,04 लाख करोड़ 1.04 लाख करोड़ दिए. इस साल हमने उससे बढ़कर के 1.13 लाख करोड़ दिए हैं. इसलिए एजुकेशन का भी कम नहीं हुआ है. So paddy has not been procured. This was a specific, probably, concern by Shri Bhartrihari Mehtab. Odisha is following a decentralized procurement strategy. Under the decentralized procurement strategy, sir, state government undertakes direct purchase of paddy from farmers, rice and so on, and stores it, distributes the rice under NFSA and other welfare schemes. And the central government undertakes to meet the entire expenditure incurred by the state government on the procurement operations as per the approved costings. Against the given estimate of 56.93 lakh metric tons of paddy procurement during the Kharif season 22-23, 50.54 lakh metric tons of paddy has been procured in the state by the state government and its agencies, which is 26.44% higher than before. So you are procuring because of the decentralized arrangement, and we are completely with you in terms of meeting the expenditure. So paddy has not been procured in Odisha by the government. It's not a right allegation. After all, you are the ones who are procuring it. So we want to just make sure that we understand this. That's right. So FCA also, but you are the main drivers there. So there is no इसके ऊपर कोई आशंका रहने का आवश्यकता नहीं है. उड़ीसा के डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट अभी भी बरकरार है. So, but I thought he was talking about the procurement earlier. I've answered that. Sir, then there were a lot of members who said allocation has not been announced in the budget for MISHTI, Agricultural Accelerator Fund, PM Pranam, Shri Anna Yojana, and all that. That will obviously come after we have the budget cleared through the House. Sir, lastly, quite a few. Sir, I have few things to say, sir. Sir, मैं हिंदी में भी बोलना चाह रही हूँ सर. अगर मेरा गलती कुछ है तो हिंदी में बोल रही हूँ. जो स्कीम्स बजट में अनाउंस किया गया है, चाहे वो मिष्टी हो, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर हो, श्री अन्न हो, इन सब का घोषणा तो हुई, मगर पैसा अलॉटमेंट अभी पारित होने के बाद हम करेंगे. वो अभी नहीं है, शिकायत नहीं हो सकता है. Sir, special package for J&K. Sir, special package for J&K. J&K के ऊपर attention नहीं है. I can't see the member, Honorable Hasnain Masoodi ji. I just want to highlight special fiscal support. आपको याद होगा सर, जब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए विंटर सेशन में आई थी, 9,486 crores have been given for special assistance, special fiscal support for J&K. Then that also includes 850 crore grant for Jhelum Thavi flood recovery project, which is funded by the World Bank.
सो JNK के लिए जो देना है वो एब्सोल्युटली ऑन द डॉट हो रही है, एडिशनल भी सपोर्ट मिल रही है. Substantial progress has also been made in the implementation since only after 2019, and despite COVID pandemic, the disbursement of 62% of external assistance in 154 million US dollars has also happened post 2019 for Jammu and Kashmir. External assistance के द्वारा भी JNK को 2019 के बाद 62% ज्यादा अलॉटमेंट और डिस्बर्समेंट हुआ है. सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस माननीय मेंबर सुप्रिया सुले ने उठाया कि नहीं, गवर्नमेंट कलेक्ट सो मच ऑफ सेस इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, वेयर डज दिस अमाउंट गो? आई जस्ट वांट टू रीड द नंबर्स, क्योंकि नंबर्स ही एक्सप्लेन करेंगे सच्चाई क्या है. 2021 मीनिंग 2020-2021, 35,821 crores were collected, cess that was collected under the name of health and education cess. From this amount allocated to the Ministry of Education, from this मैं बोल रही हूं जानबूझ करके, I know this is far lesser. 50,729 for education. Amount allocated for Ministry of Health, 18,498. Total amount spent on that head is 69,228, जबकि collection 35,821 ही था. Actually, हमने states को 69,228 तक दिया है सर उस साल 2020-2021. So, सेस ज्यादा कलेक्शन हो गया, हम उसको इधर रख रहे हैं नहीं. जितना कलेक्शन हुआ उससे ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट सेंटर को, स्टेट्स को दिए. 21-22 का मैं अभी बोल रही हूं, 52,732 सेस कलेक्टेड अंडर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. Amount collected to Ministry of Education, amount allotted to Ministry of Education, 56,788. पिछले साल से ज्यादा ही allocation हुआ. Amount allocated to Ministry of Health, पिछले साल से ज्यादा ही 25,000 crores. कुल मिलाकर के स्टेट्स को सेस, इस कैटेगरी सेस के द्वारा 21-22 में 81,788 दिया गया है. मतलब 52,000 कलेक्ट हुआ, 81,000 स्टेट्स को भेजा गया. सर, ऐसे ही 2022-23 का नंबर दे रही हूं जो बीई है. I don't have the total as it is now because we have another 1 month to go. 62,500 crores is the cess expected to be finally collected. इसमें 86,100 is what we expect to give. So not 1 year, I'm giving you the data, have we kept money from the cess. We actually have given more to the states than what we have collected. So total amount for the 3 years, cess collected, 1,51,053 crores. Actually given 2,37,116 crores. So education and health में सेस जितना कलेक्शन हुई उससे बहुत ज्यादा स्टेट्स को हमने दिया. सो सेस के ऊपर ये शंका नहीं रहना चाहिए. Sir, again, here it was question about 15th Finance Commission, the share of the states in the divisible pool, which is 41%. As I'm speaking, I'd like to say, 22-23, the share of central taxes is expected, this is the BE figure for 22-23, is साल मार्च तक 2022-23 का share of central taxes which will have to be collected is 8.17 lakh crore, which was the BE number. But in all probability, the RE would be much more than that,
and I roughly say, I hope I'm not going to be pinned down on this, I'm giving at an estimated number, 9.4 lakh crores is what we might get as central taxes. Collection अच्छा होने के कारण ये number 8.17 था, अभी 9.48 lakh crore का expectation आ रही का. So devolution में ज़्यादा amount जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ हर महीना जितना देते हैं हम devolution के formula के तहत उतना देंगे, मगर मैं आज क्योंकि आज 10 तारीख है, normally we distribute devolution of tax goes to the states. इस महीना क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का गाइडेंस इसमें था कि स्टेट्स के हाथ में पैसा डालो, जल्दी डालो, जिससे वो खर्च कर पाएंगे, इस महीना हमने 1 महीने के devolution के जगह पर 2 महीना का ही दे रहे हैं. We are giving 2 months in the place of 1. So स्टेट्स के हाथ में इस महीना जितना पैसा जाना है उससे डबल अमाउंट जाएगा आज के दिन 10th of February. सो स्टेट्स का सेस में भी, डेवल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेशन में भी कोई कुछ कटौती कमी नहीं है. बार बार हम ज्यादा ही पहले ही दे रहे हैं क्योंकि स्टेट्स के हाथ में रहना अच्छा है, वो खर्च उठा पाएंगे. इतना ज्यादा देते तभी तो पिछले साल का बजट पड़ गया. So I want to make that clear that. So I've answered on Bengal, sir. So market intervention scheme के ऊपर they are the market intervention scheme, sir. Prices support scheme, PM Asha, price stabilization fund, are all overlapping in their mandates. They're all for support of farmers. We will ensure that the support continues, but they are undergoing rationalization to enhance administrative efficiency. That I want to make clear here. Therefore, accordingly, a token provision under MIS and PSS scheme has been made in this budget. Necessary provisions will be made during the course of the year upon approval of the rationalization of the 3 schemes that I mentioned. Sir, I think on tribal affairs, there were quite a few questions. Promise was made to recruit 38,000 teachers in Eklavya schools. That has not been fulfilled. Honorable members not here, Shri A. Raja, he raised this question, but I want to give that response there, sir. Under this scheme, residential schools to be established in each block with 50% or more tribal population, at least 20,000 tribal population jahan hai, wahan ye Eklavya school banane ke. Altogether, 740 Eklavya schools are scheduled to be established across the country, out of which 690 Eklavya model schools have already been sanctioned and are remaining to be, and the rest are remaining to be sanctioned on receipt of land details from the concerned states. Presently, 401 such Eklavya model schools are functioning with an enrollment of 1,13,275 students. We are talking about tribal students who are registering in Eklavya model schools. And therefore, this budget has made a provision for recruiting 38,500 teachers for all the 740 Eklavya schools. And this announcement has been made in this budget. And in a phased manner, within 3 years, this whole recruitment will be completed. Sir, I'm coming to the last issue, sir. That is the 15th issue. Reduced allocation for minority affairs. Adir ji uske upar bahut hi chinta jataye. Sir, first of all, I'll go to the details of it. First of all, sir, hum vote bank politics nahi karte. सबका साथ सबका विकास करते, जिनका एलिजिबिलिटी हो फेलोशिप के लिए, चाहे वो कुछ भी मजहब का हो, कम्युनिटी का हो, लैंग्वेज का हो, उन सबको फेलोशिप मिलता है.
किसी ना किसी हेड पर, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, सोशल वेलफेयर के द्वारा, कोई ना कोई कैटेगरी द्वारा सबको मिलता है. We don't believe in vote bank politics, and therefore we have very clearly, and in this case I want to get into the detail to tell you, Honorable Minister of Minority Affairs had only a couple of days ago, through Twitter, said so many details of what this is being discussed about. She says, students across all categories, I'm quoting here, students across all categories, irrespective of community, are eligible for Junior Research Fellowship Scheme of the UGC and the CSIR. Moreover, students from minority communities are also covered under the fellowship schemes of other ministries, including Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. So clearly, and then she goes on to say, in the last 8 years, I'm quoting again, sir, in the last 8 years, more than 21,100 minority students have been granted loans worth 289 crore through the National Minority Development and Finance Corporation, the NMDFC, against 17,200 beneficiaries during 2006 to 14 UPA regime. उस समय 17,200 था, अभी 21,100 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिल रही है. हमारा न्यू इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री जी के क्लियर फोकस इस सबको साथ दो, सबका साथ, सबका विकास. किसी का किसी कारण में बाहर निकालना नहीं है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स whoever eligible will get it. That is how gas was distributed to everybody. That was how houses were given to anybody. We didn't discriminate. Whoever has got to get it will get it. Whether it is house, whether it is toilet, whether it is water, whether it is gas, everything is distributed to every Indian citizen who is eligible. So उसमें कुछ अंतर नहीं है. Sir, एक और विषय sir. It's very audible, thank you. Very audible and I've answered. If you want to not hear it, it's a different story. Sir, एक विषय sir. I've answered that question, sir. Honorable member, I've answered that question. Sir, एक और विषय sir. क्योंकि मेरा नाम लेकर के विपक्ष के नेता बोले निर्मला सीतारामन ने इतना अमाउंट ग्रीन के लिए अलॉट किया, ये किसी को मन में रखते हुए अलॉट किया. प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में कोई किसी का मन में रखते हुए नहीं करते, सबको मन में रखते हुए करते हैं. ये देश को मन में रखता है. इसीलिए ऐसे बयान देना एब्सोल्युटली इज रॉन्ग. If anything, I would want to end in a positive note, but if anything, if such language continues, and I've been repeatedly the target of such language by the leader, I'm not taking anybody's name because the leader is not around here now, throw the allegation and go away. I'm sorry, sir, if allocations were made, if phone calls were made, if relations were given benefit, if jijajis and batijas got benefit, it might be their culture. Under Prime Minister Modi, none of us do any of that. And therefore, any such allegation will be given back in the same language. I'm sorry. I cannot afford to have this kind of language. Sir, अंत में जी आदिर जी बात करते हैं बहुत इमोशनली बात करते हैं.
हाँ, हमारे ऊपर एलिगेशन डाला, आप एक कम्युनिटी के खिलाफ है। सर, मैं अपील करती हूं आपको, स्पीकर सर, मैं अपील करती हूं आपको, जरा सुनने के लिए क्षमता रखने के लिए बोलिए। सिर्फ 2-3 विषय है सर, सिर्फ 2-3 विषय, सिर्फ 2-3 विषय जो उनको थोड़ा पसंद नहीं लगेगा। सर, आदिर जी ने बहुत गंभीरता से, आप एक यू आर एंटी ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसे बोले, मुझे बहुत दुख लगा। नहीं, ही सेड इट, या बट सर, एलोकेशन कम है इसीलिए हम एंटी एक कम्युनिटी है सर। विनम्रता से मैं बोलना चाह रही हूँ सर, एलोकेशन कम नहीं हुआ। को जीजा का नाम लेता है तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है सर। सर चिल्लाने के लिए थोड़ा मदद ले रही हूं सर, पानी पी पी करके। सर मैं जल्दी खत्म करूंगी सर, मगर प्रोवाइडेड दे हियर मी। सर, बजट में कोई एलोकेशन किसी का भी कम नहीं हुआ, मैं बार बार उसको नंबर के साथ बोल रही हूं। फिर भी क्योंकि नंबर कम हो गया है, ऐसे वो अनुमान रख के बोलते हैं कि आपने एलोकेशन कम किया इसीलिए उनके खिलाफ है। मगर मैं याद दिलाना चाह रही हूं सर, हिस्ट्री के कुछ पन्नों से, हिस्ट्री के कुछ पन्नों से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं। बजट में नंबर कम नहीं हुआ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सबका साथ मैं बोल रही हूं। प्रधानमंत्री जी के बहुत बार बार याद दिलाने वाले लाइन, सबका साथ सबका विकास। फिर भी सर, मैं सबका प्रयास भी है। प्रश्न सर, प्रश्न पूछ रही हूं सर, मैं प्रश्न पूछ रही हूं, क्या बजट में नंबर अच्छा देने के बाद अगर एक कम्युनिटी को कत्लेआम होता है, उस साल इलेक्शन कमीशन भी बोलता है प्लीज इलेक्शन ना रखो, शायद उस समय के बजट में इतना अमाउंट दिया है उस कम्युनिटी के कारण, फिर भी उस कम्युनिटी का कत्लेआम होने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन कहने के बाद भी, इलेक्शन अभी ना करो कहने के बाद भी, उस कम्युनिटी के कत्ल खून भी सूखा नहीं है। उधर नेल्ली में जाकर के इलेक्शन करने वाले कौन है? कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी। वो उस बजट में बहुत अलोकेशन हुआ मगर कत्लेआम भी हुए असम नेल्ली में उस कम्युनिटी का। इसका जवाब वो देंगे कि नहीं देंगे, वो मैं पूछना चाहती हूँ। दुख से ये बात कह रही हूँ, उस कम्युनिटी के ऊपर पसंद है, मन है, उनके रक्षा कर रहे हैं, तो कैसे ये हुआ? कैसे ये हुआ? फिर बजट, दानिश अली जी, आप उनके प्रश्न मैं पूछ रही हूं, आप पूछना चाहिए इस विषय में। सर, इतना एलोकेशन किया, मान लीजिए उस कम्युनिटी के ऊपर इतना प्यार है, तो दिल्ली में गले में टायर लगा करके सिक्कों का कत्लेआम हुआ। क्या हुआ? बजट में एलोकेशन कम था क्या? बजट में एलोकेशन कम था क्या? सो बजट के एलोकेशन के ऊपर आप प्यार का, नफरत का बातें ना करें। आपने इन लोगों का कत्लेआम किए, उस समय क्या उनके बजट के एलोकेशन कितना था सर? लास्ट बात, मैं लास्ट बात ये बात बोल रही हूं सर।
1966 में 1963 अरे नेल्ली ची 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 नेल्ली में जो हुआ उसका ची 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 बोलना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी ने ची 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 की कविता सुनाए। वो उसका जवाब कौन देंगे? लास्ट बात सर, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है सर। लास्ट बात बोल रही हूं सर, अगर दिल्ली में 1966 में एंटी काउ स्लॉटर डेमोन्स्ट्रेटर्स पार्लियामेंट के बाहर गो हत्या के विषय में प्रोटेस्ट करने वाले हिंदू सन्यासी को मार पिटाई करने वाले कौन है सर? यही 96 का कांग्रेस पार्टी है सर। सो बजट में एलोकेशन के कारण हम एक कम्युनिटी के नफरत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नाटक करने वाले इसे, यही है जवाब मेरा। श्री मरगनी भरत जी। एक मिनट वेट हुआ। This situation in the country is very alarming. The LIC policy holders, State Bank of India depositors are very much hungry. Margani Bharat ji, that their money will be secured and protected. Bajendra Singh, Bajendra Singh, रविंदर कुशवाहा, शून्यकाल भाई। शून्यकाल। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर राम जानकी पथ गुजरता है, जो रामायण सर्किट का हिस्सा है। राम जानकी पथ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोहगरा धाम में एक पौराणिक शिव मंदिर है, जहां पर जनकपुर से अयोध्या जाते समय माता सीता ने महादेव जी की शिव की पूजा अर्चना की थी। लेकिन इस पौराणिक मंदिर को रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया है, जिसके बिना रामायण सर्किट अधूरा है। इसके लिए सोहगरा धाम से सटा हुआ श्री दिग्देश्वर नाथ धाम है, सोनाग धाम है। मैल चौराहा पर विश्व प्रसिद्ध संत महर्षि देवरावा बाबा का आश्रम है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बलिया में महान ऋषि भृगु संहिता के रचयिता महर्षि भृगु आश्रम ऋषि का आश्रम है। और बिहार की सीमा से लगे सोहनपुर में श्री राम जानकी मंदिर और एक विशाल तालाब है, जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है। इन स्थानों को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। माननीय मंत्री, अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सोहगरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ने और सोनाग धाम, दिग्देश्वर नाथ धाम, महर्षि देवरावा बाबा आश्रम मैल, श्री राम जानकी मंदिर सोहनपुर और महर्षि भृगु ऋषि आश्रम बलिया को विकसित करने की कृपा करें। धन्यवाद। जामयांग शेरिंग नामग्याल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस शून्यकाल पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो मौका दिया। सर, आर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने 2005-06 में एक कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से स्टेट में एक पॉलिसी लाया गया, जिसके माध्यम से जितने भी सरकारी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को सभी स्कूल में
स्पोर्ट्स, गेम, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात किया और जिसको चलाने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए एटलीस्ट कम से कम हर स्कूल में एक जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर अपॉइंट करने का जो निर्णय था। पूरे जम्मू कश्मीर में एक्सरसाइज हुआ था इंक्लूडिंग लद्दाख। 30,000 ऐसे जो पोस्ट का क्रिएट किया और जिसमें सभी युवाओं को जिन्होंने एमपीड ग्रेजुएट किया हो कम से कम, उसके ऊपर जिन्होंने या एमपीएड किया हो, बीपीएड किया हो या ऐसे उससे अधिक जो क्वालिफिकेशन है उन लोगों को अपॉइंट किया। और निर्णय ये भी था उसी जिस जोन में स्कूल है उसी जोन से जो है कैंडिडेट को अपॉइंट करे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सर उस कैंडिडेट्स का उनका जो 7 साल का टेन्योर है वो रेगुलराइज नहीं होंगे और 7 साल में से पहले के 2 साल जो है उनको प्रति माह 3,000 रुपये ही मिलेंगे और उसके बाद 5 साल जो है केवल 4,000 रुपये ही मिलेंगे। ऐसे अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद अभी भी ये जो है कंटिन्यू चल रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से माननीय गृह मंत्री जी से विशेष निवेदन ये है, जम्मू कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर है, जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगा तो वहां के डिसीजन हो जाएगा, लेकिन लद्दाख में टोटल लेह कारगिल में 98 ऐसे जो आज हमारे पास फिजिकल एजुकेशन टीचर है सर, 1 मिनट में खत्म करता हूं, 98 टीचर से फिजिकल एजुकेशन जिसको रेबारे खेल का नाम दिया गया, जो प्रति माह 3,000 4,000 रुपये में इतने जो दुर्गम क्षेत्र में बर्फ इलाके में जो काम कर रहा है, मेरे आपसे अनुरोध है कम से कम जो है इनको 3,000 4,000 रुपया से बढ़ा के 18,000 कम से कम प्रति माह हो, जो कि भारत सरकार के 7th पे कमीशन के मिनिमम वेजेस जो फिक्स है कम से कम जो है 18। सर बस 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, 2 सेकंड में तो ये कम से कम 18,000 तो दिया जाए। और दूसरा जितने भी ऐसे जो है अलग से पोस्ट क्रिएट करके इनको रेगुलराइज किया जाए और लॉन्ग रन के लिए ये रेबारे खेल का पॉलिसी जो है लद्दाख में खत्म किया जाए, स्क्रब किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, कश्मीर में एक समय हुआ करता था जब आतंकवादी निकलते थे और वो 10 साल पहले 15 साल पहले हम देखते थे कि इंटरनेट की सुविधा बंद किया जाता था क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है और वो इसलिए बंद की गई हैं कि वहां इस प्रकार का अपराध हुआ है, हत्या हुआ है और निर्मम बच्चों को मार दिया गया है जो एक जाति समाज से थे। वहां आपराधिक वारदात इतना बढ़ गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सारण जिला में इंटरनेट को बंद किया गया है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, ये आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट, कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। मैं आपसे मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं सभी सांसद कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद बिहार की सरकार पैदा कर रही है, गांव गांव में झगड़ा हो रहा है, मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए से सेंट्रल टीम बिहार भेजी जाए, क्योंकि सारण में पहले भी इसी जिला में 150 लोग जहरीली शराब पी के मरे थे और आज इंटरनेट बंद करके ऐसे गरीब बच्चों की हत्या की गई है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल टीम जाने की मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष। एच थिरुनुवक्कर रासर जी, wrongly. No problem, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this 0 hour to raise a very important issue. So the Ministry of Rural Development in its latest order dated 23rd December 2022 stated that digital attendance of Manrega through mobile monitoring system NMMS would be mandatory in all the work sites, and it has been made universal from January 1st, 2023. This move has been receiving opposition from several quarters since May 2022, made compulsory for all workers with 20 or more workers. This requires uploading 2 time-stamped and geotagged photographs of the workers. The job fell on the supervisors, who are paid only marginally more than the unskilled workers. There are widespread complaints over the lack of technical support, the necessity to own
smartphone, paying for internet connections, and issues with erratic internet connectivity. It replaced the paper muster rolls, which was in use before NMS was introduced. The second big problem is the 2-time stamped photographs. Often, the workers may finish their work, but are forced to return to the work site for the second photograph. So, Manrega program was launched by the Congress Party during the period of Dr. Manmohan Singh ji. Is shining example of democracy at work focused to empower the poorest of the poor of this nation. And the latest order imposing technological barriers goes against the spirit. Therefore, in order to protect the poor working class, I urge upon the Union government to withdraw this order and bring back the process that had existed earlier until the barriers pointed out are duly addressed. And I request the central government to increase the number of Manrega days also and increase the salary also to 200. And days also should be... Okay. Brijen Singh ji. धन्यवाद सर। महोदय, हरियाणा जहां तक सरसों की फसल का सवाल है, उसके उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जनवरी के माह में पड़े पाले से सरसों की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। तापमान जमाव बिंदु से कम होने के कारण सरसों, जो कि अत्यधिक संवेदनशील फसल है, उसके उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ा है। कृषि एवं विज्ञान कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय द्वारा नुकसान के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भीषण सर्दी और पाला मतलब जब वो बर्फ की परत सी पड़ जाती है फसल के ऊपर, उसके कारण सरसों की फसल को जो नुकसान हुआ है वो करीब 50% से अधिक है। और खास तौर पे इसका असर जो बरानी इलाका है, गैर सिंचित क्षेत्र जो हैं, उस पर बहुत ज्यादा पड़ा है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी एरिया में इसके लिए स्पेशल गिरदावरी अलाउ की है, लेकिन जो मुद्दा मैं आपके माध्यम से यहां उठाना चाहता हूं वो ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल योजना है, उसके अंदर पाले से यदि फसल प्रभावित होती है तो वो लोकलाइज्ड कैलामिटी में इंक्लूड नहीं होती। और इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अत्यधिक सर्दी के कारण जब पाला जमता है, उसकी वजह से यदि फसलों को नुकसान होता है तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए, ताकि किसान को इससे लाभ हो सके और उनके नुकसान की भरपाई हो सके। धन्यवाद। मोहंती जी। बहुत धन्यवाद सर। मैं मेरे क्षेत्र के रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा सर। मैंने अनुरोध किया था, ओडिया में अगर इंटरप्रेटर है तो मैं बोलना चाहूंगा सर। हैं क्या सर? मु अनुभव महांती केन्द्रापड़ा को प्रतिनिधित्व कर लोकसभा रे सर। भारतवर्ष को आजाद हवारे स्वाधीन हवारे 75 वर्ष पूरी गलानी। आजादी का अमृत महोत्सव आम पालुचु सर, किंतु एपर्यंत केन्द्रापड़ा रे गोटे पैसेंजर ट्रेन चली पारानी। बहुत कष्ट 2019 17वीं लोकसभा जितला परे माननीय मुख्यमंत्री एवं सेबेकार जी रेलमंत्री थे माननीय पीयूष गोयल जी, नवीन बाबू और दिजन जा मिसिकी ओडिशावासी केन्द्रापड़ा सर प्रथम थर गोटे फ्रेट कार चलला, किंतु एपर्यंत पैसेंजर ट्रेन से चली पारला नहीं सर। मु केंद्र सरकार को बहुत थर ए विषय लिखी कही दीर्घ 4 वर्ष भितर 10-15 थर अधिक एटा पार्लियामेंट भी उठेचु सर, किंतु गोटे रंग कनसेप्शन रही जाछि केंद्र सरकार के पाखरे। केन्द्रापड़ा रोड बोली गोटे रेलवे स्टेशन अच्छी केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएंसी रे केंद्र सरकार सेटा को कही जोटा मु क्लारिफाई करथिली एही हाउस रे सर। 4 अगस्त 2021 रे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 221 रे जो थे कि मते केंद्र मंत्री कही आश्वासन देते एश्योरेंस देते कि तार सबू जांच करके से मते तथ्य सब सामने रखिबे, बट एपर्यंत 1.5 वर्ष ऊपर हेगलानी कौन प्रकार तथ्य बा कौन प्रकार रिप्लाई मु पाई नाही। सेटा ऑनलाइन चेक कले ड्रॉप्ड बोली देखौची। ता सहित सर मु सर कहबाकू चाहिबी मयूरभंज को रिप्रेजेंट करछन सर आम भारत वर्षर गर्व प्रथम सिटीजन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रु, किंतु दुखर कथा सर मयूरभंज रे रेलवे प्रोजेक्ट भारतर स्वाधीनता ठू एपर्यंत मात्र 1 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्शन हेनी। गत वर्ष ए वर्ष बजेट रे मात्र 1000 टंका सर
₹1,000 has only been allocated for Mayurbhanj railway district गत वर्ष ए वर्ष भी आउ सर गत 12 वर्ष भितर सर खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प ପାଇଁ कि ₹4,692 crores allocation ପରେ भी मात्र ₹2,003 कोटी खर्च हेई पारिछि सर भद्रक रे भी एमिति 2-3टी प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर रेलवे रो ईस्ट कोस्ट रेलवे रो से निजे लेखिकी भी दैछन लिखित आम पाखरे प्रूफ अछि कि भद्रक रु नुआ रेलवे लाइन आरंभ हबो किंतु से सबु जाक प्रोजेक्ट से 2-3टी प्रोजेक्ट ठीक गोटे दिन पूर्व शिफ्ट हो जाउची अन्य जिला को आउ सर ए जो नॉर्थ ओडिशा को जो इग्नोरेंस नॉर्थ ओडिशा प्रति जो इग्नोरेंस रहउची रेलवे लाइन लो सेथिपाई कि आम माननीय मुख्यमंत्री बारंबार केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखिछन्ती कहिछन्ती सर केंद्र सरकार मयूरभंज को रिप्रेजेंट करछन्ती बीजेपी रो प्रतिनिधित्व करथुला वाला रिप्रेजेंटेटिव सो तांको अनुरोध कि निजे रूल करछन्ती जो जगह को जोटी निजे निर्वाचित होइके आछन्ती अंततः सेठी सर केंद्र रे मंत्री अछन्ती सेठी अंततः सर रेल प्रकल्प आरंभ हो लोक सेठिकार सुविधा पांतु रेल रो आउ सर केंद्रापड़ा पाई आपन को हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करछि जो सर एश्योरेंस मते दिया आइतले हाउस रे से एश्योरेंस केंद्र मंत्री रेल मंत्री ताकू प्लीज राम शिरोमणि जी हमें सर विनम्र अनुरोध करछु धन्यवाद सर जय जगन्नाथ श्री राम शिरोमणि जी नहीं है धन्यवाद माननीय सभापति महोदय आपने हमें बोलने का अवसर दिया माननीय सभापति महोदय हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर जो आकांक्षी जनपद हैं दोनों जनपद के बेसिक अध्यापक अध्यापिकाएं जो 400-500 किलोमीटर दूर के जनपदों से आकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं बेसिक अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया परंतु अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है केवल आकांक्षी जनपद को छोड़कर सारे जनपदों का स्थानांतरण गृह जनपद में होता रहता है माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इन बेसिक अध्यापकाओं को अपने गृह जनपद में स्थानांतरण कराने का कष्ट करें धन्यवाद श्री वी.के. श्रीकंदन जी श्री राजू विष्ट जी धन्यवाद सर म गोर्खा को सम्मान र स्वाभिमान का लागि आज यहाँ उभिएको छु एकचोटि यस महान देशमा फेरि पनि गोर्खाहरूको अपमान भएको छ र यसपालि यो अपमान टीएमसी का कुनै नेताले होइन तर भारतको सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टबाट यो अन्याय गोर्खामाथि भएको छ 13 जनवरी 2023 जुन रिट पिटिसनको एउटा जजमेन्टमा जुन कोर्टको अब्जर्भेसन थियो यस प्रकारले कि द पर्सन अफ फॉरेन ओरिजिन सेटल इन सिक्किम लाइक द नेपालीज सर यो सिक्किमको अपमान हो सिक्किम प्रदेशको मात्रै अपमान नभएर यो भारत देशमा बसोबास गर्ने 1.5 करोड गोर्खा समाजको यो अपमान हो म बधाई दिन्छु भारत सरकार सिक्किम सरकार र गृह मन्त्रालयलाई यो आपत्तिजनक प्याराग्राफ उहाँले रिभ्यू पिटिसन फाइल गराएर त्यहाँबाट हटाइयो यहाँसम्म पनि कुरा ठिकै छ सर तर यो पहिलोचोटि भएको होइन बारम्बार यसरी यो अपमान हुने गर्छ म सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु भारत देशमा बसोबास गर्ने यो 1.5 करोड गोर्खा चाहिँ को हुन् म को हुँ हामीहरूले कुनै बोर्डर पार गरेको होइन बरु बोर्डरले हामीहरूलाई पार गरेको हो र जसरी आज तमिल बोल्ने चाहिँ श्रीलङ्कन भएनन् बंगाली बोल्ने चाहिँ बंगलादेशी भएनन् भारतको संविधानले मान्यता दिएको नेपाली बोल्ने चाहिँ नेपालका कसरी भए त्यो पनि म सोध्न चाहन्छु र सर अन्तमा म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु जुन यो गोर्खा समाजमाथि बारम्बार यो जुन कलंक लाग्ने गर्छ यो कलंकलाई जडैसँग मिटाउनका लागि गोर्खा जातिमा 11 जनजाति अहिले पनि एसटी स्टेटसबाट छुटेका छन् म पुनः उहाँहरूलाई एसटी स्टेटसमा बहाल गर्न अनुरोध गर्दछु र यो काम चाँडै होस् भन्ने पनि म निवेदन गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद श्री बेन्नी बेहनन जी श्री रामकृपाल यादव जी सर माननीय सभापति महोदय मैं आज एक अत्यंत ही लोक महत्व पर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं
देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो गरीब मजदूर रोजी रोटी कमा करके 2 पैसा जमा करने वाले लोग आज ठगे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। सहारा इंडिया में लाखों लोगों ने पैसा जमा किया, हमारे बिहार सहित पूरे देश के अन्य भागों में। और मैं समझता हूं कि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, सेबी में लगातार लोगों के प्रयास के बाद भी उससे उबर नहीं पा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, कभी सेबी सुप्रीम कोर्ट सेबी, जिसके वजह से पिछले 10 वर्षों से इसका कोई समाधान नहीं निकला है। और चिंता की बात यह है कि तमाम गरीब लोग, मेहनतकश लोग पसीने की कमाई को गांव-गांव से मजदूरी करके, मेहनत करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अभी तक सहारा इंडिया से पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा दिन नहीं है जब सहारा इंडिया में जो लोग पैसा जमा किए हैं वो लोग आकर के गुहार नहीं लगाते हैं कि डीएम साहब को कह दीजिए मेरा पैसा निकल जाए। मगर पूरे देश में मैं कह रहा हूं, सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और निश्चित तौर पर पैसे के अभाव में जो गरीब आदमी हैं उनके पास बेटी की शादी करने के लिए, बच्चों की दवा के लिए, वृद्धों की दवा के लिए, घर बनाने के लिए जो सपना संजो करके रखा था नहीं मिला है और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा उन गरीबों के लिए जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब जो मकान नहीं बना पा रहे हैं और पाई पैसा जमा करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अपने पैसों के लिए जो जमा किया हुआ था, जो आशा थी, उसके लिए तरस रहे हैं, डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। जमीन पर स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों में आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सहारा में फंसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके पैसा लौटाने की अग्रसर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो जो सेबी ने जो पैसा जब्त किया है उसको जब्त किए हुए पैसे को गरीबों के बीच बांट करके उनको सहारा देने का काम किया जाए। सर, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है जिसको आपके सामने, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम कर रहा है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Chairman, sir. It is shocking to let this House know that almost every day Kerala is waking up a new and painful incident of human-animal conflict, mostly involving elephants, tigers, leopards, wild boars, where our common men and poor farmers are trampled or mangled to death by elephants and tigers. These unfortunate incidents destroy entire families, and the gruesome deaths suffered by these poor people are resulted by continued neglect and apathy and failure of the Kerala state government in resolving the issue by resorting to scientific solution to disease, decrease the human-animal conflict. Sir, in Kerala, Palakkad, Wayanad, Idukki, Pathanamthitta, districts are facing severe animal conflicts issues. Sir, it is shocking to note that State Chief Wildlife Warden himself has said that while trucksters killed 105 persons in Kerala between 2018 and 2022, and about 637 persons being killed in the wildlife attack in the state in the last 5 years, and the state government has no compensation or consideration towards addressing the concern, delivering remedial measures or in declaring compensation. In this situation, I would urge the Government of India to immediately constitute a relief package for the victims who lost their lives and livelihoods, and further engage to expert team to study about steps to be taken to mitigate the issue by suggesting practical and effective measures to the earliest. I would further suggest that the master plan is prepared by the government to effectively address this serious matter, and additional central government funding
to provide the victims of human-animal conflicts. Sir, once again, I would like to request through you, sir, Ministry of Environment and Forest, will be taken serious steps to these animal conflicts. Shri Dharamveer Singh Thank ji, you, sir. Shri Ravi Kishan ji, Shri Bhagirath Chaudhary ji, श्री पर्वत भाई सभा भाई पटेल जी, पहले लिस्ट एग्जॉस्ट होने दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के अंतर्गत पूरे देश का आम नागरिक योजना के माध्यम से देश के कई हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना बनाई है। 2 मिनट में कर दीजिए। इस योजना के तहत देश के आम व्यक्ति को हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के डिशा एयरपोर्ट के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि यह एयरपोर्ट अभी बंद हालत में है। यह जिला राजस्थान के बॉर्डर के से जुड़ा हुआ है और यह हवाई सेवा को तुरंत चालू किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आपको जानकारी देते हुए कहना है कि उत्तरी गुजरात के पाटन, अरावली, साबरकांठा, महसाणा और दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, दारो और बाड़मेर एवं पाली जिले में विमान की सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में 51 शक्तिपीठ में से प्रमुख अंबाजी माता का भी मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी माता जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उन्हें विमान सेवा उपलब्ध करवाने के हेतु भी इस एयरपोर्ट को चालू किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ के हीरा उद्योग के व्यापारी, कपड़ा उद्योग तथा मेटल उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी भी बहुतायत में रहते हैं और इनका व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ है। इन सभी को हवाई सेवा का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। आजादी के बाद यहाँ अंबिका एयरलाइंस की सेवा चालू थी, जो मुंबई, डीसा एवं जोधपुर तक की हवाई सेवा देती थी, परंतु बाद में ये सेवा बंद कर दी गई है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका चालू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञात हो कि इस एयरपोर्ट का रनवे तैयार है, इसकी बाउंड्री वॉल भी है और पुरानी बिल्डिंग भी उपलब्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि डिशा एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करके उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के लोगों को इसका लाभ दिया जाए। धन्यवाद। श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। सर, मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर एक ही म्युनिसिपल काउंसिल है, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, और इस म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में करीब 902 डेली रेटेड मजदूर और कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं सर। ये पिछले करीब 15 साल से 10 साल 15 साल से वहाँ काम करते हैं और इनका जो माली हालात है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है सर। तो मैं आपके द्वारा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 902 जो हमारे डीआरएम साथी हैं, कैजुअल साथी हैं, वन टाइम एक पॉलिसी बनाया जाए और ये सबको एक साथ रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि अब उनका एज खत्म हो गया है सर। एज खत्म होने के साथ साथ अब उनके जो फिजिकल कंडीशंस है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज का पूरा जो कूड़ा है, कचरा ये उठाते हैं और एज भी चले गया, अब फिजिकली भी वो फिट नहीं है, तो उनके पास में और कोई दूसरा स्कोप नहीं है कि कहीं पे जाके वो नौकरी कर सके। और एक छोटा सा विषय और बोलना चाहूंगा सर, जस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में 10,000 गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट है सर, और अब वो ग्रेजुअली उसको फिलअप करना स्टार्ट किए हैं। मगर मेरा आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाया है कि 10,000 जो पोस्ट है इसको अंडमान निकोबार के जो नौजवान बच्चे हैं उनके द्वारा भरा जाए, क्योंकि आज देखने को यह मिला है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा ये प्रोसेस होता है और मुख्य भूमि से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ज्यादा क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं कंपेयर टू अंडमान के बच्चों से, तो वो जॉब उनको मिल जाता है, जिसको लेके अंडमान के यूथ के अंदर बहुत बड़ा एक अनरेस्ट है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा सरकार से ये जो 10,000 जो पोस्ट है सर वो अंडमान निकोबार के बच्चों के द्वारा ये फिलअप किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चेयरमैन सर। I am raising a matter relating to river Mahanadi, which I have been raising number of times during the 16th Lok Sabha and also in the 17th Lok Sabha. I have raised this issue. The issue is Chhattisgarh unilaterally planned illegal abstraction of 24.50 million acre feet of Mahanadi river water. This is disclosed in their letter dated 27th August 2016. As per 1947
report of Central Waterways Irrigation and Navigation Commission on the Mahanadi Valley Development Hirakud Dam project, the minimum flow of 20.61 MAF of water was apportioned and Odisha was permitted to use 12.98 MAF of water and the rest for the upstream states. After much persuasion, the union government did not act. Ultimately, Odisha government went to the apex court and it referred the matter to the union government to form a tribunal. The tribunal, after formation, has already had 33 sittings during last 3 years or more. And one does not know how many more sittings are supposed to be held. The tribunal was supposed to give, as per the law of the land of today, was supposed to give its report within a specified period of time. They have not done it yet. I would urge upon the government to find out whether state of Chhattisgarh during its project planning has considered the MOEF guidelines for minimum environment flow. How many water arresting structures been constructed by Chhattisgarh across Mahanadi? Whether dams inside Mahanadi basin of Chhattisgarh are being operated by any standard operating procedure? Whether Chhattisgarh has kept any provision in their reservoirs to absorb flood water temporarily for the safety of Hirakud Dam of Odisha? The answer is big no. Should not the centre intervene? And here I would like to draw the attention of this House and also of the government through you, sir. Today, भयंकर स्थिति हीराकुद डैम में है, रिजर्वर में है. It is the reservoir water level is coming down every day by 5 feet. Intake of water is hardly 10,000 cubic. अभी 622 फीट 6 to 1.97 फीट है रिजर्वर का. और ये अगर ये हालत ऐसा रहा क्या करना है तो बुरी हालत हो जाएगी. और जो उड़ीसा के जितने सारे पावर जनरेशन, कैनाल इरिगेशन, ये और जो एक्वाफायर जो महानदी सिस्टम में है, ये पूरा बंद हो जाएगा. तो जो सिस्टम है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से छत्तीसगढ़ तो पानी भेजे. अभी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा वहां से. ठीक है, वो पूरा बंद कर. और ये महीना फरवरी का, आगे समर है. ये फागुन का महीना आने की और 5 दिन बाकी है. और ये है आज का स्थिति महानदी रिवर सिस्टम में. ठीक है, ये कंसर्न इज ए वेरी बिग कंसर्न ऑफ आवर स्टेट एंड ऑल्सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ आवर. श्री रामचरण वोरा जी. धन्यवाद सभापति महोदय. सभापति महोदय, जयपुर सहित राजस्थान के युवाओं में तीव्र गति से नशे की प्रवृत्ति पर स्थायी रोकथाम के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. महोदय, आज तेज गति से स्कूलों में भी नशे की दुष्प्रवृत्ति फैल रही है. सामान्य परिवारों से आने वाले छात्र कोचिंग और अध्ययन के लिए युवा को विभिन्न गिरोह जानबूझकर बहला फुसलाकर नशे के दलदल में धकेल रहे हैं. हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है नशे का कारोबार गहरी जड़ें स्थापित कर चुका है. महोदय, हालांकि राजस्थान सरकार ने इसके लिए एंटी ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई है, लेकिन संभवतः या तो उसका स्वरूप कमजोर है या कार्रवाई की तत्परता में कमी है. महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की तरह भारत को ये नशे की प्रवृत्ति में भी खोखला कर रही है. स्वामी विवेकानंद के भारत में हमें इस दुष्प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने की आवश्यकता है, कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है तथा युवाओं के भविष्य को ठीक रखने के लिए मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि नार्कोटिक्स ब्यूरो के अधीन एक विशेष सुदृढ़ यूनिट राजस्थान में नियुक्त की जाए ताकि इस बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. श्री मुकेश राजपूत जी. धन्यवाद सभापति महोदय.
आपने बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ट्रेन संख्या 19,715/19,716 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार सीकर अथवा झुंझुनू रेलवे स्टेशन तक करने का मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, क्योंकि महोदय इस ट्रेन के माध्यम से फर्रुखाबाद लोकसभा सहित कम से कम 6 और लोकसभा के लोग यात्रा करते हैं। यहां से लोग खाटू श्याम, श्री खाटू श्याम एवं रानी सती के दर्शन के लिए जाते हैं, जिन्हें जयपुर उतरना पड़ता है, और जो जयपुर से श्री खाटू श्याम और रानी सती मंदिर जाने के लिए वो विभिन्न साधनों से जाते हैं, जिसे समय भी काफी लगता है और यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और ये ट्रेन जयपुर में लगभग 14 घंटा खड़ी रहती है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर और लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाए। इसलिए ट्रेन संख्या 19,715 एवं 19,716 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन को सीकर तथा झुंझुनू तक बढ़ा दिया जाए। महोदय, मेरा एक और मांग है इसी के साथ साथ कि खाटू श्याम मेला देखने के लिए हमारे यहाँ से काफी मात्रा में अभी जो आपका फागुन माह है, इसमें लगभग 1-1.5 महीना लोग बड़ी मात्रा में लोग यात्री यहाँ से यात्रा के लिए जाते हैं, दर्शन करने, श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक स्पेशल मेला ट्रेन चला दी जाए, जो कानपुर से होते हुए कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कासगंज, मथुरा होते हुए श्री झुंझुनू तक या खाटू श्याम तक चला दी जाए, जिससे कि हमारे यहाँ के तीर्थयात्रियों को सुविधा हो सकेगी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया और इस को उठाने का अवसर दिया। थैंक यू। ऑनरेबल डॉक्टर संजीव कुमार सिंघारी जी, थर्ड पर्सन। I call upon members 1 minute maximum. श्री अशोक नेते जी। धन्यवाद। यस। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिली चिमूर, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल अविकसित और नक्सल प्रभावित और आकांक्षित है। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े प्रमाण पे यानी 78% फॉरेस्ट है, जिसमें बड़े प्रमाण पे मिनरल्स है, जैसा कि ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, मैग्नीज, कोयला, सोना बड़े प्रमाण पे है, जिसके ऊपर कई उद्योग खड़े हो सकते हैं, कारखाने हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तक हुए नहीं, इसका कारण ट्रांसपोर्टेशन की कम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन जी गडकरी जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब करीब 8-9 नेशनल हाईवे मंजूर किए, जो तेजी से चालू है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मोदी जी के नेतृत्व में अपने रेलवे मिनिस्टर ने 3 रेल लाइन मंजूर की चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 2-2.5 साल में ये यदि पूरा हो गया तो वहां पे बड़े बड़े कारखाने आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बहाने डिमांड है कि उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित किया। अध्यक्ष महोदय, केंद्र का कोई टैक्स और स्टेट का कोई टैक्स नहीं लगता। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र में टैक्स हॉलिडे पैकेज यदि घोषित किया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, और वहां के जो बड़े पैमाने में बेरोजगारी हो गए, लाखों बेरोजगार है, जो भटक रहे, जो गलत रास्ते पे जा रहे, ऐसे बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा। यदि टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित किया तो इजीली वहां कारखाने आएंगे और उद्योग आएंगे। मेरी डिमांड है केंद्र सरकार से कि वहां टैक्स हॉलिडे पैकेज घोषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद के आवंटन में जो सरकार की, भारत सरकार की जो नीति है,
गलत नीति है उसकी ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। खाद की आपूर्ति इस साल बिहार के मामले में मैं संदर्भ में कह रहा हूं कि इस बार रबी के मौसम में भारत सरकार ने जो आकलन किया और उस आकलन के मुताबिक 12.70 लाख मैट्रिक टन यूरिया का आकलन भारत सरकार ने किया। अब जब रबी के मौसम में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ज्यादा खाद की जरूरत होती है, क्योंकि वो टॉप ड्रेसिंग का समय होता है और उस समय भारत सरकार ने जो आवंटन था उसका 86% ही आपूर्ति किया। तो अब ये 14% अगर शॉर्ट आपूर्ति हुआ, उसके कारण बिहार में अफरा तफरी मच गई खाद के संकट के कारण, तो इससे फसल प्रभावित होता है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि जो खाद का आवंटन, जो आकलन आप करते हैं उसके अनुरूप रबी का मौसम हो या खरीफ का मौसम हो, समय के अनुसार आप खाद का आवंटन कीजिए ताकि किसानों को सही समय पर खाद मिल सके और फसल प्रभावित नहीं हो, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है और अगर आप खाद की कमी करेंगे, राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है, खाद पूरा आपके हाथ में। तो इसलिए आप से हम आग्रह, आपके माध्यम से हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि खाद आवंटन की नीति में बराबर समय के अनुरूप खाद की आपूर्ति करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। थैंक यू सर वेरी मच। सर, ये मैं सिर्फ रेलवे और सिविल एविएशन मंत्रालय से बड़ी विनम्रता से विनती करती हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुंबई, दौंड और सोलापुर, और आज दौंड में वो रुकने वाली है लेकिन कल से परमानेंटली नहीं रुकने वाली। तो मेरी रेलवे मंत्रालय से विनती है कि ये वंदे भारत ट्रेन जो मुंबई से सोलापुर जाएगी वो दौंड में रोज उतरे, वो बड़ा जंक्शन की जगह है, और जेजूरी, नीरा, भिगवण, दौंड और बारामती में सब जगह स्टेशंस है, वहां की एक्सप्रेस ट्रेन के जो स्टॉपेजेस है वो बंद कर हुए हैं और वहां का पूरा जो बिजनेस का माहौल था वो बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरी विनती है कि ये जो रेल मंत्रालय स्टॉपेजेस ये सारे स्टेशंस पे बढ़ाए जाए। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी था कि पुरंदर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो रेलवे और सिविल एविएशन के दोनों के जो रेलवे के स्टॉपेजेस भी बढ़ाए जाए और पुरंदर का एयरपोर्ट है उसका निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर श्री रमेश बिदूरी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे काले कानूनों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो अंग्रेजों के जमाने के देश में चल रहे हैं। यूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 कानूनों को बदला है, लेकिन इन काले कानूनों से गरीब व्यक्ति अफसरशाही से प्रताड़ित होते रहते हैं। यूं तो इन प्रताड़ना के कारण है दो, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर्यावरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 का कानून है और दिल्ली के अंदर पर्यावरण का जो कानून 1996 में लाया गया है, 1996 के उसी पुरानी तर्ज पर देखते हुए जो लोग 1996 से पहले वहां बसे हुए जमीनों में जब उनका सर्वे कराया गया, उन नंबरों को फॉरेस्ट में डाला गया तो मौके पे जाकर चेक नहीं किया गया। वहां बिल्डिंगें खड़ी थी, कंक्रीट के महल थे, 40 साल 30 साल पहले वो मकान थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भय उन लोगों पर रहता है और वो भ्रष्टाचार के और प्रताड़ना के भागी बनते हैं। सर 1996 से पहले 20 से 52 वर्षों पहले पुराने लोगों को उजाड़ने का भय बना रहता है। माननीय न्यायालयों का हवाला दिया जाता है या कुछ लोग पीआईएल लगाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों को कोर्टों में जाकर, और अफसरों की ब्लैकमेलिंग और पीआईएल लगाने वालों के ब्लैकमेलिंग से लोग प्रताड़ित हैं। इस कानून जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी उनके रखरखाव की जिम्मेदारी से हट जाते हैं कि हम तो आर्कोलॉजिकल मोन्यूमेंट के मालिक है, जमीनों के मालिक नहीं है, लेकिन कानून में वो मोन्यूमेंट की लैंड डाल रखी है, राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेती है। सर इस जो लोग पुराने बसे हुए हैं, पार्लियामेंट में कानून बना 2014 से पहले किसी गरीब व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा, तो या तो 1996 के पहले बसे हो सरकार हटाए, या आर्कोलॉजिकल में देश की आजादी के बाद बसे हो सरकार हटाए, लेकिन 2014 से पहले उस दायरे में आते हैं तो सुप्रीम इस पार्लियामेंट का वो कानून आर्कोलॉजिकल पर पर्यावरण पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो बेचारे एक बाथरूम बनाए, कमरा बनाए, इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से प्रताड़ित किए जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से निर्देश जाए, डिमार्केशन कराना राज्य सरकार का काम है। सर आज कम से कम 20,000 लोग मेहरौली के अंदर रहते हैं, वहां कोई, सर एक सेकंड में खत्म कर दूंगा, मेहरौली में जो डीडीए
को लेकर डिमार्केशन करनी डीएम ने, दिल्ली सरकार ने उनकी डिमार्केशन प्रॉपर करवाने का दिया। दिल्ली में से जो लाखों लोग हैं वो बसे में, लाल कुआं में, सर नारदा बस्ती में, मेहरौली में, गढ़ी में, छतरपुर में, असोला, भाटी, डेबसराय, ऐसे सैकड़ों बस्तियां हैं जहां कानून का भय दिखाकर उनकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है, उन्हें प्रताड़ित बार बार होते हैं। सर प्लीज खत्म कर रहा हूं। ऐसे लोगों को वो अच्छे वातावरण में जिया आपके माध्यम से वन और पर्यावरण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय इस पे ध्यान दे और राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कहे हम पे ना डाले, उसको डिमार्केशन करा के लौट दे और इन कानूनों में केंद्र सरकार बदलाव करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनरेबल हनुमान मेरीवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान एमबीबीएस वर्ष 19-20 बैच के छात्र छात्राओं की मांग की तरफ ध्यान आकर्षित बताना चाहता हूं। एनएमसी ने एमबीबीएस पास करने के लिए 4 अवसर और 4 साल में पास करने का नियम लागू किया, जबकि उक्त प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए चारों अवसर एक ही वर्ष में करवा दिए। सीबीएमई और न्यू स्कीम रूल एनएमसी द्वारा लागू किए गए, जिसमें एग्जाम पैटर्न को बदल दिया गया। सर मुझे चूंकि मेरे राजस्थान से देश के लगभग 2000 छात्रों के भविष्य का सवाल है और ऐसे छात्रों के 4 पास करने के लिए मिलते हैं, वो पूरे हो गए। चूंकि कोरोना काल था, पूरा देश विकट हालात से गुजरता और निश्चित तौर पर इन छात्रों के परिवार में कोई न कोई कोरोना से प्रभावित हुआ था। चूंकि कोरोना के कारण बीएमएस, बीएचएमएस आदि कोर्स में अध्ययन छात्रों के कोरोना के कारण अतिरिक्त अवसर दिया, लेकिन एमबीबीएस के छात्रों हेतु अतिरिक्त मर्सी अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। सर इस मांग को लेकर छात्र छात्राएं लगातार एनएमसी के संपर्क में, आपके और आपके कार्यालय के संज्ञान में भी ये मामला पहले से लाया जा चुका है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि 19-20 बैच के प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्र जिनके बैग सप्लीमेंट्री या किसी कारण वो फेल हो गए, तो कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए आप एनएमसी को निर्देशित करके ऐसे छात्रों हेतु एक अतिरिक्त मर्सी अटेम्प्ट दिया जाए, ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। क्योंकि ऐसे सभी छात्र अवसाद में और कोरोना के कारण एक वर्ष में एक मिनट समाप्त तो करना साहब, एक वर्ष में 4 अवसर मिल जाने के कारण इन्हें उचित समय भी नहीं मिला, इसलिए एक आप समाप्त तो करना चाहिए। छात्राओं की भावनाओं को समझो, तत्काल निर्णय लें। एक बार समाप्त तो करना साहब। साथ ही आप देश की सभी मेडिकल कॉलेजों में निर्देश भी जारी करें कि ऐसे छात्रों को वो कॉलेज से बाहर नहीं निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट विषय साहब देश का, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। ऑनरेबल मेंबर श्री निहाल चंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान समेत 14 जिलों में खड़ी रबी की फसल की तरफ दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक तो राजस्थान को पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है, और अगर पंजाब पूरा जब पानी मिलता है तो केमिकल युक्त गंदा पानी राजस्थान को मिलता है। पिछले महीने जनवरी के शुरुआत और मध्य के उत्तर भारत में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ ओलावृष्टि हुई और बरसात भी हुई, जिसकी सीधी मार गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसलों और सब्जियों पर पड़ रही है। इस कारण यहाँ के किसानों को आर्थिक मानसिकता के तौर पर परेशानी उठानी पड़ रही है। सभापति जी, श्री गंगानगर में लगभग 3,27,000 हेक्टर और हनुमानगढ़ जिले में 2,37,000 हेक्टर जो सरसों की बिजाई हुई है, इसमें से 50% सीधा फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सब्जियों और आलू की फसल को पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार राजस्थान को आरक्षण दे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों को अचानक हुई इस वर्षा और ओलावृष्टि होने की वजह से नुकसान की भरपाई हेतु जल्द से जल्द राज्य सरकार को पूरी जमीन, जितनी भी जमीन खराबे हुई है, उसका सर्वे कराकर उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। ये आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल कृष्ण पाल यादव जी। ऑनरेबल मेंबर कृष्ण पाल यादव जी। श्री के जय कुमार जी। ऑनरेबल मेंबर श्री के जय कुमार। Honorable sir, thank you very much for the opportunity. I raised to register a point regarding the most important need of elevated corridor road between Chennai to Tada. This road is on the Calcutta road. The harbour is there in the Chennai, and another industrial estate there in Andhra Pradesh. Heavy traffic. In the morning hours, people are taking a lot of time, 1.5 hours, 2 hours, 3 hours, traffic jam takes place. I have been stressing this point for the 3rd time in this house to put up that corridor, elevated corridor, and irresponsible answers I am getting that it may be taken up, may not be taken up, and it's a very important road. Through you, I stress upon the point that this government should take up this elevated corridor road between Madhavaram and Tada in Chennai. Thank you.
कृष्णपाल यादव जी। शैली जी, डैनिशली जी। सर वेरी ब्रीफ। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया। सर आज ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट का पर यहाँ रिप्लाई दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि इस देश का अकलियत माइनॉरिटीज जो है वो उसका भी इस देश पे उतना ही अधिकार है जितना मेजॉरिटी का है। लेकिन जो बजट आया जिसमें पहली बार यह हुआ कि जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन था वो पूरी की पूरी तरीके से इतना घटा दिया गया है कि वो अब है ही नहीं, नाम का है, नाम मुंह में जीरा का टाइप का है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन और सबका प्रयास की भी बात करती है। अगर एक मां के 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा कमजोर रह जाएगा तो मां की तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार दे करके उसकी ज्यादा मदद करे, उसको ज्यादा पालन पोषण के लिए उसको हेल्प करे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि जो बजट में माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन कम किया है उसको बहाल किया जाए, और जो पूरे देश में जिस तरीके से मदरसों के आप जो है आप सर्वे तो कर रहे हैं लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए आप एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो मदद दी जानी वो बहाल की जाए, और जो जिस तरीके से ये लगातार एलोकेशन कम हो रहा है। सर मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 टीचर्स जो हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के 25,000 टीचर्स भुखमरी का शिकार हैं। एक तरफ आप कहते हैं एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स का जो वेतन है, जो केंद्रीय अंश है, वो भी सरकार नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पुनः आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का एलोकेशन जो है वो बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Already budget debate you brought into Honorable Finance Minister. Again, you are okay. Thank you. Honorable Member Srimati B.B. Satyavati ji. Thank you, Chairperson, sir. As technologies emerge that revolutionize cancer care, India still faces the problem of making it inexpensive and accessible to its huge population. Cancer cases and deaths have steadily increased in India, with an ICMR study stating that 1 in 9 Indians will develop cancer during their lifetime. The infrastructure for cancer care is inadequate, evident in how we only have 700 radiotherapy machines for our 1.4 billion population, as opposed to 1,300 machines required according to WHO standards, along with a lack of sufficient cancer care facilities. And Chairperson, sir, a further problem is the concentration of treatment facilities in major cities. Access to cancer care goes down as soon as you go out of Tier 1 cities. In Tier 2 and 3 cities and villages, even basic services and technology like radiology equipments are difficult to locate. It results in tertiary cancer care centers in cities being overwhelmed with over 45,000 new patients being registered in these centers every year, out of which nearly 60% they come from various parts of India after traveling far distances for their treatments. Therefore, Chairperson, sir, I request the government to extend affordable cancer care outside of the big cities, especially district hospitals, to ensure accessible screening, detection and treatment facilities for everyone. Thank you very much. Honorable. Thank you, Speaker, sir. Sir, the public sector undertaking, companies like ONGC, IOC, NLCIL and many others consider GATE scores for the recruitment of their graduate trainee engineers post. Candidates who want to appear in the PSU interview have to qualify the GATE 2023 cutoff for PSU. This will be a big burden on the students from the rural areas
and studied under the various state boards. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has also written in this regard to the Government of India. Sir, this is a deviation from the past practice, and the earlier priority was accorded while recruiting various positions, including the graduate training engineers, where they used to give the lands to building up of these factories and mining areas. At present, the PSUs have considerable requirement of land for these operations. While acquiring land, there arises a very justifiable demand among the local people that the job opportunities should be provided to those families whose lands were acquired by PSUs. We consider that the local communities, especially those who have given up their lands and house sites for the development of the PSUs, should be accorded priority in the process of recruitment to various positions for the public sector unit. Further, the present sudden shift in the recruitment process to consider gate marks for appointment would deprive the candidates of the poor and rural backgrounds who are not in a position to attend the gate. Therefore, I urge the union government to refrain from the decision to adopt gate scores for recruitment into the GET and PSUs, including NLCIL, NPCIL, ONGC, IOC, BHEL, and to accord priority to those candidates whose families have given their lands for the development of the PSUs. Thank you. Thank you. Honorable Member Sanjay Seth ji. संजय सेठ। धन्यवाद सभापति महोदय। भारत में ऐसे बहुत कम स्थान है जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है, और वैसा स्थान झारखंड की राजधानी रांची, उसके मध्य में एक पहाड़ी मंदिर है जहां भगवान शिव वास करते हैं। और वह पहाड़ी मंदिर, उसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि वहां आदिवासी समाज पूजा भी करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में वहां फांसी भी दी गई, इसीलिए उसे फांसी टंगरा भी कहते हैं, फांसी टुंगरी। वर्तमान में उसकी स्थिति खराब है। नीतीश प्रियदर्शनी जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, और वो घनी बस्ती के बीच में है। मेरा भारत सरकार से मांग है कि उसकी चट्टान से उसको बांधा जाए, घेराबंदी की जाए और उसके लोहे के जाल से बांधा जाए। और मेरा यह मानना है और भारत सरकार से मांग है कि इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसको संरक्षित किया जाए, ताकि वो अभिभावक के रूप में झारखंड की जनता, रांची की जनता उसको मानती है, और उसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कोई कठिनाई नहीं हो, तुरंत इस पर अविलंब कदम उठाने चाहिए। वहां के अखबार लगातार सरकार को सचेत कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार सुन नहीं रही है। इसीलिए सदन से मेरा आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि इस पर तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर सेठ एसटी हसन जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने क्षेत्र की बहुत अहम समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। मुरादाबाद शहर 2 हिस्सों में लाइन से बटा हुआ है और इस वक्त 3 जगहों के ऊपर समस्या है। यहाँ पे एक ओवर ब्रिज जो संबल फाटक कहलाता है, वहाँ पे बन रहा है, उसका रास्ता बंद कर दिया गया है, उसको रिपेयर चल रही है। मेरी ये डिमांड है आपके माध्यम से कि इस वक्त रिपेयर के हालात में इस पुल को चौड़ा कर दिया जाए और अल्टरनेटिव रास्ता बहुत दूर पड़ता है, पुराना सिस्टम चालू कर दिया जाए, उसमें बैरियर लगा दिया जाए। ऐसी सरकोई भूड़ के ऊपर भी 2 क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। उन क्रॉसिंग के ऊपर अंडरपास बनाए जाएं ताकि लोगों को जनाजा, अर्थी या बुजुर्ग लोगों को गुजरने में आसानी हो। सर, मैं आपसे एक माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का फंड क्यों कम कर दिया गया? क्या सिर्फ और यूनिवर्सिटीज का बढ़ा दिया गया? क्या सिर्फ इस वजह से कि उसमें मुस्लिम और इस्लामिया लफ्ज लगा हुआ है? ऑनरेबल मेंबर श्री स्वामी सुमेधानंद जी। धन्यवाद सभापति जी। एक बहुत ही गंभीर विषय मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से। राजस्थान के सीकर सहित अनेक जिलों में एक कंपनी नेक्सा नाम से कंपनी आई और उसने वहां कार्यालय स्थापित किए, और कुछ प्रभावशाली लोगों ने लोगों को बहका करके, फुसला करके धोलेरा सिटी में पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए लोगों से पैसा उठाया। 1 साल तक वो रिटर्न भी देते रहे,
लाभांश का, और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि जब हजारों लोगों का पैसा, हजारों करोड़ रुपया उनके पास आ गया तो वो कंपनी गायब हो गई। और आज हजारों परिवार इस प्रकार के हैं जो हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनकी जमीन और मकान नीलाम होने की स्थिति आ चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार में सैकड़ों एफआईआर हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत से प्रभावशाली लोग इन्वॉल्व हैं तो वहां कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि सीबीआई के माध्यम से इस कांड की जांच कराई जाए, इस कंपनी का को उन लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और उनके पैसे वापस लौटाए जा सकें। धन्यवाद। Honorable member Sri Nayab Singh ji, only 1 minute. थैंक यू Everybody. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का ये बजट पेश किया है और इससे मजबूती मिलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान करनाल से यमुनानगर नई रेल लिंक परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो करनाल से यमुनानगर वाया इंद्री रादौर से होकर गुजरेगी। इस रेल लिंक से मेरी लोकसभा के लाडवा, रादौर, द्यामला वासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र और करनाल के आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने के लिए भी ये रेल मार्ग नजदीक और सस्ता पड़ेगा। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के अनुसार करनाल से यमुनानगर तक मौजूदा रेल मार्ग अंबाला कैंट से होकर जाता है, जो लगभग 121 किलोमीटर है, जबकि प्रस्तावित रेल मार्ग 61 किलोमीटर होगा। HRIDC द्वारा बनाए गए एस्टीमेट अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 883.78 करोड़ की थी। इस परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है, जो रेल मंत्रालय में विचाराधीन है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर काम चालू किया जाए, जिससे यात्रियों की कोई समय बचत हो और उनकी यात्रा सुविधा। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर हाजी फजलुर रहमान जी, हाजी फजलुर रहमान जी। थैंक यू सर। सभापति जी, मैं सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। सीबीएसई बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उसमें एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित बुक्स, कोर्स वगैरह पढ़ाना लाजमी है, लेकिन इससे उलट जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मिडिल क्लास के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा अपने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारे सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उसमें एनसीईआरटी से जो मान्यता है कोर्सेज की, बुक्स की, उन्हीं को पढ़ाया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। और मैं सर एक और अनुरोध है मेरा कि ये ऑर्डर अगर अभी से हो जाए ताकि करंट ईयर में इसको लागू हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक बहुत ही गंभीर विषय आज सदन के सामने उठा रहा हूं। राइट टू प्राइवेसी हम सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों, दिल्ली में आने वाले, ठहरने वाले, कुछ दिन रहने वाले महत्वपूर्ण नेताओं, प्रमुख अधिकारियों सबका छिपकर फोन कॉल सुन रही है, टेप कर रही है और ऐसा करते हुए पकड़ी गई है। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है जो आर्टिकल 21 ने दिया है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पहले उन्होंने फीडबैक यूनिट बनाया जिसके अध्यक्ष डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं, मैं मनीष सिसोदिया, नाम लेना पति उचित है कि नहीं, और अब जो है जी मनीष सिसोदिया उसके डिप्टी सीएम अध्यक्ष बने और दिल्ली की समस्याओं का फीडबैक लेने की जगह नेताओं की फोन टेपिंग करने लगे, लोगों का फोन टेपिंग करने लगे। अभी चिंता की बात यह है सभापति महोदय कि यहाँ रक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, वैज्ञानिक शोध क्षेत्र में हमारे
कई देश हित में अत्यंत गोपनीय ढंग से कार्य हो रहे हैं, देश महाशक्ति बन रहा है। सवाल उठता है कि क्या इस अवैध जासूसी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ये गोपनीय डेटा इकट्ठा कर किसी को शेयर कर रही है? तो मेरी मांग है कि इसका केस दर्ज हो, कड़ी जांच हो और विभिन्न लोगों के मौलिक अधिकार हनन करने के लिए कठोरतम सजा दी जाने के लिए यथाशीघ्र आगे बढ़ा जाए। ऑनरेबल मेंबर श्री ईमानदारी सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी एवं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के जिला अनूपपुर के अंतर्गत विकास खंड अनूपपुर कोतमा जतेहरी में सोन नदी एवं केवई नदी का प्रवाह है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए हमको संसाधन बनाने होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अनूपपुर के अंतर्गत विकास खंड कोतमा के ग्राम पथरौड़ी के पास केवई नदी में स्टोरेज वेयर और बांध निर्माण करने से यहाँ के आसपास के गांव को माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार अध्यक्ष जी, विकास खंड अनूपपुर और जतेहरी ग्राम पंचायत चौड़ी एवं चोलना के बीच में सोन नदी में स्टोरेज वेयर निर्माणाधीन है। महोदय, यहाँ से भी माइक्रो सिंचाई योजना का अगर विस्तारीकरण करके ग्राम चौड़ी पोड़ी बरबसपुर चोलना ग्राम के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। महोदय, पानी की समुचित व्यवस्था हो जाने से किसान अपना फसल उगाकर अपनी आय दुगनी कर सकेंगे और भारत सरकार के सबका साथ सबके विकास में अभी अपनी सहभागिता दर्ज करा सकेंगे। धन्यवाद। यस, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिल फिरोजी है। सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, हमारे यहाँ पे जावरा से नागदा होते हुए उन्हेल उज्जैन पीतमपुर रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसका कारण है कि माननीय सभापति जी, आए दिन जावरा रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगभग 11 लोग अब की मृत्यु हुई है। अभी हाल फिलहाल ही एक इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बच्चों से भरी बस एक्सीडेंट हुई, जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हुई है और उसमें लगभग 37 ब्लैक स्पॉट है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूं माननीय सभापति जी कि उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए ताकि लोगों की वहां पे जान बचाई जा सके। मैं भी उस क्षेत्र में जाता हूं गाड़ी से, तो माननीय सभापति जी, मेरे को भी राम 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 करके जाना पड़ता है। वास्तव में मैं भी 2-3 बार बच चुका हूं। तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से, गडकरी जी से मांग करता हूं कि उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री गिरीश चंद जी। सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में जन स्वास्थ्य की सुविधा के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में संचालित है, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में महिला अस्पताल भी है। उसकी हालत बहुत खराब है। मेरी आपके सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उस अस्पताल का नया भवन का निर्माण कराया जाए। और बहुत खेद के साथ सीधे कहना पड़ रहा है कि इस महिला अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। इसके अलावा भी हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सहसपुर, शेरकोट आदि पर भी कोई चिकित्सक ही नहीं है। इन कारणों के चलते हमारे संसदीय क्षेत्र नगीना और जनपद बिजनौर के महिला रोगी दूर दराज अस्पतालों में जाकर उपचार करने के विवश है। इसी कड़ी में मैंने प्रयास करके सीआरएस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराई थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों मशीनों को चलाने के लिए एक भी तकनीकी ज्ञान रखने वाला कोई ऑपरेटर नहीं है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सालय हेतु महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए तथा साथ ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन के लिए एक दक्ष ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री सतीश गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं।
माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे क्षेत्र अलीगढ़ को नेशनल हाईवे 3 हाईवे दिए। अध्यक्ष महोदय, एक नया हाईवे जो हमें मिला है अलीगढ़ से पलवल, जो 334D है, उस पर वो अलीगढ़ से दिल्ली का 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन खैर और जट्टारी में 2-2 घंटे जाम लगता है। अगर उनका बाईपास जल्दी से जल्दी बन जाता है तो बाईपास बनने से जनता को रियायत मिलेगी और 1.5 घंटे का रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, एक हमारा NH 91 है जो कि अब नया 34 नंबर है उसका, उस पर गवाना क्षेत्र में बरौली कट है, बरौली कट पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर अंडरपास मिल जाए। और एक हमारा प्राचीन खेरेश्वर धाम है, वहां पर फ्लाईओवर मिल जाए, जिससे कि वहां पर एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोगों की दुर्घटना मौत नहीं होगी। वैसे नितिन गडकरी जी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं नशे के विरुद्ध बोलना चाहता था, लेकिन मेरा विषय आ गया, मैं विषय परिवर्तन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, दुर्घटनाएं देश में विकराल रूप धारण कर रही हैं और वर्तमान में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, पूरे देश में हाईवेज का, सड़कों का बड़ा अच्छे तरीके से जो निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे जो औसत गति है वो भी बढ़ रही है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। मेरा क्षेत्र नदी, पहाड़, जंगल, काफी घुमावदार, काफी बड़ा भौगोलिक स्थिति खराब होने के कारण कई सामान्य रोडों में कई मोड़ होते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो मैं 2 व्हीलर्स के से चलने वाले लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में विषय रखना चाहता हूं और आपसे 1 मिनट अतिरिक्त आपसे अनुमति चाहता हूं। महोदय, हम लोग जब यहां पर इस संसद में चुन करके आते हैं, जो जनता हम लोगों को चुन करके भेजती है, हम लोग कई बार होता है कि दबाव में या संकोच में किसी को बिना हेलमेट के अगर किसी को पकड़ा जाता है कहीं पर, तो हम लोग भी गलती से कभी कभी फोन कर देते हैं कहीं पुलिस को, कहीं किसी प्रकार से कि इनको छोड़ दिया जाए। एक घटना एक बार ऐसी हुई कि तो मैंने संकल्प लिया कि कोई भी हेलमेट लगाने वाला कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्र में चलता है, मैं वो पकड़ा जाए, वो नाराज हो, मैं दोबारा संसद में जीत के आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं उसकी कभी सिफारिश नहीं करता। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहाँ एक रोड हाईवे था, उस हाईवे में निरंतर लगातार घटनाएं घट रही थी। हमारे यहाँ पहले सपा बसपा की जो सरकार होती थी प्रदेश में, उन्होंने एक BAT, सभापति महोदय मैं 1 मिनट लूंगा, बहुत संवेदनशील मामला है। तो महोदय, उसको जो 4 लेन रोड बनना चाहिए था, BOT प्रोजेक्ट के तहत उसको सिंगल रोड बनाया गया और मेरे संसदीय क्षेत्र के मौदहा भरुआ क्षेत्र के एक गांव से 20-20 लोग उनका जीवन समाप्त हुआ। महोदय, मैं हेलमेट की जो बात आपसे करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि कई बार लोग जो बाइक से अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में कोई उनका मित्र परिचित गांव का कोई व्यक्ति मिला और उसको साधन नहीं मिलता, उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, तब उनके पास हेलमेट नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है कि एक हेलमेट है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जितने भी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियां हैं, 2 व्हीलर जो भी बनाते हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, हर वाहन में 2 हेलमेट रखने की जगह बनाई जाए और उसमें उसका नंबर, सभापति महोदय, उसमें उसका नंबर भी डाला जाए, उसमें हेलमेट में। मैं बहुत संवेदनशील बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब भी कभी उसकी चेकिंग हो, वो उसके पास मिले, ताकि उनका भी शोषण ना हो सके, पुलिस भी उनको परेशान ना कर सके, और मजबूरी में जो किसी राहगीर को जो लिफ्ट देते हैं, लोग अपने वाहन बैठाते हैं, उसका भी जीवन बच सके और उसको जीवन सुरक्षित हो सके। आपने सभापति महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय था, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार जी, वेरी ब्रीफ, 1 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बेतिया से बगहा होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस राजमार्ग पर स्थित लौरिया नामक जगह पर 2 वर्ष पूर्व से ही टोल प्लाजा कार्यरत है। सेवा शुल्क की भी वसूली की जा रही है। इस टोल प्लाजा पर नागरिक सुविधाओं का भी अभाव है, जैसे पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, टो क्रेन तथा अग्निशामक वाहन इत्यादि। महाशय, सड़क कार्य अपूर्ण होते हुए भी शुल्क वसूलना उचित नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लौरिया टोल प्लाजा पर यथाशीघ्र उपरोक्त सुविधाओं को बहाल किया जाए और जब तक सड़क कार्य पूर्ण न हो तब तक सेवा शुल्क न लिया जाए। धन्यवाद। Honorable Member Sri Ram Mohan Naidu ji. Thank you, Chairman sir. I would like to bring to the attention of the House
the systematic unconstitutional attempts at shrinking the democratic space in the state of Andhra Pradesh, sir. The TDP General Secretary, Nara Lokesh, has gone on a padayatra across the state for 4,000 kilometers in 400 days, sir. And the YSRCP AP government passed GO number 1 just to ban rallies and road shows across the state because of looking at the public response that is coming for Chandrababu Naidu's road shows and also the Lokesh Padayatra also, sir. And GO number 1 is just the latest addition to the pattern of undemocratic tactics, which is implemented by the state government. Subject. It is a it could be a state subject, sir, but Yes. it is regarding the constitution. When there is a violation of constitution, you can speak in the house. Sir, on 2nd February, the police had made an unsuccessful attempt to wrongfully seize Nara Lokesh's campaign vehicle. On 3rd February, they tried to thwart his Padayatra at Bangarupalam village, and they even shut down the power supply. They're trying to create an atmosphere of fear so that no one can come and attend his Padayatra, sir. And also TDP cadres and supporters who are joining it have been attacked. Sir, with one last point, I'll just conclude. Sir, with the law and order apparatus either turning a blind eye to the violence and refusing to uphold the freedom of expression, there is no level playing field for opposition in the state of Andhra Pradesh, sir. Before this leads to a breakdown of constitutional machinery in AP, I request the union government to take cognizance of this situation so that the state government is held accountable for all its unconstitutional acts. Honorable Member Sri Ravinder Singh Ji Bittu. थैंक यू चेयरमैन साहब, सुरेश जी। मैं एक बहुत ही खतरनाक आदमी जो अपने आप को बाबा लगाता है पर बहुत खतरनाक है, वो सुनारिया जेल है, उसमें वो अंदर है हरियाणा में। लेकिन सर वो उसके ऊपर हर तरह के रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, बाबा राम रहीम उसका नाम है, पर उसे पता नहीं क्या ना जाने क्यों बार बार उसे 40 दिन की पैरोल अब मिली है, उससे पहले 40 दिन की पैरोल मिली, उससे 21 दिन की पहले फरलो मिली। सर इस आदमी ने गुरु ग्रंथ साहब, हमारे जो सेक्रेड गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है। सर उस आदमी को बार बार हरियाणा सरकार उसे छोड़ रही है और वो बाहर आके नए नए, अब तो वो भगमे कपड़े क्योंकि सरकार को खुश करने चक्कर में उसमें सर वो गाने गाता है, डांस कर रहा है, और पंजाब में हर जगह अनरेस्ट है। सर सारा पंजाबी सिख अनेकों धरनों पे हैं और पोजीशन बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। सर इस आदमी को, खतरनाक आदमी को जेल में डालें और इसको पैरोल कहीं नहीं मिलनी चाहिए। ये इतना खतरनाक आदमी है, लड़कियों के लिए खास तौर पे, आदमियों के और जो सभ्य लोग हैं उनके लिए इस आदमी की जगह जेल में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हदायत करे हरियाणा सरकार को भी इसको जेल में डालो, बाहर घूमना इसका बहुत खतरनाक है। सर थैंक यू चेयरमैन। Honorable members, Dr. Gina Gavit. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन का ध्यान आदिवासी विद्यार्थियों से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे संविधान में आर्टिकल 46, 275, आर्टिकल 335 एंड आर्टिकल 342 के अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे केंद्र सरकार के आदिवासी मंत्रालय के तहत एक प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है, ये स्कॉलरशिप की स्कीम आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। लेकिन सभापति महोदय, इस स्कीम में एनुअल इनकम पेरेंट्स की 2.5 लाख होनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। उसी के साथ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, जो आदिवासी विद्यार्थी देश के बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख बताई गई है। लेकिन सभापति महोदय, जो संविधान के तहत आदिवासी समाज को संरक्षण दिया गया है, उसके अंतर्गत एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है, इसके कारण कई आदिवासी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करूंगी कि स्कॉलरशिप में एनुअल इनकम का क्राइटेरिया हटा दिया जाए और सभी आदिवासी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से
रेलवे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि बहुत अच्छा जो है बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2.4 जो करोड़ के करीब जो है पैसा जो है वो दिया गया है रेलवे बजट के अंदर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि सिरसा से एलनाबाद जो रेलवे लाइन है उसका सर्वे भी हो गया कंप्लीट। एक तो उसके अंदर अगर इसको भी अगर लाइन वहां पर बना दी जाए तो वहां के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हिसार, अग्रोहा, फतेहबाद जिला है सभापति महोदय, लेकिन वहां उसने आज तक वहां पर जो है रेलवे को नहीं देखा है। वहां पर जो है जो वहां के लोगों को बहुत इच्छा है कि वहां पर भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो और बहुत बड़ा एक जो वैश्य समाज है वो अग्रोहा के अंदर है, वहां पर बहुत बड़ा अग्रसेन धाम है। तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो हिसार, अग्रोहा, फतेहबाद है वहां पर उस लाइन को भी जोड़ा जाए। और इसके साथ साथ सभापति महोदय छोटी सी बात ये थी कि जो ये अभी स्टेशन के लिए जो उनके आधुनिकीकरण के लिए जो मेरे लोकसभा से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नरवाना, मंडी डबवाली और सिरसा You can speak on railway demands grants is coming next. जी You can, तो उसमें you can उसमें अगर भट्टू भी अगर आ जाएगा जो फतेहबाद जिला में आता है तो बहुत बहुत वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। The House stands adjourned to meet again on Monday, 13th February 2023 at 11 a.m. Thank you. अर्थव्यवस्था यह देश नहीं संभाल पाए, उस समय अगर अर्थव्यवस्था कहीं की संभली तो भारत की संभली और मोदी जी के नेतृत्व में संभली। और उसी का नतीजा है, यूपीए वाले तो है नहीं, इनके समय तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती थी, 13% 2009-10 में डबल डिजिट की लगातार इन्फ्लेशन। आज बैंकों की स्थिति इतनी सुधर गई है कि बैंक अपने पैर पे चलने लगे, पैर पे खड़े हो गए हैं, दौड़ रहे हैं। यूपीए के समय में क्या था, एक तरफ उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, बैंकों से कहा जाता था कि लोन देते रहो, एनपीए को स्टैंडर्ड लगातार बनाते रहो, लगातार लोन देना, जीडीपी नीचे जा रही है लेकिन लोन बढ़ रहा है, सर्कुलेशन में उसको एक की टोपी दूसरे में घुमा रहे हैं। फिर भी नए नए इंस्ट्रूमेंट ले आकर के जो सब स्टैंडर्ड लोन होते थे उसको स्टैंडर्ड दिखा करके यह सिलसिला चल रहा था, फोन बैंकिंग के सिस्टम। उसका कारण क्या हुआ कि जब आप लोन देते तो 2, 3, 4 साल में धीरे धीरे वो एनपीए बनता, एक साल में तो नहीं बनता। एनपीए बनना शुरू हो गया और 2013 कैलेंडर में देखें तो 50% एनपीए उसमें बढ़ा, मतलब 92,398 करोड़ से 1,38,613 करोड़, मतलब एनपीए का ग्राफ यूपीए के समय से बढ़ना शुरू हुआ। और एनडीए के शुरू के साल में क्योंकि लोन आपने बैड लोन दिए थे वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और वह आकर के ग्रास एनपीए 2018 में 11.5 हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं और उनकी नीयत है।
वो आईबीसी 2016 यह कानून भी ले आए। उसके अलावा यह भी कहा कि देखो भाई, अगर लोन लेकर के इधर उधर हुआ तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सारे सिस्टम को टाइट किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हुआ, सही लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ, बैलेंस शीट क्लीन होनी शुरू हुई। और मान्यवर, यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज एनपीए, ग्रॉस एनपीए 3.9% है और नेट एनपीए है 1% से कम 0.61%। यह इतना बड़ा सुधार आया है। हर बजट में पहले या सप्लीमेंट्री बजट में आता था कि बैंकों को कैपिटल देना है, इसलिए कैपिटल देना है, नहीं तो बैंक अपना जो है उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। 5 सालों में बैंकों को 2,10,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन के रूप में दिया गया, लेकिन अब बैंक अपने पैरों पे खड़े हैं, दौड़ रहे हैं। अब बैंकों को 1 रुपए भी कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। आज बैंक क्रेडिट हाईएस्ट है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वह भी 75% पे। मैं कह सकता हूं बदलते भारत की बदलती तस्वीर इतनी अच्छी है कि हम जो हमारा विकास दर है वो 7% के आसपास है। हम निरंतर जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, शीघ्र हम बहुत मजबूत स्थिति में हम होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। माननीय, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो हमने सप्तऋषि की बात की, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कई सालों से हम लोग सुनते रहे, 6 दशक से कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होना चाहिए। लोग जापान जाते थे, जर्मनी जाते थे, चाइना जाते थे, कहते क्या इतनी बढ़िया सड़कें हैं। यहां पे सड़कें थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया गया। अब उसके बाद इसलिए उस समय कैसे ध्यान देते, 2013-14 में नेशनल हाईवे में 7,300 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए रखा गया, केवल 7,300 करोड़ रुपए। आज नेशनल हाईवे के लिए जो पैसा रखा गया है 2,58,000 करोड़, 36 गुना अधिक। और इसी का नतीजा है कि यहाँ मेरठ पहले 3 घंटे लगता था, अब आप 40 मिनट पहुंच जाओ। अभी ये दौसा में 5 से 6 घंटा लगता था। प्रधानमंत्री जी दौसा में एक्सप्रेस हाईवे का 12 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं, अब आप फिर 2-2.5 घंटे वहां पहुंच जाओ। देश के कोने कोने में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला हुआ है, लोगों को कम समय आने जाने में लगता है। यह किसानों के लिए भी लाभकारी है, उनका फसल भी है, सब्जी भी है, सब कुछ का ट्रांसपोर्टेशन शीघ्र हो जाता है। और यह देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप खर्च करते हो तो वह आपकी जो एक तो आपके देश में आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है, उसके साथ साथ आपकी जो अर्थव्यवस्था, उसकी जो चक्र है वो कई गुना घूमता है। जब आप रोड के लिए मान लीजिए पैसा देते हैं, तो आप रोड के लिए अगर पैसा दिए तो वो सीमेंट खरीदेगा, सीमेंट वाला कंक्रीट खरीदेगा, कंक्रीट वाला लेबर को पेमेंट करेगा, तो 2 से 3 गुना जो मनी है उसका सर्कुलेशन होती है। इसलिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कितना 3.4%, फिर 4.3 लाख करोड़ रुपए, फिर 7.5 लाख करोड़ रुपए, इस बजट में सारे रिकॉर्ड रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उन्होंने रखा। यह सोच सामान्य सोच नहीं है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को जो शुरू हुआ, उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो भटकी और पेंडिंग प्रोजेक्ट से उसको सही दिशा में ले आने का काम, शीघ्र उसका काम पूरा वह भी किया। पहले 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, अब 37 किलोमीटर बना। देश की आजादी के बाद केवल 97,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, अब 1,41,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे की सड़कें बन गई। रेलवे देश की लाइफ लाइन है, करोड़ों लोग रेलवे में चलते हैं कि रेल की पटरियों का भी विस्तार होना चाहिए, उसके साथ ट्रेन भी सुविधाजनक होनी चाहिए। कई ट्रेनों की लगातार सांसद लोग भी मांग रखते हैं, देश की जनता भी मांग रखती है। 2013-14 में बताऊं मैं, रेल का बजट 28,174 करोड़ होता था, और 2013-14 में 28,174 करोड़ का जो बजट है, इस बजट को देखेंगे
तो यह बजट 2,41,000 करोड़ मतलब 9 गुना रेल के बजट के बढ़ोतरी करेगी, 9 गुना। तो पहले तो इसके बारे में मंत्री तो बड़े बड़े कभी बिहार के मंत्री, कभी यहाँ सब लोग रेलवे मंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन रेलवे के लिए कुछ किया नहीं। आज वंदे भारत ट्रेन की क्या चारों ओर प्रशंसा हो रही है, सब सांसद लोग वंदे भारत ट्रेन मांग रहे हैं। और एयरपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का जो नागरिक है, जो चप्पल में पहनता है, उसको भी एरोप्लेन में चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको खड़ा। हवाई चप्पल, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको भी प्लेन में चलना चाहिए, ऐसी हवाई जहाज में, ऐसा हमको व्यवस्था करना है। एयरपोर्ट केवल 2014 तक 74 ही थे, वो 74 एयरपोर्ट हमारी सरकार में 142 बने, और इस बजट में कहा 50 और नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। देश के कोने कोने में एयरपोर्ट की सुविधा होगी। राज्यों के लिए भी मैं वित्त मंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि हमारे जो अलग देश के सभी राज्य हैं, उनको भी विश्वास करके, उनको भी साथ में लेकर के जो 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों के लिए रखा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब 1,30,000 करोड़ रुपए, 30% की वृद्धि, बहुत बड़ी वृद्धि होती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले, 10,000 करोड़ रुपए। इसके साथ एक बड़ी योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और मैं बताना चाहूंगा। पोर्ट है, कोल है, स्टील है, फर्टिलाइजर है, फूड ग्रेन इत्यादि है। इनके लिए एंड टू एंड संपर्क साधने के लिए यह सोचा गया है कि जब तक इसको एंड से एंड संपर्क नहीं बनाएंगे तो इसमें एक देश का विकास में और तेज गति से नहीं हो सकता। इसे 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिनमें 75,000 करोड़ रुपए का यह इन्वेस्टमेंट होगा। यह लॉजिस्टिक, इस प्रकार से लॉजिस्टिक तैयार किए जाएंगे। मैं बाकी हमारे सदस्य तो कुछ बारे में बोलेंगे, कुछ अन्य विषय में एक डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि देश के जो आय करदाता है, जिसको हम दान करदाता कहना चाहिए, क्योंकि उनका जब पैसा आता है तो गरीबों का मकान बनता है, एलपीजी कनेक्शन बनता है, इसलिए वो दान करदाता है, उनका सम्मान होना चाहिए। और 3.6 करोड़ से अब 6.5 करोड़ रुपए रिटर्न हो गई है। हमको याद है कि ये इनकम टैक्स के कॉरिडोर में क्या होता था, इनकम टैक्स के ऑफिस में क्या होता था। आय करदाता बेचारा जाता था अपना इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था। उस कॉरिडोर में, भाई सुनो, उस कॉरिडोर में उसको बैठने, 2 मिनट, उस कॉरिडोर में उसको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, वो ह्यूमिलेशन फील करता था। तो उसके बाद 2019 में फेसलेस स्कूटी ले आई गई, 2020 में फेसलेस अपील ले आया गया, और 2021 में फेसलेस ट्रिब्यूनल ले आया गया। यह व्यवस्था शुरू की गई। आज जो 100 GCIT की घोषणा हुई है, उससे हम कह सकते हैं कि शीघ्र से शीघ्र लोगों का केस की स्क्रूटनी भी खत्म होगी। मध्यम वर्ग के लिए इससे बड़ी तोहफा क्या हो सकता है कि उनके 7 लाख रुपए तक उनको छूट की घोषणा हुई है। 7 लाख रुपए की जो उनकी छूट की घोषणा हुई है, यह प्रधानमंत्री जी को हम लोग इसके लिए अभिनंदन करना चाहते हैं। एक ही चीज बताऊंगा, 2013-14 का अगर देखें तो 2013-14 का अगर टैक्स स्लैब ले तो 70,000 रुपए 7 लाख रुपए तक टैक्स लगता था। अब आज के दिन में, अगर आज के दिन के नया टैक्स रिजीम देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी मध्यम वर्ग जिसकी 7 लाख रुपए इनकम है, उसको 70,000 रुपए भी बचेगा। मतलब मध्यम वर्ग को 7,000 रुपए हर महीने की बचत इस बजट के माध्यम से है। 7,000 रुपए हर महीने बजट। यह इसमें 39,000 कंप्लायंसेज भी खत्म हुए और 3400 कानूनों को समाप्त किया गया। इसके अलावा समय की कमी है, एमएसएमई के सेक्टर में बहुत काम हुआ, रोजगार के क्षेत्र में। अब मैं अंत में एक बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि यह विकसित भारत 2027 की इस बजट में रूपरेखा रखी गई है। भारत की बदलती तस्वीर को इसमें झलक दिखती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वह निर्णायक नेतृत्व है, निर्णय लेने वाले हैं, लोकप्रिय नेतृत्व है। और उसी के साथ साथ अगर
जो विश्वास और भरोसे वाला नेतृत्व है, त्यागी और तपस्वी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व को 10-20 साल में नहीं जन्म लेता, ऐसा नेतृत्व 100 साल में एक बार जन्म लेता है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व लिया है, एक पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी पे सटीक बैठता है, जो राष्ट्र के बारे में सदैव सोचते हैं। राष्ट्र ही आराधना है, राष्ट्र ही मेरा सुधर्म, राष्ट्र ही बस वंदना है, राष्ट्र ही मेरा सुकर्म, राष्ट्र को ही हूं समर्पित, मैं मेरे मन कर्म वचन, राष्ट्र सबका राष्ट्र सबके राष्ट्र को सत सत नमन। डॉक्टर शांतनु सेन। Flagging a very serious issue and for which I need your immediate attention and I seek your protection too. Sir, regarding censorship in Parliament. Sir, when our learned Prime Minister was speaking yesterday, not a single MP from All India Trinamool Congress or AAP or BRS or anyone was shown exercising their basic democratic right. Same on Rajya Sabha TV. I hope today at least I won't be censored in the same way. Sir, yesterday it was worse than any emergency of 5 decades ago to me, sir. Sir, unfortunately the presentation of this budget... Honorable member, I would urge you to use the words carefully. Censor an emergency. Perhaps you have not lived during that period. And what is censor? That time I was not born, sir. Yes. But let me tell you, don't compare emergency with anything. Okay, sir. It has been the darkest period of Indian history. Darkest period. And also censorship. These words are Sir, I haven't deleted. seen. I haven't Please seen, go ahead, go ahead. Sir, I haven't seen those days, but I am seeing these days at least. Doctor, Unfortunately, you will make a good point by focusing on your substance. Sir, unfortunately, the presentation of this budget, it has coincided with an explosion of probably the biggest financial scam ever. And our learned Prime Minister, while speaking for 3 hours in both the houses, he hardly found any time to speak on this issue, sir. Sir, I don't think only empty speeches will take away the fear from the mind of the people, sir. Our party demanded, as before, Supreme Court monitored investigation, and others demanded we have already put forward. Sir, I was listening to our learned finance minister while replying in Lok Sabha in television. Sir, I have heard her talking about Bengal. I don't know why she is bearing so much hatred for our state of West Bengal, sir. Sir, I have seen her showing some photographs. Sir, yesterday the opposition MPs were not allowed to show any photographs. I don't know whether there is any exception for the minister or not. She was talking about Bengal. It was absolutely an anti-Bengali sentiment, sir. She took the name of Madam Mamata Banerjee as well. She was talking about GST compensation regarding Lok Sabha during her reply. Sir, Madam must be knowing very well, much more than me, that GST compensation was payable for the period of 2017 to 2022. Since the finalization of account is done by AG, after the end of the financial year, initially the compensation is calculated on gross revenue and not on the net revenue, sir. It is only after the finalization of accounts that AG determines the actual gap between the protected revenue and the actual revenue, and then only Government of India releases the due compensation on net basis, if any. For West Bengal, so far compensation has been paid on net basis for only 2 years, 2017-18 and 18-19. For the rest of the periods, that is 1920, 2021 and 2022, the period until the period of 1st April 2022 till 30th June 2022, compensation has been released based on gross revenue. If net revenue is considered, the Government of India owes West Bengal 2,409 crore for the due rest of the period, sir. AG is yet to finalize the account for the rest of the period as stated. Sir, to me, the budget is not at all futuristic. It is absolutely an opportunistic rhetoric, and it has turned blind eye to the plight of the common people, sir. Sir, this budget doesn't speak about rising inflation. In top 7 cities, housing rentals increased by 20 to 25%. Fall of global
crude oil price, but there is a sharp rise of petrol and diesel, sir. Only exception was there just few days before the UP election. Sir, LPG price is still more than 1100 rupees per cylinder. Sir, the price of a substance which was 100 rupees during 1960, it has become 7,800 in 2022. In December 2022, year-over-year inflation rate was 5%, sir. Sir, our learned finance minister was talking about inclusive development with a 38% budget cut for minority schemes, sir. If we consider pre-matric scholarship for minorities, it has been slashed down from 1425 to 433 crore. Budget for madrasas and minorities education, it has been slashed down to 10 crore from 160 crore. So far the youth development is concerned, higher education, no significant increase in the budget. School education, marginal increase. Highest employment is in last 45 years in our country. Unemployment rate in December 2022, it was 8.3%, highest in last 16 months. Rural unemployment, 7.4%. 4 crores of unemployed youth are there. More than 2 crore of women quit workforces in last 5 years, sir. So far the NREGA is concerned, though it is the largest social welfare scheme, we can remember the PM's comment about NREGA, ये तो माटी खोदने का काम है. It was 2.1% of GDP last year. Now it has come down to 1.3% of GDP. There has been a slash down by 33%, sir. Above 60 years of age, employment in NREGA is 134 lakhs. So this government has got no concern about the security of the elderly people. Wages are to be given within 15 days, sir. But funds are yet to be released. So for the state of West Bengal is concerned, it is nearly 7,000 crore. Now we are facing CAG audit, but PM Cares Fund never faces any CAG audit, sir. So for the Labour Ministry is concerned, that it was 1,693 crore earlier, which has come down to 1,321 crore. How this government is going to generate new jobs, sir? So for the pensioners are concerned, 70 lakhs pensioners are still waiting for higher pension under EPS scheme. So far rural development is concerned, it has been slashed down from 5.8% to 5.3%. Our learned finance minister was talking about reaching the last mile, but census exercise which was supposed to be conducted in 2021 has been postponed till September 2023 without any reason, without showing any reason, which is leading to devastating effects in implementation of the welfare project, sir. The fund has been slashed down from 3676 crore to 1564 crore, sir. Sir, so far food subsidy is concerned, I think in this case our Prime Minister, learned Prime Minister is following what he has said, na khaunga na khane dunga. That's why उन्होंने इनको घटा करके 2.87 lakh crore से 1.97 lakh crore लाया, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया stands 107 out of 121 countries, sir. Sir, I am a doctor. I must say a few words about health. Our budget has hardly got any importance so far the health sector is concerned. We didn't get any lesson when we have seen the dead bodies were floating in the river during COVID. There are funerals on the banks of the river. We have seen WHO and Lancet criticizing India for COVID handling, but we got no lesson, sir. Apparently, it seems to be an increase in the budget, but if you consider with the inflation, actually it's a decrease in the budget, sir. Out-of-pocket expenditure, highest amongst the BRIC countries, it is more than 53.2%, sir. There is a slash down by 5% in the Ayushman Bharat. I urge upon our minister, please follow the Shastro Shati project of our state of Bengal, which not only gives 100% free health delivery to the people of the Bengal, it speaks about women empowerment by providing the card in the name of the lady of the family, sir. Sir, government has also not announced any measure to help end the 80 to 85% import in the medical sectors. No importance to the reports given by the standing committee, sir. Sir, Madam, learned minister was speaking about sickle cell anemia, but no specific head has been declared. She was talking about opening up new nursing colleges, but still India is facing scarcity of doctors. So far PM Jan Arogya Yojana is concerned, sir, in 2022-23, allocation was 6412 crore.
utilization was only 3,115 crore, less than half of the targeted beneficiaries. So far the agriculture sector is concerned, our farmers can be run over during their movement, but the allocation is stagnant and 3.2%, sir. Though there is a rise in the price global fertilizer by more than 2,000%, the fertilizer subsidy, it was 2.25 lakh crore, it has come down to 1.75 lakh crore, sir. Allocation for PM Kisan Yojana, not increased. Expenditure on agriculture, it was 3.84%, it has come down to 3.2%. No word about the crop insurance, no word about the fair price agro products. When we don't know when the farmers' incomes are going to be double, when in our state of West Bengal it has been triple. Sir, few more minutes only. So far the northeastern region is concerned, the budget is only 5,892 crore. What is the income of our Mr. Adani, the best friend of someone of our country? He earns only in 3.6 days the amount 5,892 crore. That is the whole allocation for the northeast. Meghalaya, they are suffering from this momental proportion of coal scam, you all know, sir. So far the census and surcharges are concerned, in 2011 and 12 it was 10.4%, 14 and 15 it was 13.5%, 20 to 21 it has become 19.9%. Ability of state to finance current expenditure from their own revenue, it was 69% in 1955-56 and it has become 38% in 2020. Now states are unable to levy taxes to subjects even in the state list of Schedule 7. However, states still spend 60% of the expenditure in the country, including 85%. So far the education is concerned, there is huge dropout. 3.5 million students are out of the schools, sir. But they have hardly seen any significant increase in the budget. Indian Institute of Management is only 300 crores. Sir, why don't you follow the projects of Kanyasri, Oikosri, Sobut Sati, students credit card that are being followed in our state of West Bengal? Defense, very meager increase. Home affairs, nothing mentioned. Urban employment, they slashed down by 30%. PM Awas Yojana. Sir, just 10 seconds. Just 10 seconds, I will conclude. Sir, don't do any financial blockade for the states run by non-BJP states. And my final submission by conclude by saying sir, I will that conclude. it was slip of tongue that the Honorable Finance Minister has hatred for anyone. Okay, sir, okay. So that's a slip of tongue by you. Unliking. I take it as such because I know you sir, for wrong. I will say just 2 words. Nowadays we are practiced. We are listening an unparliamentary, undemocratic and anti-federal word that is double engine government. Shri M. Mohammed Abdullah. Lastly, when I will go back to my home, I will be asked by my daughter, what you have You done made in your the point. parliament. I know, sir, I have to say, हाल मत पूछो मेरे Shri करवारों का M. Mohammed आईने Abdullah. बेच रहे थे अंधेरों का शहर में. Thank you, sir. Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, I begin with the famous Tamil quote, sir. I know you always like the quote, so for that also I want to start my speech with one quote, sir. ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கழுத மேய்க்க. Yes. ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண. அது மேபி ட்ரிச்சில இருக்கும், புதுக்கோட்டையில கழுத மேய்க்க. அவ்வளவுதான், ஊருக்கு ஊர் மாறும். பட் வாட் எவர் ஐ சரி, நோ இஷ்யூ, ஆடுனே வச்சுக்கலாம், நோ இஷ்யூ. ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு ஆடு மேய்க்க. மீனிங் there is a dream or desire to rule, but the lack is only to hurt or rise, as you said, goat. This is a famous quote in Tamil, sir. Why I want to quote this? Likewise, Honorable Sir, when this union government formed in 2014 and also in 2019, what was the expectation of the public of this country, sir? The expectation was an amazing government. The expectation was an amazing government. But in the end, all they got is an Amazon government which sells everything that it sees. For that I quoted, sir. Sir, the union government has given us a lackluster budget
aimed not at growth or welfare of the people of this country. This is lacking vision to create jobs, tackle inflation, and stem inequality. CMI data reveals that the total number of the employed people in India at the end of December 2022 was lower than the total number of employed people at the start of 2016. This is the CMI data. This budget also failed to address the issue of unemployment and inflation. When the unemployment rate is at a historic high, the budget reduces the MGNREGA allocation by 33%. This budget proves that this union government has no roadmap to build India's future. Instead, this government is determined to push the fortune of the gift city, Ahmedabad, at the cost of other commercial and financial centers in the country. Honorable Sir, the budget has cut down the union government expenditure to reduce the fiscal deficit while giving further tax concession to the rich. No direct taxes have been reduced. There is no cut in the cruel and irrational GST rates. There is no cut in the numerous surcharges and cesses which are not shared with the state government. Besides, making new tax regime the default option is grossly unfair and will rob the ordinary taxpayer of the merged social security that he may get under the old tax regime. The Honorable Finance Minister in a press conference in August 2021 had said the UPA government had reduced fuel prices by issuing oil bond of rupees 1.44 lakh crore. I can't go back by the tricky that was played by the previous UPA government. Due to oil bond, the burden has come to our government. We are pleading to pay the oil bond of rupees 1.44 lakh crore of UPA government. This was said by our finance minister. Sir, while conveniently hiding the fact that the current NDA government has placed a far more dangerous ticking time bomb on our head, sir. This government has no locus standi to talk about the UPA government or its oil bonds. So what is the time bomb that I am talking about? What is the time bomb? It is the recapitalization bonds issued by this government since 2017, which will deteriorate the Indian economy from 2028 and will place it in a precarious situation by 2034-35. This government, after coming to power, changes fuel prices daily, which affect the common man. It starts crying out, stating that it has to serve the oil bond issued by the earlier government. So the reality. But here comes a big catch. The interest paid by the government on oil bond is much smaller than what this government earns through oil excise duty. So the truth is that the union government is levying high fuel price in order to raise additional revenue. But despite the need for revenue, the government has cut excise duty on fueling during 2017 and 2018, just before the assembly elections. The cumulative interest on the oil bonds comes to around rupees 9,000 crores per year, while the interest on the recapitalization bonds are more than double rupees 19,000 crores. Honorable Chairman, sir, this government in 2019 introduced the recapitalization bond scheme for infusing equity into public sector banks to meet their capital requirements, which had taken a hit due to write-off of non-performing assets. In December 2020, to save the interest burden, the government issued zero-coupon recapitalization bond to turn of rupees 5,500 crores, and again did the same in April 2021 by infusing more than rupees 14,500 crores into public sector banks by issuing non-interest bearing bonds to them against the consent, the reservation of the RBI. As these special bonds are non-interest bearing and issued at par to the bank, it would be an investment which would not earn any return but rather depreciate with each passing year. Honorable Sir,
Everyone is talking about the Adani and the Edinburgh report and everything. How this government had a hand held Adani in the last 8 years by supporting it through his schemes and all. The past is already written, sir. The ink is dry. I don't want to talk about the past. I am here to... Sir, I have more time, sir. 16 more minutes I have. I've divided equitably. I am here to focus on the future. I am here to explain what this government will be doing in the future for their corporate paymasters. Sir, I would like to explain the pathetic situation of scheduled banks of India. Sir, what is bank? What is the role of the bank? What is the nature of a bank? A bank is an institution. A bank is an institution which collects money from the public as a deposit and lends the money to the person who needs to start their business or some other purpose, mainly for business. So banks do not invest in capital. No bank invests in capital. It uses only public money for their lending operations. Earns some, excuse me. It uses only public money for their lending operations, earning from the difference of interest between these two. This is how banks are always supposed to be. This is how banks are always supposed to be. The duty of the bank manager is to collect the money from the public as a deposit and give loan to the needy people. This is the main duty of them. Not only main duty, one and only duty of the manager. But what is happening today, Honorable Chairman, sir? A bank manager is spending more time of his work by selling mutual funds, by selling insurance, by selling another financial products. Even he is selling gold coin also nowadays. The bank become like a supermarket, and the duty of the bank manager's duty has become like a supermarket manager. So, Round up. So its nature has changed. This is what I want to explain. So the bank manager, what a bank manager is poor, so he's spending more time. Someone is coming to the bank to deposit some money. He convinced that man to buy the mutual fund or insurance or some other thing. So after 2 or 3 years, when the public realize that their assets have decreased in value, they go back to the branch only to realize that the bank manager who had convinced them for the investment was no longer here and he was transferred. Even if a customer complains, no action is taken on the earning officers because banks today are only concerned with minting money instead of serving the public. Sir, I have 16 minutes, sir. Allotted time is 16 minutes. Now 9 minutes only, sir. 3 speakers and I equitably divided. Yes, sir. Round up. You have made point impactfully. It started on a very good note. And what has impressed me very greatly is that a minor disturbance upset you. I am sit here and the kind of disturbance I face. Cooperate with me. I can understand you, sir. Conclude. I have a time, sir. Please conclude. Yes, sir. So 90% of this country are innocent and blindly believe the bank manager by thinking that they are educated. The activity of the bank manager is already bring down the deposit made by the public in the bank. Sir,